right now. Okay. Everyone loading up into the game. I think we got the plane path of the first game, maybe. Guys, Loading on up here, Blank as well. You can see Let's the players in the lobby. Look at that. They're running around. They're trying to get everything sorted. Those furtive glances over the shoulder there. Something going on. Yeah, no, just trying to get people into the match, and already we are having things kicked off here in the PMWI, this regional clash between so many different players from so many different countries here. It's great to see the representation. There's no problems either because everyone's playing here at LAN. Game number one, loading on up. Erangel as we kick things off here. Players loading on, the plane path moving over as it fades into the map. Loading on up. Match number one. It all starts now. The helicopters flank the plane. Helicopters coming out of this one next to plane here. We are having our plane path already. We did get a little quick sneak peek at this plane path at the beginning of the game, heading just under Novo up towards Gatka. Now this is a fantastic little drop spot already for Stalwart. I'd imagine they're going to be dropping out the plane here, but it's Aton jumping out almost immediately, heading up possibly towards Mill to Power. That's a drop spot that they've been loving recently. Rozok, on the other hand, quite inaccessible, and that was going to be quite the big hot drop for a lot of teams like Donuts heading up there, a few other teams on that location with Damwo and Kia just underneath them in School and Apps, but you can see that Stalwart already immediately in Novorupnoye. Sometimes they will head towards North Sosnovka, but this is their preferred drop, and this is great for an 18-man lobby, John. Yeah, and then Wildcats as well over on that military base, joining them on that South Island. Those northern crossings may be a little bit more populated, do you think, after those bridges with this plane path as south as it is. Some teams will try and migrate north, sure, but that traffic jam will certainly have an impact. Yeah, you're just trying to cover as much of the map as possible. You know, James, Max, Jason on the desk, all talking about this beforehand, saying that you know, there is going to be a lot of space on the map that you're going to have to cover. Not so many scouting positions now can be taken for these teams, just in the early game at least, just in case you get caught off guard by a team that's in the vicinity that you maybe wouldn't think would be there before. Though we do have Vampire Esports, they are doing their usual drop down towards Ferry Pier, Quarry and Primors, really taking things wide at the beginning of this game. Yeah, a little bit of a late dropout, sure, but it was fairly close by to the plane path, right? So they will have plenty of time to be able to navigate and get things sorted for themselves moving forwards on their northerly movements that will have to come through as the circle pops. It looks like Falcon already in competition with Morph. The top of the hill currently occupied by Morph. Yeah, it's going to be quite difficult here for Morph to actually... well, it's very easy for Morph to pick up on this one because Falcon's drop is a little bit further up towards Yaz, honestly. So Morph drop out early, get the catch on Falcons. Already taken one player from alone down here. Does get res back up into the fight, though. So not quite elimination coming through just yet. But Donuts USG actually currently have 2 points already. Yeah, they're starting to pop off. I mean, a little bit of a spot. Falcons, talking about res up in a little bit of cover. Presence known though between those two teams on that split area. Never alone. Has his team. Seems to play to the name. Oh, look at this. You got Box Gaming with some trouble. Yeah, Box dropping right on the coastal side, and it's VGS trying to pass by them in vehicles. Now VGS have 2 spots. It's up towards Severny as their secondary, Lepoka as their primary. Not able to get to any of them. So this is so awkward, but this is now time for Box to try and show some dominance. They regrouped around Break and Soaz after their decent PMGC. I think it was World League. Now they really need to show their stuff here after losing a couple of players and reforming. Nearly perfect nade there coming through from Break, but doesn't quite get the knock. They will have got that hit marker, that indication that there's a player close. They know there's a vehicle moved. Well, they still know that there's a player this close. Mini 14 with the 4X on the off angle for VGS.
should be pretty solid at holding down this ridgeline, but if 3 players from box go down, it's going to be tough. Around the side though, gives away the position, and it's an easy spray down for Box Gaming to pick up their first elimination of the game. That's a really sick just run around there from the team. Very fantastic stuff overall. VGS just crumbling, obviously not able to get either of their drum spots in this game, and they just fumble for it. This is what the 18-team lobby does to you. You know, you try and head to a spot you think may be free, but it's just not. Still bleeding out. VGS down to 2 and will be taken on out. Donuts, they were contesting as well. Nigma Galaxy taking early losses. These are the 2 points that you were pointing out earlier. Yep. Yeah, that is rough there. But USG, honestly, this is a team that really wanted to take Rozhok. You know, in all the practice games we see them play before this, they have always gone Rozhok here. Just looking at anything on my drops in terms of statistics, you know, 4 Rivals was the other team that was going to head over here. But in fact, you know, Nigma Galaxy tried to challenge out. Usually they're the Pachinki team, so maybe they dropped just slightly short. USG had to go a little bit further. And just on the way, they picked up a couple of points. You love to see it. Yeah. Certainly if you're a USG fan. Falcon, 4 players in a vehicle. Not advisable. They're heading towards Yasnaya Polyana as well, which is currently occupied by Morph. On this northern rotation, they are behind the game. Morph on the western side of Yasnaya right now. They will be holding down a lot of those buildings, a lot of those compounds. Hopefully they're going to spot the Falcons' approach, right? It's a very open field. If you're looking that way, you will be seeing them. They're only in 1 vehicle as well, which means that if you're taking some pot shots, you might even be able to get a couple of eliminations there. Absolutely. I mean, there's a real chance for it. Now, VGS, you know, broken and battered, heading up still past Damwon Kia, who've still gone for that apps school split. It's a little tighter this time, though, and I respect that from Damwon Kia. James on the desk was talking about, you know, how really they wanted to keep things survival-based, get towards the end of the game. It's not about huge eliminations, it's consistently plays for points. Now, that's going to give you a good average point over in the PMWI, but 3 days, you do need to strike out a little bit. Donuts USG getting the initial 2 points and also claiming Rozhok straight away. This is fantastic for them. And Donuts USG, they've come out on top in Japan at the moment. Even in the PUBG Mobile Showdown between Korea and Japan, they were a full 10 points ahead of anyone else in that lobby right at the top. So really fantastic stuff from Donuts USG so far. Aton Esports का सीन कैसा ना? Aton Esports के like Brazil के player भी है, अलग-अलग country के players whenever they can. Morph, I think they have spotted Falcons. Falcons, you can see, still with a little bit of damage on board. That might have been from earlier. Probably still healing that one up. Never Alone was the player who was already knocked by the enemy team. I don't know if it was Morph, actually. I have to go back and watch. Falcons did get knocked. Yeah, it was Morph from up the hill. That was the first engagement that they had. So they did already do a little bit of damage. It looks like they will not leave each other alone for now. VGS down to 2 players. They've spotted back-to-back on the ridgeline. It looks like, yeah, back-to-back. Just want to take up position. Yeah. And see whatever vantage points they can try and claim. This is fairly interesting as well because REGAN.S trying to head in the direction of Morph. These are 2 teams that drop in Yasnaya. REGAN.S with the Yasnaya South Temeshki split, but Falcons trying to take up this position as well over in Yasnaya. So, a lot of contention on this eastern side of the map. I know that, you know, 52 Esports, they tried to take Stalwart and then South Yasnaya as well before, but right now they're not right on the western coast. Yeah, I mean, it seems like they've changed it up. I mean, to be fair, there have to be some changes, right? In this lobby, it's a new mode that these teams won't have played with 18 teams in it, right? It is seemingly a small difference, but it absolutely will have an impact as the desk covered previously. So we'll have to see what impact that actually has, because right now, we haven't seen much more than 1 or 2 hot drops, right? Well, what I will say, you know, is that people have been very stubborn on their drop spots, and even just from the small research that I was able to do, small research they were able to do about their drop spots beforehand in this tournament. You know, a lot of these teams have gone for these drop spots regardless of how south that playing path was. So, you know, we could have this gentleman's agreement going on from a lot of these teams. It's like, these are our spots, we can't go away from them. So secondary spots just really aren't too available anymore. And for that reason, if you get a really, really bad playing path, you could be in for a very bad game. The playing path on this one was very south, and the circle did shift up north. And I'm looking at the teams that have made that
journey north early, and I'm looking at 4 rivals, right? All the way up in Severny. Right at the top of this circle now, playing from their northern bastion. Stalwart Esports on the south east of the circle, just about crossing in. One of the favourites of this tournament right now. Yeah, absolutely. Like, I don't have too many notes on this team, just because they play things so clean, and there's only so many ways you can write clean, to be honest with you. So I was very, very impressed with Stalwart. I think so is the Desk. They're set for a fantastic PMWI, but we could see some rising stars, some rising countries just come out of nowhere and blast them out of the water, but we'll have to wait and see here. But for Stalwart, so far, things have been very good. I really do like this Novo drop forward in the beginning here. The edge of the map with 18 teams, it's going to be rough. There's not a lot of position to play in, and with the loot that you get on board from Novo, with the 6 to 7 already on just one of their players, they'll be able to outlast that Storm on the edge. You'd hope so, with the caliber of teams that we're dealing with anyway. Although that works to their detriment as well, doesn't it? I mean, they have to face off against this super high caliber lobby. It's not going to be easy. Aton take up the gas station. Out to the west of Yasnaya Polyana. And Morph looking their way. Yeah, so Morph ना इनके player को ले सकता है अगर open spot हुआ तो. Road right with Aton just underneath them. For Morph, that being their original spot, they've actually moved west here towards that northern coast. So they're just looking out for any cheeky teams that try and hold on this north coast. And it's a great idea as well, because it's a very easy position to corner and cause mayhem for many teams, because you don't really want to cluster around this southern edge. There's so much space up towards Severny, especially with that southern playing path. This is a great position to take up and just chill out, take some time for yourself, especially if you dropped in South George. Like some of the teams, in fact, we've already seen TJB Esports might want to head up there, so 52 just in South George right now. So Morph could get a lot of points just from this singular position. I'm looking at USG as well, right? We talked about you talked about earlier in the game. It's great they've managed to get Rodshock. They've managed to lay claim to that area. But if they don't leave there early enough, it could prove to be their tomb, their mausoleum, right? If they aren't able to get across early enough, if it's a northern shift, they could really be scuppered. Oh yeah, I mean, you can take every one of these teams and just imagine that they're elastic bands. And USG is that first elastic band, and when you create that elastic band ball, some point it is going to break and explode, and poor USG is right in the middle. They are going to get, just get bigger elastic. The hell? Explode, and poor USG is right in the middle. They are going to get, just get bigger elastic. Right? Stream pause. स्ट्रीम का बेटी है क्या? हाँ, स्ट्रीम का बेटी है. ए भगवान, ये लोग स्ट्रीम भी करते हैं, कैसे करता है? ऑफ हो गई स्ट्रीम. नाइस भाई, स्ट्रीम ऑफ हो गई, बोलो इनकी. भाई तुम लोग गेम डेवलपमेंट ठीक से नहीं करते यार, एटलीस्ट ये तो कर लो, स्ट्रीम तो ठीक से चला लो. सीरियसली. Full soul. Let's go finally. I'm working with very small. They certainly have had that opportunity, probably more so than most of these other teams. Morph had to move a lot at the start. I mean, Nigma Galaxy might have had the opportunity, but unfortunately they lost 2 players early. All rivals jetting down from the north side. You absolutely would as well. I mean, this is a great time for them. You get such an awful playing path. You head up all the way to Severny, and the circle just continues to move north and north and north. And now at this point in time, they were being quite passive, but with this shift, they are absolutely sending it down into the circle, trying to take a position as fast as they can in one of the compounds. It's TJB that's rocking up from 4 rivals who've just come to this position. GK first leading the charge, getting first opening and doing it brilliantly. Living up to the name, first elimination for the TJB squad now, 4 rivals in the corner, backed up to the back building here. The height advantage in favour of TJB. Morph over the ridgeline as well. Watch out for that scout, watch out for the third party if this fight goes on too long. The off angle is there for 4 rivals, you can see that in the mini-map on the top right.
They have got those sightlines to control, but Lin's moving forwards as well, putting pressure on 4 rivals, forcing them out of this compound, of this cover. They want to try and catch them. They don't quite have the off angles, not just yet, but with that nade, Jumper taken low for rivals behind the vehicle. Lin out first. Zhao, soon to follow. Looking to go out wide. Will they spot the player? They should have caught sight of that one, and those bullets will certainly give the game away. The gunshots ring out, but not finding the knock. Jumper now in more danger. Swings around the corner. Lin sprays, but the Scar doesn't quite land it. Half HP, and it's spotted. There is the off angle. Tingsker finds what TJB are looking for. 2 players from 4 rivals are down. Really incredible stuff. And I'm loving to see the new Scar love coming through, the most recent buffs for the guns coming into the game. You know, Scar being almost as good as the M4 now, if not better, depending in the hands. So really nice to see a little bit more variation in terms of that weaponry. Already another little knock through for Team Soul. But yeah, great stuff from TJB, considering they were all the way over towards Hospital South George. That was a hell of a send that they made happen over towards this compound, which is now extremely central in this circle. Let's go, guys. TJB firing for Nigma Galaxy, the first team to go down fully blank. They lost 2 players very early. Yeah. You kind of think, fair enough, go again. It's a bit of a struggle though for Nigma Galaxy. It's not kind of the precedent you want to be setting as that team when everyone knows you as the survivors. You are the Bear Grylls of the lobby, and it's just not working out. Oh, nice knock, yaar. Scry from Stalwart takes some shots over towards Wildcats. Already Ray going down. Defoe off in the distance, takes some pot shots back. But now it's the Wildcats having to regroup here, trying to make something work. Oh, no. पीछे Aton के भी है. A moment, Wildcats heavily under fire. Stalwart on the south side of them, but there's a traffic jam to get further into the zone as the next circle pops heavily south as well. So it will be on their shoreline, but they have a lot of treacherous ground ahead of them. Action eliminating Ray here. Okay. Of course, if you guys want to earn points, you can complete daily mission. Once enough points are accumulated, you can tap on the rewards icon in the game to claim the corresponding reward. That's if you're watching enough of this PMWI. You can participate in the event solo or team up with other players. That's absolutely fine. Just like the players in the PMWI, teaming up could get you that reward just a little bit easier. Let's go. There's 4 rivals. You can see, you were talking about them earlier. They're swimming in the river right now. I always think that these river finishes in the middle section near that Roshok crossing is one of the most brutal places. I mean, all these teams on the northern side are going to be dragged across sandpaper, basically, trying to get into this circle. It's so unfortunate because you assume it's going north here. TJB got such a nice position, and it swings back down south. Now, I want to see USG, the Japanese team, translate this, because they've been given such a good opportunity here for a chicken dinner right at the beginning of the day. वहाँ से भाई स्टारवॉर्स का एक रोटेट जा रहा है, यहाँ पे इन लोग की फाइट चल रही है. क्या आरएसजी ये करेगा? रिटेट कर रहे बोला नहीं. Stop that progression west. थोड़ा बॉल बैक ले लो. Make things difficult. Down 1 ahead. You can see they're taking a couple of knocks from back to back. I think this is the circle where most of this impact to the 18-team lobby will be felt, although we are down to 62 players. 17 teams, so I did not expect this at this point in the game. Already 17 minutes, it is absolutely 52 Esports knock themselves out. It's extremely unfortunate. They're coming from that western side. But Stalwart, we mentioned them. They were taking a fight versus the Wildcats, and this is where they need to play the edge game perfectly. They've thrown a little bit of a lifeline here on the southern edge. See if they can make anything happen with it. Stalwart taking shots really fast and strong rotation, I'd say, but Lightning does get caught there, unfortunately, for the spray down. They are going to lose him at the wall at the top, back-to-back, have their polo. Representative for the squad. The nades start to ring out. They're not going full aggression just yet, Blank. Falcon भी जाएगी, Falcon भी पूरी जाएगी, Falcon की भी team full finish है. The 2022 PMWI guns get an outfit. You know, we have a sale period going on through from the
4th of August through to 13th of August. We have 50% off PMWI packs, and you get a set straight away in that time frame, and 5 extra chances to draw the PMWI treasure chest. And if you miss out on that first sale period, there is a second one from the 14th of September all the way up to the 15th of the next month, where you get 16% off PMWI packs. You get 6 chances to draw PMWI treasure chests. Looking straight back at the game here, back to back have actually made it quite far from there. It was quite a difficult drop spot for them on that southern edge on the coast. Wildcats still in this one with 3 players. Surprisingly, they took an absolute beating from Stalwart on that southeastern edge. But the circle is starting to close in right now. Directly on top of Rozok. Oh, USG, yes please. They're very happy about that, you're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. Be like, you guys just fight between yourselves. हम लोग थोड़ा ये करते हैं. अरे वापस नाइस. क्या यार इन लोग को ना सीरियसली बफर भाई, इनको ना गेम डेवलपमेंट ठीक से करने आता ना कुछ करने आता. अभी स्ट्रीम भी बफर हो रही है. चौड़. अरे पंचो भाई कैसे हो? वेलकम टू द स्ट्रीम यार. वेलकम मेरे भाई, कैसे हो भाई? बफर करने लग गई इनकी स्ट्रीम. हेलो ब्रदर. यस हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? एंड प्रोडक्शन क्या बोल रहा है वो? जियो लगवाओ. तुम बताओ. यार मैं भी बढ़िया हो यार. नासा का इंटरनेट होगा भाई. टीम सोल भी अच्छी खेल रही है. क्या है भाई? ऑफ रिफ्रेश. नाइस वन यार. हे भगवान. You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. अरे पीयूष भाई, एक्चुअली टीम अच्छी खेल रही है अपनी. टीम सोल ने भी. अरे पीयूष हेलो, क्या करता है? कम ऑन सीरियसली. इंडिया ओपी सोल ओपी इनका फिक्स ही नहीं हुआ अभी तक. पुअर मैनेजमेंट है. पुअर मैनेजमेंट. इंडियन यूट्यूबर का अच्छा नेटेंस है भाई. गेम को बस लो है. ओके भाई, गेम क्यों नहीं खेल रहे हो? अरे ब्रो आज वॉच पार्टी है ना भाई. आज टीम सोल खेलेगी. लेट्स गो भाई. आज तो ये वॉच पार्टी है. वर्ल्ड लीग ये देखो, ये बोल रहा है वर्ल्ड लीग का ऐसा नेट होता है क्या? स्ट्रीम ही नहीं चलते. अरे 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 सीरियसली पुअर मैनेजमेंट है यार. पुअर मैनेजमेंट, बहुत पुअर मैनेजमेंट है इनका. You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. ठीक तो मैं खेलता हूँ. ओके श्योर खेल लो भाई. अच्छा वॉच पार्टी है यार. ब्रो इतना पुअर इंटरनेट, सीरियसली बंदे गाली दे रहे हैं लिटरली. सोल डेड ऑफ अरे मजा. एंड प्रोडक्शन आई वॉच नहीं पर डिसिजन हुने लिँदै थियो, तर उनको पार्टनर पनि त्यहाँ नक भएको कन्डिसनमा रहेका थिए. बचाउने त चान्सेस नै रहेको थिएन पनि. You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. Finally. नहीं bro. You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. Okay, let's go. आ गए on. नहीं हुई? You know, I'll better watch this one. जुन तपाईको PEL मा चाहिँ देखिने गर्छ. RSG का प्लेयर पनि जोनले गर्दा यहाँ फिनिश भइरहेको देखिरहेको छ. सर्कल त अझै पनि छ. रोजकमा नै USG को टिम राम्रो एंगल बनाएर बसेका थिए. बट पिक गर्ने चक्करमा म्याक्सिमम ड्यामेज फेस गरेपछि प्रोटेक्ट देने में USG वाले नहीं दे गर्नतिर लागेको छ. शायल चाहिँ RSG टिम अबे 11 पे हो गयो. RSG लबीबाट बाहिर निक्ल्यो. टप 10 मा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ. आई थिंक सोलको जुन लास्ट प्लेयर बचेका थिए ओमेगा, उनी अझै पनि लास्ट बचे. भ्याम्पायर पुरा एज मा मात्र खेलेको छ. 8 एलिमिनेसन पोइन्ट्स आफ्नो नाममा गर्यो. 6औं सर्कल आइसक्यो. हाम्रो 22 मिनेटको गेम प्ले, 22.5 मिनेटको गेम प्ले. पूरा स्कूल रोज पूरा फाइट रोज पे भाई. अगर यूएसजी वाले इसने देख लिया था ना सानी ने, वहां पे प्लेयर है भाई डेड हो गया. प्रॉब्लम छ जस्तो मलाई लागेको थिएन. बट प्रब्लममा स्टॉलबर्ट आयो किन भन्दा टप फिनिश भइसके. एक्सन अहिले नक हुँदैछन्. ओके
दुईटा गन पावर प्लेयर भने चाहिँ स्टार्टिङ त नभनौँ नि भनौँ फाइटको चाहिँ यो जुन जबरजस्ती वाला फाइट छ भनौँ एक भाई क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है निकालिकन प्लेयर चाहिँ डाउन हुनुपर्ने वो क्यों भाई यहाँबाट देख्न सक्छौ प्लेयर्स अरे जॉर्ड न राखेको थियो वैम्पायर वाले में क्या रोके ये नेट खराब है वो नेट भाई खराब है मैं बोला ही था खराब है बहुत ये भी नेट खाएगा बहुत खराब नेट डाला भाई इसने स्टोन ने बहुत खराब नेट डाला रहेको टिमलाई नै यहाँबाट चाहिँ एलिमिनेट गरेर देखाइदियो अरे 4 आइबस भी गए और हाइड्रेटिक तेरा ये काम हो गया क्या तेरा धंधे का टाइम हो गया होगा नम्बर जोडिएको छ उनीहरुले सर्कलको इज पनि बनाउने कोसिस गर्दै थिए पनि स्टार्ट एक्सनलाई त बचाइएको ओमेगा बीच में रे अब फिनिश गरियो ओके स्टॉलवर्ट टिम थोरै गर्दै ट्रबलमा आउँछ मिनी म्याप पनि माथि कन्ट्रोलमा देख्न सकिन्छ जहाँ स्टॉलवर्ट सँग का देखना है मेरे को पीका का गेम देखना है स्टारवर्ड्स को दिखाओ पीका क्या डेड है क्या पीका सँग येलो कलरमा फ्रेंड गया अलिकता कम देखिरहेको छु मैले मेरो आँखाले भन्दा पनि क्वालिटी अलिकता कम फिल भइरहेको छ एटलिस्ट मलाई चाहिँ टप 7 मा गेम कन्भर्ट भइसक्यो 19 प्लेयर रहेको छ अर्बन एरियामा सर्कल बनेपछि लट्स अफ द पुश हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्थ्यौ ओमेगाले एक नक निकालेको थिए बट उनको पनि एचपी ठीकठाक नै रहेछ मैले सोचेँ कि ड्यामेज फेस गरेको छन् हुने बट नो वालको साइडमा कभर बनाएर उनी अहिलेको लागि जीवित नै रहेको छन् टप 7 मा सोल भाई ओमेगा अगर बॉक्स के भाई इसने देख लिया ना इसको देख लिया ना ओमेगा को खत्म है यार ओमेगा अगाडि मुभ ओमेगा कम ऑन ओमेगा भाई सो दैट्स व्हाई कसरी हुन्छ बच्ने उनको सोच रहनेछ टप 6 मा छिरेको छन् ओमेगा बस टप 5 में आ जाओ यार कैसे तो भी करके जो चल हो गया टॉप 5 तो हो गया मिसाएको छन् बक्स टिमको 4 जना प्लेयर बॉक्स को गया बॉक्स का वो डेड हो गया भारी भारी डेड हो जाएगा पनिश गरिएको छ नक भारी डेड कर रिवाइव गर्नको लागि त मुस्किल देख्छु म किन भन्दा त्यो समर रिस्क लिएर कोही आउँछ जस्तो एक्सन ओ भाई नहीं एक्शन अगर स्पॉट कर दिया ना ओमेगा को बहुत खराब होगा बसेको प्लेयर त्यताबाट भिजिबल रहन पाए बट नो अझै पनि भिजिबल त हुने छैन फोन स्टॉलवर्ट सँग नै रहेको छ टु म्यान भए पनि म आस गरिरहेको बॉक्स के बीच में है ओमेगा र्याङ्क वाइज उनीहरुले सही निकाल्न पनि सक्छन् जस्तो देखिएको छ भनौं न यतातिर दुईटा टिमको बीचमा क्लास बन राखेको छ नम्बर काउन्ट गर्दैछ ओ नाइस नाइस राम्रो पोइन्ट्स निकालिदिएर राखेका थिए यहाँ भने चाहिँ थोरै वल्नरेबल बन्न पुगे एकजना प्लेयर उनीहरुको एम्पायर का भाई एक नेट में अरे यार देख ही लिया पीका ने आखिर में ओमेगा को स्टारवर्ट का प्लेयर पीकाले चाहिँ स्पॉट गर्यो ओमेगालाई लबी बारे चाहिँ भने तीन एलिमिनेशंस अच्छे भाई चल अच्छा खेला अपना टीम सोल भाई टॉप 5 में है जॉर्ड प्लेयर अब भने उनी चाहिँ इसको रिवाइव नहीं मिलेगा उसका भी प्लेयर डेड हो जाएगा पार्टनर रिवाइव गर्ने मौका पनि भने चाहिँ उनलाई बनाउन स्टोन का नहीं कुछ नहीं होगा उस नेट से शॉट्सहरु पनि त्यहाँ गइराखेको थियो भने अब यो प्यानिक उसके ऊपर भाई उनले क्लच गरेर देखाउने चान्सेस एकदमै मिसाइल देखते भाई मिसाइल में उसके प्लेयर उसके टीम के लिए क्लास प्लेयर डाला है वैम्पायर का खा सकता है एक्चुअली वैम्पायर पूरा डेड करवा देगा मिसाइल को एलिमिनेशन पॉइंट मैले अलरेडी नै भनेको थिएँ मुझे गेम में 11 रिमेनिंग है भाई स्टार मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि या तो ये बॉक्स का होगा या तो स्टार वॉर्स का होगा ठीक है आज राइट पनि प्रो हुँदैछ पहिलो मैच में स्टार वॉर्स के जोन के अंदर है लीड यूज गरेको छ बक्स अगेन्स्ट में के ड्यामेज दिन्छ भाई भी हो सकता है ब्रेक बचेको छ यहाँबाट त नक बन्नु बट आर्कको युटिलिटी फेरि एक्सनले फालेको छ नि यहाँ बहुत अच्छा नेट था वो एक्सन का बहुत अच्छा भाई ब्रेक को ले लिया नक भएको छ एकदमै खराब टाइममा नक भयो भने बट आर्कको एउटा युटिलिटी पनि क्या प्रेशर बना रही है बंदों के ऊपर मात्रै हुन गयो बक्स लिटरली क्रिएटिंग अ गुड प्रेशर ऑन देम PMW जॉर्ड स्टोन ने किल चोरी कर लिया भाई एक्शन का शीश ब्रो मैच जीतेको खाले सर्कल स्टार वॉर्स नहीं आने देंगे अंदर स्टार वॉर्स भाई वैम्पायर में भी मार भी सकती है प्रमोट गरिन्छ यो सर्कललाई प्रमोट गरिन्छ मलाई ठ्याक्कै त्यही मे बी चिकन स्टार वॉर्स और वैम्पायर के बीच में टाइड है देखते किसका चिकन होगा नेवर माइंड आई टेक माय वर्ड्स बैक मिसाइल ने जो खेला है मिसाइल जो जॉर्ड प्लेयर एनी टाइम फिनिश रहन सक्छन् उनी फिनिश गलत भइसकेपछि ही किया स्टॉलवर्टले पहिलो म्याच पनि टप 3 मा भाई चलो ल्याइ सकेको छ टप 3 मात्रै हैन अझै माथि जान सक्छ कि भनेको बात पनि स्पॉटेड राइट फिनिश गरिएको छ टप 3 नै उनीहरुको फाइनल अभी तो वैम्पायर का होगा चिकन अभी तो वैम्पायर का ऑलरेडी वैम्पायर चिकन ले लेगी भाई चिकन वैम्पायर ह्यूज पॉइंट्स यहाँ निकाली सकेको छ वैम्पायरको टिमको तर्फबाट वैम्पायर चिकन ले सकती है बॉक्स का भाई देखते और वैम्पायर ले गई निकालियो निकाल लिया भाई वैम्पायर ने बहुत गलत चिकन निकाला है वो बहुत बढ़िया वैम्पायर बहुत बढ़िया आई थॉट लाइक स्टार वॉर्स इनको आने नहीं देंगे बट उनके लिए पीछे से स्टार वॉर्स ने बहुत ऊपर वाला स्टेटमेंट एटलीस्ट सुने ले यहां चाहिए और उनके पास मैन पावर भी नहीं थी ना एक्चुअली तो स्टार वॉर्स के लिए वो लाइक ये था डाउन पॉइंट था एक्चुअली इंग्लिश इनका देखते क्या चल रहा है You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. नहीं गया the hell वैम्पायर बहुत अच्छा खेले
छोड़ो यार, इन्हीं का देखते रहे ये लोग। अथवा यो फिलिङ त आउने नै थियो जहाँ प्लेयरको बहुत बढ़िया नजिक क्यामेरा घुमिरहेको हुन्छ, प्लेयर एक्स्ट्रा फुटेज पाइरहेको हुन्छन्। हामी साइड कर्नर लागेको छ, हामी यति कर्नरमा यति आउँदैछौँ भने प्लेयरहरूले बढी फुटेज पाउँदैछन्, उनीहरू चाहिँ बढी देखाउँदैछन्। यस यो ल्यान्डको यही नै भाइब हुन्छ। एन्ड देन ल्यान्डको भाइब 18 टिमको भाइब लबीमा त्यो देखिएको छ। 25 मजा आ गया भाई देख के स्ट्रीम। ह्यूज फिनिश निकाले भक्खरको भक्खर भनौँ न। क्या हो गया ये स्ट्रीम को, क्या चल नहीं रहा है, एनएच हो रहा है उनके साथ। You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. 25 kills भाई, 25 kills भाई, बोलो वैम्पायर भाई क्या खेल रही है रे वैम्पायर। رغم مثل من خارج الزون كان ممكن يضيع عليهم. Para la partida que una granada elimination sebelum game tu You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. भाई इमेजिन तुम लोग कुछ स्ट्रीम कर रहे हो वर्ल्ड चैंपियनशिप और तुम्हारा नेट इतना गंदा है। इमेजिन छी बे कितना गंदा सीन है PUBG You're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. ये देखो मैं नेपाल का ही देख लाऊं मैं। मेरे को नेचुरल गेम प्ले जाना था पाया, बट फर्स्ट मैच माने टॉप 3 निकाल्नु एन्ड देन हामी एक्सपेक्ट गरेर का देखो भाई टुर्नामेन्ट में टॉप 3 या टॉप 5 त मिनिमम निकाल्छन्। सोलले निकालेको छ प्लेसमेन्ट पॉइन्ट 3 एलिमिनेशन थियो, 2 त नेपालीको ग्रुपले मारेका भाई टीम सेल्फ जॉड यार। बक्स गेमिङ को लागि 14 पॉइन्ट, एटोन को लागि 7 हामी देख्न सकिन्छ। वीवो किट को लागि देख्न सकिन्छ। स्टारवॉर्स का चिकन हो सकता था, बट अगर मेरे पास मैनपावर होता तो निकालेको थियो। हुन त उनीहरु ने भाइ ज्यादा रोजकमा पहिलेबाट बसेको टिमहरु राम्रो खेल्न सकेनन् भन्ने किन भन्दा स्क्याम हो गया इनके साथ। यूएसए थियो राइट, बट एटोन भी अच्छे बाकी कुरा गर्नुपर्छ। स्टलवर्ट पनि बाहिरबाट आएको थियो, भ्याम्पायरको टिम पछाडी पानीको साइडबाट पुश गर्दै डिफेन्ड गर्दै आएको थियो। सो सिटीमा बसेका टिमहरु भन्दा पनि अरूले चाहिँ बेटर गेम प्ले देखाइदिए। यहाँ अरु टिमहरुको लागि यसै पनि त्यहाँ राम्रो गेम प्ले बनेको त देखियो। एम्पायर स्पोर्ट्स अच्छा खेले बस स्टार्टिङ 24 किल्स थियो। 18 टिम हुँदाखेरि कसरी हुन्छ होला गेम 24 किल्स समझ्यो कि स्टार्टिङ फेजबाट नै क्लास एन्ड कुनै एउटा टिमले पाउने चाहिँ नम्बर अफ एलिमिनेसन पोइन्ट भनिएको थियो। त्यही हिसाबले नै चल्ने भन्ने। इफ स्टारवॉर्स हैड सम यू नो मैन पावर एन्ड ऑल दैट तो वो लोग मे भी जीत सकते थे वो मैच। इनफैक्ट अब सानक म्यापमा बिकॉज़ मैन पावर नहीं तो दो ही प्लेयर्स क्या कर लेते। मैचेसहरु अझै पनि एम्पायर का भाई पूरा वहां से रोटेट आ गया। पोइन्ट जुन निकाले डायमन्ड गेमिङ उनीहरुको लागि पनि केही हदसम्म प्लेसमेन्ट स्टारवॉर्स का बहुत ही गंदा स्कैम हुआ है। ओमेगा को अगर वो पीका स्पॉट नहीं करता ना, ओमेगा भाई गलत ले लेता फिर। 8 लाई दिखाई यार बॉक्स वाले भी थे ओमेगा के, लाइक बॉक्स और इसके बीच में था ओमेगा स्टारवॉर्स के। ये भी हुन्छ नि PMNS मा पनि हामीले लास्टको 3 टा कि 4 वटा म्याचमा त पॉइंट्स टेबलले देखेको थियो। यहाँ त स्टार्टिङ माडलले देखाएन हैन। अब चला यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूं, तो क्या कर हामी जाने दो म्याच अरु चाहिँ पक्कै पनि हेर्छौं। अटका पड़ा मैं क्याजुअल पनि जाँदैछ कम छ। लाइक अलरेडी हाम्रो टिम चाहिँ छैन, भएको म्याच अलिकति एन्टरटेनमेन्ट तरिकाले चाहिँ respect. Why give you respect? You have to earn it. You can't make me just give it to you naturally, right? And we saw like Donuts able to contend against a team like Nigma Galaxy who has such a great track record behind them and not really care. Take 2 limbs, walk away, be happy. I think also there was a lot of issues that were caused by the plane path, right? Very southern plane path. A lot of teams trying to migrate up north. You had, what was it, Box Gaming versus Virtual Gaming Squad. That really caused some issues for the African team. So, yes, you know, already we knew that the start was going to be messy. You had this plane path to the mix. It was not an easy egg to crack here. Yeah, especially for VGS, where they were. That was a difficult start for them, is fair to say. If you think about, you see a team dropping near you, kind of near those yellows, etc., to try and adapt from that. There's actually a lot of room in Ferry Pier, as well as to the east side of you when it comes to that farm split along the road that they could have potentially taken. But yeah, when we kind of approached the start of this tournament and saying that first game's going to be a bit of a feel out, based on playing path, based on that drop, that was a bit of a feel out. So you sent it towards them to try and salvage some points to start things off. Well, I mean, Max, for me, it brings back to what you're talking about here, what you said earlier, right? If they had teams are not going to show respect and also be stubborn and like keep dropping their same spot because they want to fight for it. They don't want to give it up so freely. Is that maybe what we saw there? I think so to some extent, but I think it is a very big risk because it is such a short-term tournament. Only 3 days, 18 games going to be happening here. If you try and fight consistently, for a position and it's just not working out, your chances of a top position are pretty much down the drain, I would say. So you got to be willing to fight for your position, but give it up if it just is not going to work out for you. And from one game,
we see this playing path, and this game start is atypical, right? The playing path is difficult, so some teams having to reach their initial drop spots and where they want to even be stubborn in, they don't get the opportunity to do so. One of the teams, obviously representing 2 teams already orbiting around there and moving into that position. It's going to be interesting to see how they approach a play that allows them to potentially get there. Maybe we see a fight go down, but they were in a, okay, let's consolidate and try and find a different location, considering this playing path is difficult for us to get to where we want to go. Okay, well, I want to give a big shout out before we do break out more things here to Aramco as well, helping provide this event and put it on for us. So thank you so much to these guys for making this possible. But speaking of making it possible, I mean, just to round things out, Vampire putting up 39 points. Now, you look at 39. The thing is, it gives you such a nice buffer, right? It gives you such a nice buffer for like later matches because you cannot afford to have too many bad matches in this if you want to take home the trophy and if you obviously want to move on into the after party. And the fact that you have 18 teams in this lobby, right, it does allow these games to happen a little bit more often for teams. So that comeback potential, I would say, is a lot more present for some of these guys. I'm going to say I covered some esports in Thailand recently, and the Thailand fans are going to be going absolutely wild at seeing a 39-point game coming out from them. The amount of eliminations they were able to get in this game, rolling from fight to fight, was so impressive, and the fact that they were able to win out the North situation as well against some of these teams coming in. You've got Box lurking there, trying to deal with it. You've got Stalwart coming in from that right-hand side, and then also Donuts being in the position. Yeah, very, very impressive by them. Okay, well, we can see some of our highlights here as well. If you guys want to walk through anything in particular, to be fair, I would hate to be an observer right now because of how much action was happening, especially towards like the middle stages of the game. But we can see here, TJB, again, a team that we've seen quite extensively when it comes to Western Europe, right? We saw them initially when they're known as Panda, the Unicorns of Love, then TJB, a team who does decently well when it comes to PMPL, but when they move into regionals, they seem to struggle. It was like there was a bit of a conveyor belt for TJB to get some eliminations here in this game. Given the circle and where it shifted, north of that river position, TJB had that 2-2 split already in place to greet anybody coming their way. So some nice eliminations for them to start off the turn. We've seen right now the perfect breach coming out from Vampire here, just pushing right onto Donuts. And actually, I would say Vampire, in terms of being opportunistic, were 10 out of 10. They waited for Donuts to regroup as a full squad away from their 2-2 split. They see that position, instantly send it forward to take that spot. And a very difficult thing about Rozhok is its multi-tiered layers of where the buildings are, those angles that you can take against some of these teams. Box fell very much victim to that, to the Vampires, as they swooped down and bit them on the neck. And from that, I mean, it was just a great conversion. I love what they presented here in this first game. But I feel like at the same time, putting on a match like that, you just basically put a giant bullseye on your back. And also from your fans, right? They expect you now to have this kind of, not maybe this kind of performance with how dominated it was, but they expect you to keep this momentum going. I mean, I guess the upside for them is like you have an extremely good match on the first one of the entire event, and that gives you like a nice high into the future games. Yeah, the thing is, there was definitely a lot of mayhem happening in this match, and they capitalized on the mayhem. So it proves to me, at least, that this team, Vampire, can deal with stressful situations. If they have a really bad circle, I expect they can work with it and potentially come out on top and get a win when you really don't expect it. And there is more mayhem because we have more teams in the lobby, because more people are surviving into those later stages of the games. But the thing that impresses me the most is that this was not a central location that they just held down and they just shot at everybody as they came in. No, it was constant movement, constant attempts at trying to find the next best position to where they had to fight through other teams to get to. So that kind of war-type effort that they're able to bring here to this first game, very, very excellent. And to add on top of that, actually, for Vampire, the very interesting thing is every time they took a fight, the fight lasted like 20 seconds, 25 seconds. It was super snappy, and the fact that they put that instantly, they could shift to another position, take that spot, take another fight. So I think the execution speed of things definitely made it a lot easier for them to secure the win. So I have a question for you, Kalaris. Past, well, since obviously COVID started, we have been online for the most part, and we haven't really been offline together. You typically have a nice little sound you make when we see players pull off a lot of damage, or we see teams pull off a lot of damage. We're actually going to take a look at the damage from this last match from all the teams. And I'm curious, how high will Vampire be? 3,600 is not bad. You know, actually, I thought they were going to show all the players, and I would have estimated
with that many eliminations, maybe all of them would have been above 1k damage, which would have been the proper sound that I was bringing. But that is extremely formidable. I mean, the thing is as well is that, yes, Donuts USG actually did put about a lot of damage, but you kind of expect that when they've got the 2-2 split that they had in Rozhok to be able to fire down on anybody that's coming into that area. But the fact that Vampire was going from fight to fight, traversing from fight to fight, and bringing that firepower while also still keeping themselves alive, still covering all their angles, so formidable. I think they barely got knocked in like all of those fights versus the Wildcats, versus VIVO Key, versus also Donuts at the end. The fact that you keep 4 players moving around and you're not losing any time going for the res is so important for them to get that success, to get the win at the end of the day. And the great stuff. The rest of the numbers are very urban warfare-esque, very even between all of these other teams, because you generally get in these situations where, unfortunately, for all the other teams, they're all shooting each other all the time. And you get a knock, that person moves behind a wall, you get the res, and it's kind of very chip damage-esque in this urban warfare fight. So the other two teams, the fact that they stand out so much in an urban ending is crazy. I want to play devil's advocate here, though, for Vampire. 3,600 is a lot of damage, to be completely fair. But 24 limbs, I maybe expected some more damage. Does this maybe show they were getting a lot of, like, they were finishing off knocks from other teams? Or is this, like, what you would expect from 24 limbs? I think the high damage, a lot of that came from their very wide rotation, right? They were trying to clear some space on the northern side, getting rid of, like, TJB, VIVO, Keed, also your Wildcats team. I think that was the main reason why their damage was so high, and then they just capitalized, and every bit of damage they got in that city finish resulted in eliminations, extra knocks coming on through. So I'm not really surprised to see that high damage and like a little bit lower eliminations. We said low eliminations, it's still 24. Yeah, there was 2 phases to their approach to Rozhok. One was the actual approach where a lot of the teams in Rozhok are paying attention mostly to teams that are in Rozhok. And as they're pushing up north of the warehouse into Rozhok, not a lot of people in Rozhok can see that because it's kind of a little bit of a downhill. A downhill. Not an uphill, it's a downhill. That's right. And then once they get into Rozhok, they have the highest location. So it's very difficult for people to dislodge them. Okay, well, gentlemen, I feel like we did justice to that first match. Vampire definitely did justice as well, but we do have a short little break here before we do get into our second match. So in the meantime, I'm going to send you over to Team Falcons and basketball. We'll leave it at that. Soul match. अरे सोल ये आई सोल 5th आई बहुत अच्छा खेली सोल भाई. अरे ये स्पॉट हो गया यार, ओमेगा स्पॉट हो गया ना, स्कैम हो गया उसके बाद. ओमेगा स्पॉट नहीं होता ना, पीका ने मार दिया रे स्टार बॉक्स के. ओमेगा स्पॉट नहीं होता ना, बहुत अच्छा रहता. सोल लिटरली 5th प्लेस पे आई विथ लाइक कुछ क्या 3 किल्स और 5 पॉइंट्स. 5 मतलब पूरा पॉइंट्स मिला. टोटल ऑफ कुछ 9 प्लेसमेंट पॉइंट, मतलब 9 पॉइंट्स मिले हैं. एंड भाई वैम्पायर पता है, वैम्पायर के 24 किल्स वैम्पायर के टोटल 39 पॉइंट्स भाई. लिटरली गलत चिकन निकाला वैम्पायर वालों ने. वैम्पायर का यार, क्योंकि ना वैम्पायर वालों को ना क्या हुआ, वहाँ पे स्टारबोर्ड से एडवांटेज उठाया वैम्पायर वालों ने. जो रोटेट दे के मारा है ना वैम्पायर वालों ने, जो रोटेट, अरे भाई तोड़ा है उन लोग को. गलत तोड़ा भाई, गलत तोड़ा. बस ओमेगा स्पॉट नहीं होता ना. To be fair, 3 वहाँ पे is actually not bad because that looks pretty difficult. I think I would get 1 on like a lucky day. It's not. I don't believe in myself when it comes to those type of things. Are you saying Maxman in sports not so good? I mean, clearly. I haven't even been mean to you on desk yet. You're being mean to yourself. Exactly, it feels weird, so I have to do it. Yeah, exactly, I have to do it to myself. We've conditioned him. It's been a while. It's a little bit odd now that I'm being mean, but don't worry, we still got plenty of days left, right? We talked about Vampire a lot. We talked about you making a sound. We didn't get to see player stats then, but we're going to see them now. So let's get an idea of actually who was the standout players on that roster and why they got the 3,600 damage. So close to 3 1Ks, with Mike really kind of pulling out here with the 1,100 damage coming in. I mean, the interesting thing about all of this for me is the fact that not a lot of them took massive amounts of damage. I mean, of course, apart from one in particular, but the way in which we see this damage coming in, they were, as you were saying, they were executing these fights very quickly to move on
to the next one, to move on to the next important location, like checkpoints to move to the eventual winning location. Yeah, and exactly, you saw during those fights, the Ravenclaw was always the one breaching the compounds, right? And he would sure take a lot of damage. Sometimes he would get knocked, but you have one player that has to do the dirty work. He was the one he's doing the tank. It. He's the tank of the team. You got your 2 DPSers, and we can't see healing, so I don't know if we have a healer. He was tanking the raid, man. He was going for it. Exactly. The bosses fell down real quick, but I mean, Ravenclaw really did a lot of work to get the team in those positions, and once they were involved, like, it was game over. I mean, you make a really good point, right? Because if you look at damage received across the boards besides him, is insanely low for the amount of damage they did and for the amount of eliminations they got. So it seems like their fights were extremely clean. I think there were moments of opportunistic gameplay as well here, though, at play. If you think about all of the teams that are kind of on that north coast of the riverbank here coming into Rozhok, as they come away from the bridge, a lot of those teams are kind of engaged in a few scrappy fights here and there, and there were moments where Vampire Esports to clean up some of those fights very swiftly and then move into their kind of territory. So that's partially the reason, but just and I want to give a shout out, because we talked about coaches before, right? We actually have Corpai coaching the team. You might recognize him from Power AAA KPS back 2 years ago at PMGC. I know he's here, and I know he has intentions to be playing back in the competitive scene coming into this next year, but you can't really ever underestimate the value a good coach does bring to your team. Yeah, especially a player that went to PMGC, right? And it did so good when Power AAA were playing in PMGC. PMGC was like, what, 2020, I believe it was? Like, he has that backing, and he's also got that, like, physical presence with players at a LAN venue. So that is definitely huge for the team, and it helped them secure that first win here. Okay. Well, we also have the ability to talk about donuts. We talked, well, not the food form, the form coming in from Japan here with Donuts USG. And how well they did. I know we actually had an interesting thing with them is the fact is they're not all Japanese players. Miss on the team is actually from South Korea, but he's playing within the roster. And as we saw at the very end of that game as well, he got a couple of eliminations to help bring them up the leaderboard. I think Donuts as a whole, I think they've leveled up from incorporating. Is that on purpose? Donuts whole? Donut hole? You know, I'm trying to be subtle here, and you're very American, Jason, all right? That was intentional. He's very immersed, yeah. I like that Donuts incorporated in their South Korean players, be it Missile, be it Korean player on, you know, as a fifth, etc. Because I think this has leveled them up. Admittedly, in this game, Rozhok is their drop location, and they did have a good amount of time to be able to choose where they were going to actually pitch up, try and kind of stage their campaign from as a whole. But we saw the transitions, right? Yeah. We saw when the 2-2 comes along, they know they're going to get crunched down on. They have to make a decision. Where are you going to go? You can't go up from the 2-2 into the warehouses, so you go down into the buildings that they were able to kind of isolate. And that was a great little opportunity for them to try and strike out. I thought they were going to get the win off that location. Didn't work out because Vampire just went God mode. So, yeah. It was a nice try. You could not really fault them for that. Like, they had to regroup from that 2-2 to a full squad, because if you don't, you have Box, you have Stalwart entering from the southern side. They're going to breach you, collapse on your position, and then you're down to 2 players, and then you have more teams coming from the northern side. Like, you have to regroup. And unfortunately for them, Vampire played that position above them so well. It was really hard for Donuts to deal with it. Well, I know you're talking about them in the drop location, but they did, to be fair, take down 2 members of Nigma Galaxy very early in the match as well to, like, really get themselves leveled up. And obviously, again, to show that they can compete against these teams. You know, we talk about Japan and Korea. Typically, it's just kind of in their own region, whether it's Japan League, you know, or they sometimes have clashes actually between the 2 regions. But on an international scale, they don't really play much. You know, think back to Bluebees in PMGC 2020, right? This is a team that kind of really showed what they can do, what the power Japan has to offer. And now we're finally seeing it at a global stage. And this is the important thing for Donuts USG is that, again, Japan in terms of like mobile esports and PC esports, in other locations, or console. They're not. But this is where I'm saying in console they're very powerful, but in some of these other ones not as much. But when you see those clashes come in, like you're mentioning, between Japan and Korea, Donuts USG won out that against their South Korean competitors in the most recent iteration of that tournament. So that shows that they were able to incorporate a lot of kind of that survival style that we see from them. It really did kind of pay its way forward here in this game, and I'm expecting good things from them here at the tournament as a whole. Yeah. When you think about also Japan, right, their ecosystem compared to the rest of the world is like relatively new, you could say. So I think that as the time goes on, you're still going to need more and more talent, more and more of these teams making it to international and potentially performing. So I think the hopes are high for Japan in the long term. Well, yeah, I mean, that's why I really enjoy events like PMWI, PMGC, getting to see these regions compete against each other. I kind of wish we had it more often, to be completely honest with you. Every week. Well, every week's a little bit too much.
Let's not set anything anymore. As long as we're working the event every week, then I'd be happy. But it gives the ability for every region to get better, but also every region to show what they can do. Think back to Zeus. Think back to Stalwart. I mean, Zeus in 2020, Stalwart back in 2021. Like, we never would have seen much from these regions, and yet all of a sudden we're seeing them compete against the likes of Nova, who won 2 PMGCs. Like, they're battling against the best teams in the world and showing that we can still compete even if we haven't played you before. Yeah, it's a process. They're getting there slowly but surely. I mean, they already had a very good first game, right? Sure, no chicken dinner, but you don't really need it every time. As long as you can convert those eliminations in an 18-team lobby, you will get in a good spot. And that's why I also have high hopes for Africa. Like, they've got their first PMPL this spring season. Next year, I think there's going to be like a little bit of lack of international event experience. But in the long run, Africa could be a top contender. And you bring up teams like Stalwart. I mean, they've basically put Mongolia on the map when it comes to this kind of esport. It's extremely impressive to see how they're able to play things out. Blank was mentioning it during the cast. All of these guys are very capable of individual brilliance on the battleground. And you can't take anything away from it. The fact that they were able to come in on the south side of Rozhok and not only take some of those fights, but then also be able to transition over the road, which is normally where you lose. That's where you, if you're trying to come in against that circle, that's where you end your campaign. But they didn't. They continued on and continued to provide some moments here in this game. That's impressive. Well, you're talking about individual performance, right? And individual glory and what they can do. Speaking of individual performances, if you guys haven't noticed, every, I think, LAN event we have on a global scale, we always have a certain man, the director of PUBG Mobile Esports, James Yang, to talk to us about the future of PUBG Mobile Esports. And luckily for us, we have him once again. So we'll head down the stage and take a listen in. Game development पे fix ध्यान दो साला. Hello, PUBG Mobile fans in the world. I'm James Yang, the director of PUBG Mobile Global Esports. ताली बजाओ भाई. Director साहब आए, ताली बजाओ. I would like to say personally how incredible it is to talk to you all in person. It's too far long, as we all know. I'm here today to share the exciting details about 2022 PUBG Mobile Global Championship and more. Stay tuned until the end. Okay, firstly, I'm happy to announce that the 2022 PMGC Grand Finals will be a major offline event in Indonesia in January. ये ना बोला था जेम्स यांग कि भाई साहब मेरे को प्लीज डायरेक्टर बना दो. PMGC League will begin in early November and it will run for 4 weeks to determine the teams heading to Indonesia to battle for the crown as the best PUBG Mobile team in the world. An incredible 48 teams. The best of best teams from each region qualified through the year. The most ever in our offline event will join to PMGC League. The top 13 teams will take their place in Grand Finals with 3 direct invites. As well as PMWI, Sony's Xperia will be the official smartphone partner for 2022 PMGC, ensuring all players are able to perform at the highest level on the biggest stage. Call of Duty का भी Xperia नहीं किया था. And that's not all yet. I'm excited to talk to you about a new competition. Wow, let's go. PUBG Mobile Regional Clash. Wow, let's beginning go. Beginning next month. मजा आएगा. The PMRC is focusing on pitting different regions against each other, beginning with PMPL Southeast Asia versus China. PEL. You never want to miss it, so please follow us from September 22nd to 25th. India also होना चाहिए रे. It's a time to go back to enjoy PMWI. On the circle. Thank you. हाँ चल निकल. Finally भाई finally.
The only thing I'm disappointed in that is that he's not doing more martial arts for us, because that was always my favorite part of James getting and having a chat with us about PUBG Mobile Esports. But fantastic to see as well. We've learned a little bit about PMGC, going to be in Indonesia here in January with the 4 weeks in November, the regional clash as well. Max, I know you had your eye on. I mean, it's going to be great to see a lot of the Chinese team from PL actually playing versus the SEA teams, right? Got that rivalry happening all the time. So, I mean, normally you see in these international events like 1, 2 teams from PL. Here you're going to have like half of the lobby PL teams. Like, that's going to be pretty insane. Yeah, we mentioned it before, but I mean, two regions that have excellent teams at the very top. So to see them kind of clash and just make this mega lobby, I think is going to be very exciting. Well, by the way, if you guys didn't know, remember I taught you all at home about different prizes you can win, different ways you can win. We do have a meme contest currently happening. So you need to check out, Instagram and Facebook stories for fan-made memes. You need to make your own and post them over on your own page, and make sure to tag PUBG Mobile Esports as well. And there will be some winners picked out with some lucky prizes. I'm not going to say exactly what they're going to be, but they're good. You're going to want them. Trust me on that one. And speaking of memes, I mean, Max, you are the meme master. Maxman meme master. I was a meme. I was good, yeah. Speaking of memes, Max is a meme. Continue. Go on. And what was your question? I went completely off. There was no question. Oh, okay. It was just like, okay, I'm a meme then. Okay, cool. Yeah, I mean, memes are good. I want to see them posted on social media. Maybe I'll share them. I mean, we did have a phenomenal couple of them back in, was it PMGC 2020, of how to beat Bigatron. A1 Esports was a big proponent in how to do that. Maybe we'll have to revive some with the Indonesian. I mean, for here at the event, we have the Indonesian talent, we have the Arabic talent, we have the Turkish talent, so we have some things lined up potentially to do all together for some fun little things. Pretty much updated version, I would say. Well, pretty much it's going to be all of us with Max in the center of a circle, and all of us are going to make fun of him and be mean to him in different languages. Yeah. Point and laugh, guys. Okay. Don't do that. Jason will. He will do that. We have to do a crawdad dance in the middle of the circle. Actually, game खराब गया, but actually खेला उन्होंने यार. I mean, there's a lot of potential for it. What's up, Cloris? You look at me like you don't know what's happening. I'm enjoying myself. Okay, well let's enjoy ourselves by talking about maybe some other teams. Any other guys you want to talk about here that we didn't touch on, either at the top of the show or in that last match? I would have to talk about here, I would say Wildcats, right? They had some good intention when it comes to their rotation. As we know, they dropped like a Sanhok.PM military position around the map, and it was like a tough circle afterwards. You had to go for the wide rotation up north. I think that there was some good intention behind it. The execution was maybe a little bit all over the place, and I think that for them dealing for the first time with this type of lobby, they have to adapt a little bit more. But the idea was there, in my opinion. For me, I'm of the opinion that Military Island is a bit of a dead drop. For Stalwart, they've got the absolute world class to be able to negate quite a bit of that. For Wildcats, I'm a little bit concerned if that's going to pay dividends later going into this tournament. We'll see, based on playing paths, based on drops as a whole, and see how that's going to go out throughout the tournament. But I do have my concerns there. Okay, well, I mean, obviously there's another region we haven't really touched on, unfortunately, because typically we've seen in the past couple of years they can't really compete when it comes to these global events. Back-to-back, the team from North America, they have been able to win the MPL back-to-back, which is a great sign. But the unfortunate, or not unfortunate part is, but the fact is they need to show what they can do. I would love to see them do what they can, or show what they can do, because I'm American and I would love to see them do well. I mean, it's been proven that they can dominate locally, like when it comes to their region, they can do just so well. So I'm hoping we can see some good representation from back-to-back, but it's going to take some time to get there. All right, well, speaking of getting there, we're going to be getting to the second match of the day here momentarily. We're going to be heading over to Miramar this time, which is going to be quite interesting again. A bigger map, so we have obviously more teams. Maybe that's going to facilitate them a little bit more. But I know while we were watching the last match, we were quite surprised by how many teams were still left alive, how late into the match we actually got into over on Erangel. But speaking of getting over to, let's head on over to John on a blank once again to kick off our second match. Thank you so much, Jason. We are ready and raring to go over on Miramar. It's going to get a little bit hotter, maybe matching the temperatures here in Riyadh. It's been pretty hot for a couple of Brits like us, eh, Blank? It's even the walk from the shuttle from the hotel to the event here is absolutely boiling. It is pretty intense, I'm not going to lie. I've stepped into the world of it, and I'm sure some people really enjoy it. I actually did enjoy it I enjoy it for the first 10 minutes each time because it's the driest heat I've ever had, so it just feels like having a very hot aircon going on just everywhere. That's actually just wind and the sun.
natural. That's just how things work. But some of these teams have been finding things very natural in games so far. Vampire looks like this is just second nature to them here in the PMWI, just taking names and taking those elimination points home for themselves. Here on Miramar, though, just looking at a couple of the drops so far, El Pozo as well as Picado are absolutely stacked in terms of teams that will be dropping here. You've got REGAN.S, Box Gaming, and Aton Esports all dropping in Picado together. El Pozo got Damwon, Donuts, and Nigma Galaxy. So one of these teams is going to come out on top in those specific locations. We'll just have to find out who. El Pozo a little bit late on this drop path at the moment, as we are. We've got a secret sneak peek at the plane path here, Blank. Don't tell anyone, all right? Keep it on the down low. But El Pozo will be a little bit later on that progression for these players. Maybe could affect the number of teams that do opt to go there fully, but then again, maybe not. We were talking a lot about how teams want to hold on to what they've got. It's only going to make a difference if they make it or not. But we're going to go into Miramar in game number 2. The plane takes to the skies over the desert once more. So immediately heading up here, Los Leones can pick up a lot of these teams in this current playing path that we will be seeing on your screens very, very shortly. And I feel like I'm telling the future right now. That's because I absolutely am. So a couple of teams could drop it towards Los Leones. There's not too many teams that I've seen so far that have been dropping in Los Leones exclusively, but that can hold at least 3, which will alleviate some of the problems, especially with Miramar being such a large map anyway. We head into the game. You can see now the plane path that we've been seeing from the southeast side up to La Cobreria. Seeing where teams drop out. And of course, the first time this is going to be played at the top level with 18 teams. Keeping an eye on those drops like a hawk. Absolutely. And with 6 of these teams dropping exclusively in Picado and El Pozo, honestly, everywhere else that teams want to go to should be absolutely free. So just looking at this one in particular, Impala for Wildcats, this is a place that they love to go. They're already dropping out in that location already. So this seems fantastic. You know, honestly, I've seen a fair few matches from Wildcats as well where playing path has been absolutely diabolical for them going to Impala, yet they still go to Impala. They love it there. So this is a great start for them here on Miramar. And perhaps, you know, maybe they can shore up some of those issues that maybe they had over on Erangel, where things just really did not go their way versus Stalwart. Puerto Paraíso currently being held by VGS as they dropped out really very early. Damwon Kia headed further southwest. I imagine they're going to be moving over towards Minas de Bahia, on that southwestern edge. But Box Gaming and Team Seoul look at a clash in Picado. Only 2 teams at the moment in very close proximity in this location. Neither team yet taking a knock. But look at that, very forward position from one of the players from Box. I didn't quite catch the name there. But they are absolutely in the lion's den amongst Seoul. Bensu, with players all around. Omega on that outskirt. Has the back fall out for Bensu. Has a vehicle, sorry, not a vehicle, a weapon as well in hand. Do they know that there's a player here from Seoul? Bensu, Seoul का Bensu है वो. Picado can Seoul का Bensu बोल रहा, Box का Bensu, Seoul का क्या बोल रहा हूँ मैं? But you do have to be constantly on a swivel here, John, to make sure that no one's creeping up behind you. Box Gaming, very certain on positions that they want to hold around this map. Already with a very heavy-hitting weapon, which could be very dangerous should it come to close quarters with these teams inside these compounds. But it would look like REGAN.S as well as Aton Esports have dipped from this location. You can see REGAN.S on our screen, at least on the map feed. You got DD as well as one other player in Los Leones alongside with Aton Esports, actually. So this is very, very interesting. REGAN.S have north and Atons have south side of Los Leones. So this works out exactly what I was talking about earlier, that Los Leones is massively free. And it looks like REGAN.S and Aton happy to not go Picado, not go to that usual position, and instead take a safer spot here towards Los Leones. Really just a bit of a standoff for Team Seoul and Box Gaming right now in Picado. They have extricated themselves from one another, although Bensu's still close by. A couple of shots have been landed as well between the 2 teams, but of course it's not just the teams that are going to be getting stuff done here. Of course, you have the opportunity to get the gun skin and outfit for the PMWI from the 4th
to the 13th of this month. 50% off PMWI packs, and you can get a set straight away with that, as well as 5 chances to draw PMWI treasure chests. And if you can't take advantage of that, next little sale period we do have is from 14th to the 15th of September. So that's 14th this month through to 15th of September. That's 16% of PMWI packs, and you get 6 chances to draw those PMWI treasure chests. So make sure you are getting on that early to reap the rewards, but if not, there's still chances ahead of you. And of course, you can complete daily missions to earn points, and once enough points are accumulated, you tap on the rewards icon to claim the corresponding reward. Oh, Akshat. If you want to participate in the event solo or team of other players, that's absolutely fine. I guess Akshat ko idea nahi hai kahan hai wo. That could give you an extra little chance and make the reward to get a little easier. So make sure you tell all your friends about it and get them on board. Goodness me, it looks like Bensu and they're mates. I don't think so. I do not think that they will wait 1 second after seeing one another to try and make it all the worse for them. To stand off. Soul has backup though. If Akshat's waiting for a team, those are his mates, right? And so if he pushes in, whilst he has that backup, he could trade it off, right? That's what you're really looking for. It's the value of a team. You saw Hex there on the sidelines as well, with a nice vantage point to get an off angle. Watch for those players pushing around that flank side. We hop on board with Nigma Galaxy though, as they are vibing on around in El Pozo, the only team to actually drop up there. Yeah, so this is the one that we were curious about. USG, for Donuts, were very, very hell-bent on taking Rozhok on Erangel, but they have given up El Pozo. You know, happy to give it to another team. You know, Nigma Galaxy, they took 2 points from a coin just this one time, instead heading up towards El Azahar on that northeastern side, but no one else is here, so it's a very viable drop for them. Looking at down 1, who also another El Pozo team, they're down towards Valdemar, so they'll take that up on the western edge. They will have to contend with back-to-back, who do love to go for a southern rotation, but it's TJB coming in from Chumasera to ruin their day. Yeah, they take one of the players from back-to-back down. Early scouting, losing a player, not ideal on Miramar. But sadly, it's the risky run. Team Soul looking to put the pressure onto Box. This is a fight. The initiative is being taken by Team Soul here, Blank. They are choosing this fight. They are making this one happen. Box Gaming looked like they were content to sit back a little bit. Maybe it's a strategy. Maybe it's aggression through passiveness, right? Allow them to move to you. Allow them to make those missteps. Well, way back in day, it was always very hard to break the box formation. That was always the very, very difficult thing to get through. And right now, Box are happy to just sit in this building. Now, back-to-back, just quickly going back to that last fight there between TJB as well as back-to-back. They actually really struggled with this in the finals of Spring 2022. Is that on Erangel particularly, they would send one scout out and lose that scout very, very early on, dropping them down to 3 players. Already, this is becoming a problem here on Miramar. A lot of these other teams keeping it very, very tight, but Bensu finds one of the players trying to slip through the cracks, but that's not going to happen. The box formation is tight. It is absolutely on the ball. Really, really nice stuff there. Omega a little bit too far forwards. No backup really from Team Soul on that angle and a nice opening. And look, Box Gaming move forward. They re-establish that perimeter. They reclaim this territory. There is a sideswipe potential for Team Soul if they get that spot, but there's a backstab. Morpher here over the hill, and it's just Frenzy for the time being, but he has reinforcements coming from the north. Break looking to put this fight into gear now as Team Soul are on the back foot. Around the side, the reload needs to come through. A lot of damage to Bensu, but it's not enough to get the knock. Break, however, finds Goblin. Akshat now flagging for Team Soul. 3 players alive for Box as they've lost 1. It was actually REGAN.S from the western side that took the knock onto Box. And this was the team that originally liked to play Picardo on that southern edge. And they've just taken a little bit of time in Los Leones, sweep back up here, and ready to reclaim Picardo for their own, knowing that this was going to be a hotly contested spot. Most likely 2 teams locked together. And now they're going to take advantage of this. Very good for REGAN.S. So, really suffering under this pressure from Box Gaming. 3 elimination points already found. Losing 1
you feel like you're going to take that for now. I feel like that might lay claim to Picardo for them in the future Miramars that we're going to see. If they're lucky, we'll see if Team Seoul want to try and vie for that again. But as you say, RSG, Morph, both moving in from both sides of Picardo. It's a bit of a squeeze going on here, but it does seem like China is really trying to take a nasty little split. You can see it on the screen right now, where it's just coming down from the hills in Picardo. 52 Esports have taken up there right on the western side. I believe that is to Nigma Galaxy. So Nigma Galaxy trying to pick up some more points. Ralph, though, right on the eastern side, he's looking for a compound for the rest of the team to stay, but they're busy with 52 Esports right now. Looks like 52 Esports are just going to try and keep moving down south. You can see them all mounted up in those vehicles on that western edge. VIVO, the central focal point of this next circle, just a little bit further out east. It's good for back-to-back right now, who have a lot of that sort of area, despite them losing a player early. If TJB, with GK first moving in there now, can take position there as well on the eastern side, TJB will also be in a phenomenally strong spot. So back-to-back able to regroup just a little bit here in there. And it's so unfortunate because we really are dropping into their original drop spot right now in Monte Nuevo. I don't think it was necessary to send one down south, but this is something they've done before. I think with 18-team lobby, it's not so wise anymore, taking those ridge lines, because there's going to be a lot of teams there. It's not as safe to be dangling one of your players down on the south edge of the map. VGS trying to make their way up behind teams like Dam1 from Valdemar. They are just neck and neck here with TJB. You can see them on the screen. Dam1 Kia trying to find a little place to call home. Dam1 Kia moving up from the south side. Being positioned on now. A lot of scouts, as you were talking about, getting picked off, right? It seems like so far we've seen 3 one-player losses or box gaming, to be fair. That was in a compound fight. So 2 scouts really being picked off right now. 52 and back-to-back, both losing one of those players. We'll see if that comes back to bite them. Both of them a little bit on that western side. I mean, you've got certainly a lot heavier in there, but they're moving in on the northwestern end. Just about lives here for Falcons, but will be knocked by missile from USG. Makes it happen, looks for some more, but it is an off angle coming through from Falcons. Here on the home turf, trying to keep the rest of their team alive. Needs to choose who to display the flank to there to get the heal off, but Missile stays alive for now. Yusuf trying to get those shots in. Mikun behind cover, takes the spray, but doesn't land more than just the one, just a tickle, and needs to heal up as well. Yeah, Omikun just has to walk away from that one. Falcons able to send them back just a little bit. They're still both on this northeastern edge. 4 rivals moving down as a 2-2 split between El Pozo as well as Crater Field. So they're trying to get a lot of information gathered nice and early on. Vampire Esports coming down from Puerto Paraíso. They're heading towards Minas del Valle. Honestly, they're going to be moving up through Chumacera in a second, but they've opted to stay outside of the circle and in the blue to make sure no one catches them on this long rotate. थर्ड पार्टी में जाके हेक्टर ये कर सकता है थर्ड पार्टी में घुस के थर्ड पार्टी करके किल्स ले सकता है अपने नाम पे जो भी नॉक्स बड़े होंगे on a line. Forest, okay. Trying to keep their position safe. South side is the Vampires. They've yet to push on in, yet to start the frag fest that we saw from them last game. The question is it repeatable or is it an Erangel special? Let's go. Is it an Erangel special? That is the real question here. John, Nigma Galaxy is still central at the moment. They're right in the middle there, just a little bit further north. And in fact, the circle does shift down a little bit further south. And they will be looking to move with that circle. Right in the middle of it, TJB. They have absolutely slap bang center circle right now. Dam1 Kia, who have been waiting in the wings for their position for a while now, are going to be looking to push on in and maybe try and take control of that central area as well. Yeah, they're looking to pick up that central area at the moment. Back-to-back moving down at the moment. Nigma Galaxy taking a little while to head into this location, but we are really
getting a little bit tough with all these teams crunching up towards the middle. सारे teams actually safe ही खेलना चाह रहे हैं. Wildcats, though, coming from Impala on the eastern side, moving through Chumacera at the moment. Soul with just one player remaining. Hector, Box still yet to break away from Ricardo at the moment. It's a bit weird, but it's Stalwart actually moving down from Power Grid, just behind Keyed Esports. I mean, maybe, you know, Box Gaming, they're playing with 3 now. They're just going to try and take things a little bit slower, play that edge, potentially. I mean, it's a difficult position, right? You're playing with 3 now. You've lost that ability to really scout as effectively. With more players, more rotations becoming dangerous, you're not really willing to take those chances, potentially. But they do actually strike out. They move down southwest from their old position, leaving Hector in the dust, and they take that eastern flank of the circle. Not a bad position for them to be in at the moment for Box Gaming. Obviously down to just 3 players, but 3 elimination points. You'll take that any day of the week, especially here on Miramar. Now, what really can't happen here with a lot of these teams, you know, is Vampire Esports. They know that they're being headhunted right now. If they start to get ahead once again in this match, it's become extremely difficult for a lot of these other teams to start catching up if they continue that momentum going forward. Right now, though, they are really squeezed tight on that southern edge, just around Chumacera. One of the team in Wildcats coming in just behind them. Schweppes from Vampire Esports, though, will have the bead on Wildcats, where the rest of the team in 3 are just ahead of them towards the north, so they should get info on this nice and early. Almost open में 3-1 split. 2 knock easily मिल सकते हैं उनके नाम पे, and यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दिया स्ट्रीम. इनका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. मैं नेपाल का स्ट्रीम देखो क्या? Actually बहुत इशू हो रहा है. 1-2-1 split from Vampire Esports. इंग्लिश वालों का. सोचो भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप तुम लोग ये कर रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो, and certainly that would be the evidence from the last game anyway, and it certainly worked. Another look at the map here. It's just getting real struggle bus. And, you know, I did not expect this whatsoever, but we still have 18 teams. Vampire Esports, though, Schweppes in the back line. Stays alive, but it's Wildcats who are taking shots, and this is the info that Schweppes is able to provide the rest of the team. Next circle, pops in, heads down south, so Vampire Esports still very happy. Looks low, does hit the shots onto Schweppes, will take him down, and that is Vampire Esports down to 3, but there's still more shots along the way. It's Fluketh once again. Really solid backup there. The off angle's perfectly found. Heals needing to come through from the Wildcats, and they are yet again suppressed on this ridgeline. Really, really difficult, but Vampire Esports looking to potentially be down to 3. They've lost their Schweppes on the outside there. They will be at 3. They had 4 in that previous game, but the circle moves. I mean, if they get another circle shift, though, they are in a real safe spot. Like, look how hard it is to approach these buildings. The only issue they might fall into is without those 4 players, it does become a little harder to pick up on all these angles. Again, though, Aton Esports is their difficulty going forward, and it looks like Vampire Esports know that this is a position on the map that they need to watch out for. Really good stuff from Fluketh. His shots have been on point. He's been looking all over the map at the moment, really keeping it clean here for Vampire Esports. I mean, that was one of their characteristics of the last game, right? Snapping engagements, I think you said, on the desk. Making those clean engagements. That's exactly what you want to be looking for. Even better on Miramar. Damwon Kia still struggling to just find anywhere that's super concrete for them. It's on the edge of this hill at the moment. 52 Esports coming into play here. Nigma Galaxy. Players, I can believe it was Hamodi, did go down here. They're just trying to get down through the circle on that northern side. Looks like 3 of them are down. They're losing players left and right. Nigma Galaxy suffering heavily. They had not the best of starts, losing 2 players early in the last game. The first team to go down, in fact. I think it's just Freak alive for them now. At the back as well, not really a chance to get these reses. Going down first twice in a row, not the way you want to start your tournament. Certainly would be a disaster. Team Soul, though, seem to be survivors. They were on 1 for the longest time in that first game. And out they go, yet again. First team eliminated. A miserable start here for Nigma Galaxy. Really not fun. But you know what, John? There's still Sanhok ahead for them. And honestly, that is the map where they prevail the most. They know how to survive. They know how to get it done. But there's more frags on the hillsides as Donuts USG
looking to move up past 4 rivals, and only Jumper can stand in their way now. 52 as well in the back line. Let's go. Proving to be difficult to deal with as Jumper spotted away. I don't even know who that was, but Morph took him down there. Morph drop a nade right on top of one of their own teammates, but they take an enemy down in the process. I'm not sure if that's worth it at this late stage. 17 eliminate. Damwon here, though, you see, they have just been keeping an eye out all over the place, and this ties right back into what the Des was saying at the beginning of the day. They are a survivalist team. They're going to try and see how far they can get, but 52 Esports still trying to lay claim around this area. And which type? Short the Atom B, Atom plus Mikey volume increase. Oh yeah, absolutely, to be fair, absolutely. Damwon here, they lose for us on the hillside, you're not going to be able to get him back up. Daku spots Sung as well. Struggling to survive. Fabian and Junie though, a formidable duo to be sure. Fabian takes half HP, but excellent backup coming through to be able to shut that one down. Vaz taken out there. Once again, I think he still has the DBS. Yeah, it's Korean metal. All of them use it over in the Korean PMPL. It's pretty insane, but they make it work massively. TJB take hold of a compound, eliminating back-to-back from that stronghold. They've had a central position for quite a while now, and they will have to move a little bit further south at the moment. Looking at RSG with that central, with pretty much one of the few compounds in this next circle plane. This is very unfortunate for the team from America, struggling just a little bit here in the PMWI. Stalwart, though, looking for another consistent game here. That's what I want to see from Stalwart, and we could get some more hope into this team. Action, though, coming off the top and just descends upon VGS. Like we've seen nothing before. Goodness me, swoops in. Talents are strong and sharp. There's nothing you can do against them. They should be able to get everyone back up as well, so a full force Stalwart, definitely something to worry about. Pain. Run down there after the knock. Down one Kia mover. Daku pops out the window, spots Fabian. Needs to be worried about the teammates from the off angle though, but finds the cover from the shack. Through the windows, the bullets pour in, and it's going to be a tall order to get anything done, but Fabian goes down. In the meantime, 52 are eliminated, however. That will slow down Damwon Kia on that northwest flank. Yeah, TJB have been harassing this team the entire time, and they might just have to leave Fabian behind. Lin moves up, tends to be the first player to move up a lot of the times for TJB. Sometimes it goes wrong, sometimes it goes marvelously. It's hard to say here with Lin. He's really kind of shaky as a player in terms of being extremely good, sometimes just not so great. Volatility, that's really characteristic of his gameplay. Sung and Junie, 2 players for Damwon Kia. Wildcats under fire as well from Falcons. They're trading 1-for-1 right now on the knocks. X-Ray definitely resible here. So is Yusuf. Very awkward playing field for Junie. Pulls out the DPS. Lin goes down, but it's TJB. They bring it back nicely there. Though I would have been very, very scared of the cracking sound that DBS makes as he comes around the corner. And that's why the Koreans take it. Just those singular moments where you can surprise a team coming through. Unfortunately, it wasn't quite enough to see Damwon Kia safe. TJB Esports EU able to put that pressure down. Get that res on as well, get themselves back to 4 and move down south further on, but Falcons from the sides, only Powerful getting knocked, and they are fragging out. The Wildcats cannot stand up to the pressure, but they're now under fire from TJB on the north side. Doesn't matter though, they are absolutely cool, calm, collected. Wildcats taking shots every which way as well with their last player X-Ray. This is a real chance here for the Saudi Arabian team. They're close to the circle as well, but it's STE who's ahead of them. That's the difficulty. Aton Esports, though, keep taking casualties on this southern edge. Falcon Esports really do need to start thinking about making a move, but they've got to figure out where the other teams are. Falukov somehow keeps moving down that hill with the quick feet in action, but it's not enough. Ravenclaw able to do the job, able to get it done against Donuts USG. The off angle still dangerous. This should be completely broadside for Bruno right now, but I don't think he's taking that position. I don't think he's pushing up. He knows that his position's known. Maybe just not going to peek it. Not going to take that chance of Vampire up to 2. Falcons look for the crash.
into the compound. Stalwart are here, RSG are here as well. As Aton do lose that last player, RSG suffering now under pressure from Stalwart. This is terrible timing here for SDE to try and claim this building that REGAN.S are currently in. Falcon, they just come in there at just the right time. Fantastic stuff for them. Laying in the utility. REGAN.S already finds a nade over the top and never alone. It's on to Pika. The util is coming in clutch. The nades coming through from Falcons as well for the third party. They're going to be able to take hold of this compound if they keep going. Phenomenal performance on this crash from them, but TJB have oversight. It's difficult to handle now. It's difficult to stymie that pressure. But they will try and lock down those angles. Only action in the compound. This is what I said for Saudi Arabia. They had to move right now into those buildings, and they took that call, and they made that call in the moment very, very quickly. Dropped the utility in, and STE and REGAN.S completely blindsided by the absolute decimation that was laid upon them by the Molotovs, the grenades. Even I saw smoke get thrown in there as well. Look at that. The replay there from Ravenclaw as well. Phenomenal. A duo for Vampire Esports. 7 elimination points. Looking to take out the Wildcats as well. It's only X-Ray. TJB have an angle, potentially onto Ravenclaw, but he's just storming forwards. Shut down as the nades go long, but Fluketh in the back line, stung in the back as Tinksker able to handle the Vampires. Van Helsing rides. Good stuff here from TJB. Keep it very, very steady on this hillside. Wait for the players to reveal themselves before they do lock in the action. And now it's them looking across the way at Falcon. It all depends on this next circle. Falcon would love for it to end on them, but they have to move. This is horrific. But Stalwart, though, action still in it. He's ready and waiting in the wings. I don't know if Falcon knows if he's here or not. 6 elimination points, third place guaranteed. Stalwart again with a consistently good result. That's what we're looking for from this team. That's what we want to see, and strong elimination points to boot. Fantastic stuff. But right now, as you said, it's between TJB and the home team here in Saudi Arabia and Riyadh. Falcons. This would be really difficult though, because TJB, you know, they can't lose any of these players they've sent to the edge side, but this is a very strong split that they're currently employing. It's going to be difficult for any sidelines not to be open to these guys when Falcons do start to move out of this building. So really, really tough stuff. Action just needs to hold his ground, stand his ground here. If he wants. And talking about TJB Action को अगर spot करके मार दे सकती है, but Action इतना पागल नहीं कि जो बाहर आके ये करेगा. Trying to suppress those angles. There's the first angle. TJB have such good spray over there. Action I know what Falcons are trying to do here. They're trying to get rid of Action, but he is just throwing him for a loop. Takes so much damage, but finally goes down to Never Alone. So they do secure that second place. Great stuff from Falcon. Now they need to fight back. No answer towards GK first. Never Alone taking heavy tick damage from the blue. Down to 3. Damar gets res. So Yusuf and Damar, a duo in the forefront. But TJB storming down this hillside, nading through the window, putting everything under pressure, putting Falcons to the test, and second place would be a good finish. They wanted first, but it was not to be. TJB moving through the building, through the window, and it is TJB with game number 2 on Miramar. Xiao coming in as a new player here as well, stamping his mark at the end of that game and delivering themselves a nice chicken dinner beautifully through the post there. Well done to that team from TJB representing Europe, which is happy days for us, right? But honestly, TJB, fantastic stuff. Really, really good split at the end there just to eliminate any angles that Falcons might have taken. But again, big, massive props to Saudi Arabia from Falcons in those last moments to be like, we just have to hammer everything home, taking down Action here in these final moments because we want that second place. We deserve that second place. I mean, the Falcons weren't able to claim it. They did really quite well. TJB, they got that circle shift. I think circle 3 or so, where they were right in the middle. And they then had to move down from that northwestern side. So happy days. Yeah, massively so. I think TJB, they were on that western edge for a long, long time, but slowly made their way in. It was a little bit rough, but they kept absolutely everyone just floundering for answers to what TJB was doing. Well, that's going to be it for game number 2. We're going to head to a short break, and we'll head back over to the desk. इन्होंने क्रॉस किया था ना जब उसके फैल्कन के प्लेयर ने क्रॉस करने गया और उसको जो स्प्रे से मार दिया जोन भी ऊपर से प्रॉब्लम का ये दे रहा था दैट्स व्हाई फैल्कन लॉस्ट दिस मैच
अगर लाइक जोन ज़्यादा स्कैम नहीं देता और उसके एक प्लेयर ने क्रॉस नहीं करता ना, जो क्रॉस करते करते मर गया था, तो मे भी फैल्कन्स जीत जाती। और उसका भाई क्या रश किया था प्लेयर ने, ज़ियाओ का जो रश था ना, मेरे को बहुत पसंद आया। फास्ट आया ज़ियाओ ने भाई, अच्छा डिसीजन लिया, मस्त एकदम कूद के पकड़ लिया उसी वहाँ पर रश करने के लिए। वो लाइक पूरी सालों तो मैं मारूंगा फाल्कन का लास्ट प्लेयर वाला भाई थोड़ा पैनिक। फाल्कन का जो लास्ट प्लेयर था ना, वो बोल रहा ना, बहुत पैनिक हो गया। फाल्कन का लास्ट प्लेयर भाई क्या हो लिया, क्या हो गया, वो तो पैनिक में गया, स्कैम हो गया उसके साथ। बहुत गलत चीज़ हुआ फाल्कन के साथ, कोई बात नहीं। सेकंड है वो लोग। Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by how. अंदर भी निकलने का ट्राई करता ना, तो ये लोग मार ही देते उसे। All right, well, TJB taking a win here for Western Europe, and a win that Kalaris himself predicted. He saw the zone go their way, and he's like, TJB win these. And they did. And it was good. मेरे को लगा था TJB, क्योंकि मेरा prediction क्या था? Anyway, we have ourselves, yes. मेरा prediction क्या था कि I thought कि you know action Falcon के एक दो players को knock कर देगा, वो खा भी सकता है वो, but वो पीछे ही चला गया, नेट से मर गया. Having that Tribusera split gives them a great opportunity to find themselves those nice high ground spots to be able to stage their play. And they do traditionally. We watch them in these circles. They win. ऐसा तो नहीं है ना BJP actually. ऐसा तो नहीं ना. No one beats TJB, right? Also, they saw that third party happening. They saw Falcons get involved into the fight. Like, this is prime opportunity to start gatekeeping teams now. Like, if we take the perfect angles, no one's going to be able to escape it. And if the circle comes our way, it's GG. And in that case, it was. All right, let's take a look at our STC match rankings, get an idea of how many points they got, as well as the other teams out there. And 27 points. It's good. But then you look at the first match, like, I'm not as good as Vampire. Stalwart's guy, I mean, Stalwart's good. Vampire 7. I'm not mistaken, Clark did say Vampire 13 मिला है. Vampire obviously leader board पे ही रहेगा. Soul, yes, Soul. क्या हो गया बड़ा Soul के साथ? Soul कुछ 12th पे eliminate हुई थी and with 2 kills. अभी दिखाएंगे ना वो लोग. Soul का elimination कुछ 12th position पे था with 2 kills. Vampire obviously top पे रहेगा. Vampire का ये करने का जरूरत नहीं. Vampire obviously top पे रहेगा. उनका जो चल रहा है गेम बहुत अच्छा चल रहा है. Stalwart as usual, Stalwart second रहेगी maybe. And TJB third. Soul will rise. Yeah, sure. Soul का actually एक scam हो रहा है यार. Soul का थोड़ा सा ना scam हो रहा है. But don't worry, Soul will come back यार. Soul come back करना चाहिए. Yeah, first place by far. TJB third होगी, and then we are seeing what Team Falcons Donut, doing well in match 1 now, and match 2. Team here from Saudi Arabia, Stalwart Esports as well, yet again able to get there with 16 points. Even Vampire down in 5th. And you look at Donuts and 8th. Vampire Esports, okay, we're talking about Vampire Esports. I understand statistics work, Sean. Don't worry, don't come over here and yell at me. But we are seeing some consistency start to show. But the divide in terms of the top heavy total points with 7 elimination points. TJB Esports is got 6 elimination points there, match 2 में.
huge. Anybody sixth and lower here in this lobby, 6 to 18, really didn't get much to their name here. Over single digits, under 5 points as a whole. It really shows that everybody in that top 5 had great advantage points second होना चाहिए था, but never mind क्योंकि previous match में ना TJB का कुछ 13 में ये था, so I don't think कि TJB second होगी. और पिछली मैच में Stalwart के third थे with कुछ 3 points happening. I think that's one point you brought up, Kalash, while we were watching that game. Is that RSG did not go for like one of their main jobs they go, which I think is 7th Picardo. So teams are still like trying to bring different things to the table. And I think we can expect more adaptation as we go on. Yeah, adaptation is definitely the word for it. I think what we'll see from RSG is a slight change. I mean, they got the first 5 points and they're kind of in that kind of mishmash of kind of, you know, everybody getting that 5 points. But they can get themselves even more, I think, is fair to say. Highest damage fluke. Normally they drop grenade elimination भी fluke. Let's go. Split south of Picardo, but they were actually going for 1 person there and 3 people up towards level 14 kilometer travel किया मेरे भाई. They can go back to that south Picardo split and I think have much more success. 14 kilometer travel किया most elimination. That's what obviously by TJB का player होगा most elimination. Okay, we're going to go right for that spot. And if it works out for them, they could find some chicken dinners over on Miramar. We are seeing, look at this fluke, highest damage, grenade eliminations as well. Remember, we do have, was it $5,000 for the player with the most grenade eliminations throughout the event? I don't remember the exact number. It is a decent amount of money. I'm going to be honest, at this point, it might all go to vampires. Every single penny of it. In terms of, if you get 52 points. Now they're all going to be playing Orm for the next one to get the Eagle Eye. It's ridiculous to see them get that many points in just 2 games to start. Brought to you by Sony here. We're going to take a quick little recap of what all went down. And of course, TJB is going to start things off here. And why wouldn't it, considering they took home the chicken dinner? I mean, it's home territory, right? Location. If you do TJB, they're going to be lurking in the shadows, ready to strike at any opportunity coming their way. So, ये जो rush था ना, ये awesome rush था actually. Like, okay, let's be a little bit careful around that. Wildcats, भाई इसकी मॉली बहुत शानदार है, बहुत actually मॉली शानदार है. It's kind of like the circle came to them, they really didn't have many people rivaling their positions, and then they kind of win. In this game, that wasn't really the case. There were a few breaches on the position that they had to defend, and then once they realized that they have command over the circle, as you were mentioning towards the end. बाकी बात कर रहे हैं TJB का, about TJB, उनके पास जो top था ना, उनके पास वो best था यार. क्या top मिला था उन्हें? Falcon के players ने actually ना इन्हें smoke करना चाहिए था. Yeah, I don't like ऐसे घुस जाते भाई, क्या यूज जाएगा हमें क्या पॉइंट देखेगा. और जो इन्होंने 2-2 का स्प्लिट खेला ना, TJB वालों ने भी अच्छा खेला. भाई ये मेरा काम नहीं है ये सब के लिए. But I don't like using the word impossible, but I think in this case it is Seoul, India, yes, for Falcons to get out of that situation. It's just how good the lockdown actually is. And it's great, like West is not a region we usually know as great when it comes to international. They get with chances or advantage. I'm hyped to see if they can continue. Obviously उनके पास top है TJB वालों के पास. और जो नीचे के जो दो players उन्होंने right में भेजे थे ना, वो best position था वो वाला. और इनके हो गया प्रेशर फाल्कन वालों के ऊपर. वो लोग ना स्मोक किए ना कुछ किए, ऐसे ही घुस गए. दे आर लाइक भाई हमारा ये सब कुछ ऐसे ही घुस जाते हैं. I think that's why you saw them kind of tanking the blue as well, realizing it's probably not realistic for us to fight our way out of this. Maybe just try to deny some points, because again, it could come down in the very end. We've seen how many kills now, how many events where like 1 or 2 points would have got you double the prize pool, or like 10, 20, 50 already हो रहा है, देखना है already हो रहा है, देख pocket, and it could come down to that. तेरा दिमाग खराब. Just half a minute. Easy money. Just like it's day rate for Colaris. Hey, that's my joke. Okay, I have to say, guys, I appreciate that you both think I'm extremely well. Goblin 0 kill. Let's go Team Soul. Kutta वो चल रहा है तो कुछ और मत कर क्या ना. Talking about financial investments and trying to actually get us to invest our money in many different ways. I'm just trying to help you live your life. That's all. I don't think my investment in Pokemon cards is going to help me later. चिकन फैल्कन्स का ही था. But जो उन्होंने decision लिए वो खराब साबित हुए उनके लिए, and that's why we actually wanted to take a look at like a head-to-head between two teams. Not sure if that's ready to go just yet. But we haven't seen overall. We do know obviously vampires are मरवाएगा तू रुकना भाई, तू मत जाके talking to the Indonesian talent. They're like, इधर आ भाई तू. Talking to Junior, I will say, because the other talent disagreed with him quite heavily. Where he's like, vampire, that's not a big deal. That's not that good of a game. The other teams will do better in match 5 or 6. I'm like, bro, 5 or 6. There's only 18 matches to play in the entire event. Match 5 or 6 is going to carry you through. Was he the one
He was saying like it's not that big of a deal. Other teams will do better. That's fine. अच्छा खेल रही है, सोल बुरा नहीं खेल रही है, सोल अच्छा खेल रही है. I think if they keep अगर हम देखें तो देखो वही सेम सीन है. मैं जो जैसे बोला था वैसे ही. एम्पायर फर्स्ट है और स्टारवॉर्स वही. टोटल अभी लास्ट में है ना, ये तो अपना चलते कितना होगा. You're talking about other teams that we'd like to mention, right? I think one team that comes in मेरे डामवन के साथ सीन क्या हो रहा है रे? डामवन का भाई फॉरेस्ट भी अच्छा नहीं खेल रहा, भी अच्छा नहीं खेल रहा. मतलब खेल ऐसा खेल नहीं रहे, खेल रहे वो लोग. बट इस बार भी कुछ मैच 2 में वो लोग का 9th प्लेसमेंट पॉइंट था. मैं देखा 9th या 10th प्लेसमेंट पॉइंट था. They can still adapt right on the next iteration of these maps, but they are struggling a little bit. But I feel like from our assessment of Nigma Galaxy when we watched them, I feel like they are a team of averages. And I feel like 2 games, small sample size, we can quite easily see them play out across an 18-gamer and find themselves in a bit of a better position. So, yeah, I think they've got things fixed for these 2 games, but I won't spell doom for them. I think they're all right. We're not even halfway done with the first day. Like, it's okay. There's still time to adapt and bring some changes. Yeah, nope, impossible. Impossible. Max isn't hardly say You can't use that word. You can't do it. Max's favorite word, I heard. Impossible. TJB वाले ना जो first match हुआ था उसमें I think I just said the opposite like 5 minutes ago. But okay. कुछ top 10 में आ जाती ना तो अभी वो second रहते थे maybe. When I'm talking to you, yes, that's in my vocabulary all the time. Let's actually jump into a quick head-to-head. Your top performing teams in the last match. Obviously, got to take a closer look at TJB here. Obviously, ज़्यादा damage dealt. Again, you know, Falcons in the position they were in. Some really good damage being done, and we obviously, if you guys haven't watched any of the other titles we've had here in G8, this team, well, not this team, this organization actually, another title, surprised the world with how well they've done. And I know Max has been talking very highly of Team Falcons yet again here in PMWI. The next match will make happy to us, Soul will win. Yes, there's like a stigma around invited teams, right? They're not going to perform. Yeah, like, why are they there? They don't deserve to be here. But they won like PMP Arabia for the full season, right? They are currently the reigning champions of Arabia, so there is that background. They didn't just win it. They were almost 100 points ahead of second place. तो उनका वही तो टीम फैल्कन्स का ना वो सबसे गंदा गलती था. And then in the next stage, they could have invited them to the end of time. ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो भाई. 52 टीम 52 भी अच्छा खेल रही है यार. 52 टीम भी अच्छा खेल रही है. मतलब उनके प्लेयर्स का भी कुछ हो गया होगा, मतलब इनका स्कैम वैम चल रहा होगा, बट वो अच्छा खेल रहा है. ऐसा मत करो. The team with the most cricket winners out of any other PMPL. Like, this is actually a really good sign, but also it makes me kind of sad. Sad and happy, I guess, if I think about it. Sad that like teams that are teams अच्छी खेल रही है, but उनका maybe कुछ पैनिक हो रही, कुछ टीम्स पैनिक हो रही है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा. भाई like सबसे लास्ट की टीम ले लो ना, मॉर्फ ही है सबसे लास्ट में. उनका कुछ इशू चल रहा है. That's why they're not playing. यार इनको किसने I mean, it's very surprising too because when you compare Nigma Galaxy and Falcons, like Nigma Galaxy have that international experience right in PMGC. They've already played that. Team 50 they actually by PMPL में select हुए थे ना Team 52. So they couldn't technically perform. At least वो लोग last नहीं, वो लोग खेल रहे हैं. Team 52 Esports भी अच्छा खेल रहा है. ऐसा नहीं. So well, so the question is, can they keep that rhythm going? If so, there's a chance that they can compete. Except for Vampire, Asia से like 50-something points. Yeah, they were ultra consistent in that. It's fair to say. I think with like more, we even saw back-to-back first places coming in from them when it came to the approach to the game as a whole. And again, I think that they're cutting in this game in particular to just then hold off the REGAN.S as well as ST's kind of battle that was going on. It's the perfect opportunistic play to say, okay, there are these two big powerhouse teams clashing head to head, but this is a stranglehold on your ability to continue in the game. You might be able to defeat each other, but you're not going to get any further in this game because we've set a barrier for you to do anything else. Okay, well, this is a nice little talk about Team Falcons as well. We're going to learn a little bit more about them though, in a series we like to call throw कर रहे हैं matches and all that. They are playing. Chat देखना सिर्फ इनकी मजा आएगा. M7. It's faster. I have a skin, so I have to use it. BMP, less recoil, and I think it's faster. Erangel. The roads are not bumpy, and you can't get match stuck time. in Miramar. So Erangel is way better. India lane को कौन lead कर रहा है? I like cats. So where is India? India.P प्रोडक्ट तो चिकन यहाँ दिया, सोल कुछ भी नहीं लेके पाएगा. अच्छा ST ऐसे क्या हुआ? सोलू नहीं हो रहा. I can get a lot of knocks. मैच हो गया क्या? अगो क्या चल रहा है? How to shoot the shot? Psychological issue. भगवान. Team India Soul. Glint of Flash PMWI अरे बहुत हिट चल रहा है. Baby Living Soul 69 position क्या हो रहा है?
ए भगवान क्या हो रहा है रे? हेट ज़्यादा चल रहा है यार, थोड़ा कम करना चाहिए एक्चुअली. Maybe not a veterinarian, but for hospitals, Dr. Solomon Habib, obviously big shout out to him as well for putting on this event. We'll help support this event as well here for all of us who are watching, and maybe if you're playing as well, should be pretty happy about it coming through. And actually, I heard a story, not to like promote them even more. There's actually a free hospital like right near this event where you can literally just walk in if you need anything, X-ray in 15 minutes, get bandages, anything like that. भाई उर्दू लाइव चलाओ, उर्दू लाइव चलाओ. I'm really happy to hear that. Never mind, subscribe only है. I wasn't talking about players, but I just meant in general. But really cool. Gaming is intense, man. Okay. We're looking after the players, Jason. Right? That's our priority. That's true. That is true. Players are priority number one when it comes to any sport. उर्दू वालों को actually आगे चल रहा होगा, है ना? سمعت صوت طول الوقت فالكون عم بيجيب كيلز او فالكون عم يعني في نوك وفينش لصالح فالكون. هاي المقتطفات भाई يعني ما شاء الله पक्का उर्दू लाइव हिंदी में है. بيعرف طاقة عنده بكل ما عنده يقدم كل شيء سواء لاعب حتى احنا उर्दू लाइव हिंदी में नहीं ब्रो, हिंदी दिल से सोल भाई, दिल से सोल. उर्दू का सीन क्या ब्रो? ये देखो टॉकिंग अबाउट अगर हिंदी में तो नेपाल माथि भने चाहिँ उनीहरू धेरै नै खतरा खेल्छन्. त्यहाँबाट मैले वेटिङ गर्न सोचिरहेको थिएँ, बट फेरि लबीमा रहेछ. अलिकति टाइम पछि चाहिँ हाम्रो म्याच स्टार्ट हुन्छ. हामी स्टलबाट अलिकति देखाउँथ्यौँ भने हामी इन्जोय गर्थ्यौँ होला. सेकन्ड लास्ट है वो खेल रहे हैं यार, मतलब वो अपना ट्राई कर रहे हैं, दे आर गिविंग देयर बेस्ट, यू नो. ठीक है खेले. फर्स्ट मैच राम्रै पॉइंट्स आएको थियो, सेकन्ड मैच सही है. बट त्यसपछि हाम्रो फेभरेट टिम जस्तो लाग्यो, स्टलवर्ट देखाएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई. यस हाम्रो स्टलवर्टको प्लेयर हाम्रो स्क्रिनमा आउँदैछन्. त्यसपछि हामी VGS स्पारलाई पनि देख्दैछौँ. गेम अलरेडी भर्चुअल छ बाइ द वे. एनीवे त्यसपछि हाम्रो at the same time Galaxy, TJB, heal off. We saw it happen in times. If I'm not mistaken, Lin killed like 3,000 healing himself alone. We are going to see some 3,000 heals coming out. I'm going to go, the highest one will be 3.1k for this game. That's a prediction. No. Actually, no. Wait. Impossible. No, actually, that's not a prediction. That's a spoiler, Jason. हिंदी वाला सही है. Sorry, I apologize. I can't with this guy. I can't with either of you. No, I can't with us, yeah. But I mean, like the thing is, I know we knocked on it a little bit when it came to PM with TJB constantly doing that, but it's a viable strategy on a map with $2 million on the line. If you can sit in the blue, heal off, then why not? I mean, there's an interesting factor you got to add to the mix, right? If they do both come into that Same split to get all the meds right, whichever team eliminates the other, you pick up all of that. Like, you can see like 4,000 meds. This is your meds? This is my meds. My meds now. That's right. And it becomes even more challenging. अरे ऐड क्यों दे रहे हो भाई? किसी का ऐड आ गया PMWI का, लेट्स गो. स्किप का कोई ऑप्शन मिलेगा? अरे देखो देखते हैं. इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आ जाओ. हिंदी का मिल गया. बंदा भी टर्निप पे कर रहा है. कहाँ से? ओयो मैं समझता हूँ कि रेडी हो जाएगी. कहाँ से कर रही है? अपना पहले दिन के एक्सपीरियंस के बाद अपनी जो स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करेंगे. है हिंदी का है. कहाँ पे? रियली होपफुल कि बहुत सारे बड़े नाम हमें पॉप अप. ये रहा ऑर्कुड पे हो रहा है. Exactly, Essen और एक ऑर्कुड गेमिंग पे हो रहा है हिंदी का स्ट्रीम. लेट्स गो फाइनली. वैम्पायर ईस्पोर्ट्स. लेट्स गो गाइस, लेट्स गो. सारे मंजर के बाद और अगर आने वाले मैचेस के अंदर आज के दिन को डोमिनेट कर जाते हैं तो आई थिंक उनकी पॉपुलैरिटी अब ठीक है ना साउंड? बहुत ज़्यादा इजाफा होगा. सो नेम्स के अंदर तो ये सारे शुमार ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन उस नाम को मजीद बड़ा टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स अपने लिए अब तक बना चुकी है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह का वैम्पायर का भी एक्चुअली परफॉर्मेंस अच्छा ही है. एक्चुअली अच्छा चल रहा है. उस तरह का एग्रेशन दिखाना बहुत एग्रेसिव खेल रहा है भाई. फर्स्ट मैच तुम लोग सोचो भाई, वैम्पायर का फर्स्ट ही मैच में 24 किल है. सेकंड मैच में भी कम किल नहीं है भाई उनके, 7 किल है सेकंड मैच में. रहने वाली हैं जो पाकिस्तान के देख रहे हैं ऑडियंस और चाहने वाले देख रहे हैं अपने, बहुत लाइक एक्चुअली अच्छा खेल रहे हैं. चाहते हैं 52 के लिए दुआएं जरूर कर रहे होंगे, लेकिन इन दी एंड मैं हमेशा यही कहता हूं कि हर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती. हर सारी की लॉबी के अंदर VMP तगड़ा है. अरे भाई VMP बहुत तगड़ा है यार. और 18 की 18 नॉट गोना ला है. VMP एक्चुअली तगड़ा है. एक ही टाइम के ऊपर डोमिनेट नहीं. तुम लोग सोचो ना यार, डे फर्स्ट है ये, बंदों ने ले लिया 24 किल. कोई मसला नहीं. सीरियसली हमेशा मैं याद करता हूं कि जो
पिक्चर है, बड़ी पिक्चर है, डिजर्विंग है जरूर देखें कि जब ये टीम्स यहाँ से बाहर जाएंगी। मैं खासकर नाम लूंगा 52 का। गाइस शेयर कर दो, यस गाइस स्ट्रीम शेयर कर दो। नहीं है ऑब्वियसली पीएमपीएल पाकिस्तान की चैंपियन जरूर हैं और बहुत अच्छा हाँ वही देखो 52 टीम ना पाकिस्तान की पीएमपीएल की चैंपियन है। सो एज अ पर्सन एज अ प्रोफेशनल बहुत ज्यादा चैट बॉक्स बंद कर देता हूं। लेकिन चैट एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि तीसरा मैच हमारा स्टार्ट होने वाला है जो कि 18 टीम सोल में निग्मा को और किया फोर्स में जब उतरेंगी तो ऐसा जो मंजर निकल कर हाँ वही हुआ था। फाइट्स बनती हुई हमें नजर आएंगी। वो एक्टर ने अक्षर ने पहले लिया था ना किसी को टीम्स का। उसके जब हमने देखा इरांगल में उतरती हुई तो टीम्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हमने करना क्या है। जोन के एजेस के ऊपर ऐसे क्लस्टर्स हमें बनते हुए नजर आए कि जहां से निकलना नामुमकिन था। उन सब टीम्स के लिए अपने जोर बाजू का इस्तेमाल करना पड़ा। तो देखते हैं सैनहॉक क्या मजीद खुशखबरियां और कुछ बैड न्यूज़ हमारे लिए लेकर आता है। सैनहॉक भाई एक्चुअली अभी तो बहुत कैंप होने वाला है गाइस, अभी तो बहुत कैंप होने वाला है। अब तो जो ये क्या हो गया इसको, अच्छा अब तो जो कैंप होने वाला ना गाइस, कसम से कैंप होने वाला, देख लो तुम लोग। जो कैंप होगा ना तुम लोग भी बोलोगे वाह क्या कैंप है। सोल ओपन द चैट गाइस, सोल स्पैम कर दो यार। टीम इंडिया ओपन द चैट गाइस, टीम इंडिया ओपन द चैट। बूट कैंप के अंदर भाई टीम्स जा रही है, लेट्स गो। स्टारवॉर्ट्स जा रहे हैं, स्टारवॉर्ट्स नहीं जा रहे स्टारवॉर्ट्स जा रहे हैं। डामवॉन पैराडाइज जा रहे हैं मे बी, यस जोन बना है। ओ गाइस वन क्वेरी का मिड बड़ा है जोन के लिए, दैट्स अ ग्रेट थिंग। वैम्पायर वो रूइंस गया है। ओके कैंप ब्रावो पे 2 टीम्स उतरने वाली है, मजा आने वाला है। डामवॉन और वीजीएस का भी मजा आने वाला है। वाइल्डकैट्स एकदम हाथ ही नहीं रहे साइड में गए। निग्मा और टी, लेट्स गो भाई, मजा आएगा ये टीजेबी और निग्मा गैलेक्सी, अभी मजा आएगा देखने में। सैमी के अंदर टीम निग्मा गैलेक्सी एंड टीम टीजेबी दोनों के दरमियान एक स्टैंड ऑफ बनता हुआ, अलग-अलग हिस्से जो है वो सैमी के दोनों टीम की तरफ से कंट्रोल किए जा रहे हैं। अगेन हम यहां पर इस चीज भाई कैरी मिनाटी का न्यू वीडियो देख के आ रहा हो। ओ भाई श्योर देख के आ जाओ। ये देखो ओमेगा यहां पर तैयारी जो है वो मार सकता है, ओमेगा मार सकता है। जॉर्ड ओमेगा जॉर्ड रे, यहां पर ओमेगा की तरफ से नाइस वन ओमेगा। क्या खाया है रे आरएसजी वाले पे जी। आरएसजी वाले का वही गलती हुआ कि नेट खोल दिया उसने ओमेगा के सामने, और ओमेगा ने भाई बहुत अच्छा जॉर्ड वाला अपॉर्चुनिटी उड़ाया है। लाइटनिंग को भाई पता है ओमेगा है वहां पे। गॉब्लिन टॉकिंग अबाउट गॉब्लिन है, सेकंड प्लेयर भी जाएगा, गॉब्लिन छोड़ेगा नहीं। लाइटनिंग को कोई खबर नहीं कि गॉब्लिन वहां पे बैठा है। लाइटनिंग इज लाइक लिटरली वो बहुत अनअवेयर है उस सिचुएशन का। नहीं उसके प्लेयर्स का बैकअप आ रहा है। जॉर्ड वन गॉब्लिन, नाइस वन गॉब्लिन। आरएसजी लॉस्ट द सेकंड प्लेयर, गॉब्लिन भी मर सकता है, टीम सोल का भी प्लेयर मर सकता है। मर जाएगा गॉब्लिन को मार देंगे लोग। लेकिन गॉब्लिन जाते वही गॉब्लिन भाई इसको ले गया। आरएसजी को 2 का लॉस हुआ है और टीम सोल आरएसजी को पूरा खा सकती है। बॉक्स गेमिंग पीछे से अगर आप स्प्लिट देखें मैप पर तो काफी एरिया होल्ड कर रहे हैं और एक स्प्लिट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती हुई नजर आई बॉक्स गेमिंग। और बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स अब इस फाइट पर भी अपनी आंखें जमाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी गॉब्लिन जीजी, गॉब्लिन यार ही डाइड अ हीरो। सामने कंपाउंड्स में टीम आरएसजी फ्रॉम चाइना फ्रॉम पेल रीजन, सोल का बहुत अच्छा सा एक रोटेट जा सकता है, आरएसजी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। देखते हैं सोल क्या करती है। एक्चुअली ग्राउंड पर गए हैं, पहले हाई ग्राउंड को अचीव किया गया है। स्काउटिंग करेंगे दोनों प्लेयर्स की, दोनों प्लेयर्स स्काउट करेंगे। टीम आरएसजी के दोनों प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक ओए ये क्या था, ये क्या था, सामने एटन सामने मौजूद थे लेकिन उनको वो शॉट्स कनेक्ट ही नहीं करते।
I remember a movie एटन ये क्या था मेरे भाई, एटन के प्लेयर का ये क्या था गायब हो जाते हैं और सिर्फ वो रेड लाइट के अंदर आई थिंक सो वो नजर आते हैं और आई गेस फ्लावर को पता है कि ओमेगा कहाँ है, बट लेट्स सी व्हाट द फक। वही तो यार, ये क्या था, क्या देख लिया मैंने आंखों से अपने। एटन के प्लेयर को पूरा चांस था उस प्लेयर को फिनिश ऑफ करने का। अरे उसका भी ना मेरे से ग्लिच हो गया वैम्पायर शूटिंग ग्लिच। ओके ओके, जंपर 4 राइवल्स के मिसाइल, एक यूएसजी का मिसाइल नॉक है। 4 राइवल्स के प्लेयर चारों के चारों इंटैक्ट हैं और वो किल भी कंफर्म इन अ शॉर्ट। ओके, किल कंफर्म हो जाएगा, मिसाइल डेड है। व्हाट द हेल वाज दैट मॉली? पुअर मॉली यार, कोई बात नहीं, चलो नेट डालेगा, जंपर नेट डालेगा। मिसाइल डेड है। 4 rivals and back to back, they both have 1 kill. Let's go. बहुत सारी हमें किल रेट एलिमिनेशन जो है वो इस मैच के अंदर देखने को मिलेगी। आफ्टर ऑल इट्स एन ऑल क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के अंदर हमें ये चीजें सारी देखने को मिलने वाली, लेकिन 4 rivals हर कोई तेरी तरह बहाने नहीं मारता भाई, मेरे से ग्लिच हो गया होगा उसको। ओके, उसका भी वो होता है ना बटन टैब शूट, वो ग्लिच बहाने नहीं हो क्या, और ये ट्रुथ है, दिस इज ट्रुथ, दिस अ फैक्ट। बॉक्स केक पे रखे लाइक ओके बोल रहा हूँ आगे। क्या बोल रहा है कास्टर का, क्या हो गया कास्टर को मेरे भाई तुम्हारे को? आपको लगता है मुझे, एक सेकंड, आपको मुझे लगता है अपनी जॉब बहुत याद आ रही है पुरानी वाली, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट्स कराते हुए नजर आते हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स करा रहे भाई, सीख लो गाइस, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है कंसल्टेंट भी है, सीख लो, इसी वजह से अपनी जॉब इन्वेस्टिंग सीख लो। गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो लोग, जो आप सब्सक्राइब लाइक क्या कर रहे हो, कर दो। लेट्स गो टीजेबी के। ये क्या है बे, ये क्या है बे? भाई 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 मैं तो बोलता हूँ मैं खुद कमेंट्री कर लेता हूँ, इनका कुछ चल नहीं रहा। इंग्लिश वाले भी मेरे को स्कैम करवा रहे हैं। रे 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 जो है वो अपने लिए पहली कामयाबी लेने के लिए पूरी तरह से काम से नजर आ रहे, लेकिन ऑन आवर स्क्रीन नीचे जाएगा रे नीचे। ओके ओ गया गया, खाएगा। बहुत बहुत लो एचपी, बहुत लो एचपी। कद्दू मेरा ट्रुथ है, कद्दू नहीं ट्रुथ है। ओके, सोल मारेगी, तगड़ा मारेगी भी और मारेगी भी, मरेगी भी और मारेगी मारेगी। क्या बोल रहे हो? इसका एक नेड अगर यहाँ पे कनेक्ट होता है ना इन दोनों को, चलो ना मोमेंट, दोनों स्प्लिट हो भाई, एक साथ रुक गए लोग। वही वैम्पायर का पूरा टीम आ गया है अब। गया 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 वैम्पायर गया, नाइस वन। ऊपर टीजेबी का एक प्लेयर है और दोनों ही प्लेयर्स वैम्पायर के दोनों प्लेयर्स गए। वैम्पायर दोनों प्लेयर्स लूज कर देगी तो करना नहीं करना भाई। टीजेबी का एक प्लेयर को रिवाइव मिलेगा और वैम्पायर का एक प्लेयर वहाँ पे नीड डाल देगा। क्या वो नीड कनेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल कनेक्ट होगा वो नीड वन वी वन होगा यहाँ पे। ओ फ्लूक ने एक ले लिया, फ्लूक ने एक नॉक कर दिया टीजेबी प्लेयर को। वो नेड एक हार्ड कवर के अंदर ला सकते हैं, बट एट द सेम टाइम टीजेबी किस्ट इज आल्सो 7C कब खेलेगी? ना 7C कब खेलेगी? 7C तो है ही नहीं। 7C नहीं है, नोवा नहीं है। नाइस वन टीजेबी के और एक प्लेयर ने भाई गलत मिस्टेक करके मार दिया उसको भाई। आई थिंक सो टीजेबी ने इस फाइट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके ले लिया, पूरा फिनिश ही करना चाहिए किया है। जैसे हाई ग्राउंड का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किसने किया है? टीजेबी ने वही तो टीम इंडिया टीम थी ना भाई। क्या टीम इंडिया सेकंड टीम थी ना भाई? टीजेबी का एलिमिनेट होता है तो आई बिलीव के अपने भी पूरी टीम इंडिया चल रही टॉप 8 पे चल, मतलब हैश 8 पे चल रहे। ऐसे पोजीशनिंग पे बात करें तो 8 पे है हम अभी फिलहाल के लिए, सो 8 पे है। 2 मैन स्टैंडिंग सैनहॉक के अंदर वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी के लिए वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के रेवेनक्लॉ भाई इनके स्प्रे कितने ओपी होते हैं भाई। तुलसी चौहान
लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर सोल एंड 7C दोनों PMWI मजीद अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाने की कोशिश नहीं PMWI में 7C कहां है 7C तुलसी चौहान है वेलकम टू द स्ट्रीम हाउ आर यू सर्कल से बाहर भी हैं स्टार्ट पुल ऑफ की जा रही है उनकी तरफ से बैंडेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्लेज उनके बाहर ही मर गया भाई अगर बात की ना TJB की तो वो बहुत लाइक अपर हैंड का फायदा उठाता है बहुत रखे गए हैं या नहीं रखे गए ही नीड्स टू बी केयरफुल लेकिन 52 esports फ्रॉम पाकिस्तान बिल्कुल USG के करीब रिज के बिल्कुल पीछे USG के प्लेयर्स मौजूद हैं लेट्स सी पीछे मौजूद हैं या रिज पर जोन भी क्वेरी बनेगा ऑब्वियस सी बात है लेकिन अभी के लिए क्वेरी के नीचे जाएगा शिफ्ट खाएगा थोड़ा कैंपोंग और क्वेरी फ्रॉम तामबांग एरिया जो रुइंस आइलैंड रहता है वहां से TJB का स्क्वाड अभी तक सर्कल से बाहर है एंड आई बिलीव ये सर्कल मजीद ईस्टर्न साइड के ऊपर जाएगा कैंपोंग लगाएगा एज एक्सपेक्टेड यार एग्जैक्टली वहीं पर जाएगा ईस्टर्न शिफ्ट जाता है सर्कल का एक हार्ड शिफ्ट है TJB however entrance from the western side is quite easy right now USG 52 esports का हो सकता है USG के नाउ तो भाई कौन है बिल्कुल सर्कल के मिड के अंदर वो टीम जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही उनको इस मैच में एज टू एज खेलना पड़ेगा मेरे ख्याल से नाओटो भाई नाओटो को कोई खबर नहीं है कि 52 esports यहाँ पे कैंप कर रही है मस्त वाला शोर लाइंस पर रिजेस पर टीम 52 का स्क्वाड मौजूद है हाई ग्राउंड अच्छा नाउ निकल लिए फिर 52 निकल लिए वहां से उनको पता नाओटो के लिए अभी पूरा खाली मौजूद है आउटसाइड द सर्कल आ जाएंगे थोड़ी ही देर के बाद ये दोनों ही टीम्स लेकिन USG 52 esports का फाइट हो देखने को मिल सकता है बिल्कुल पीछे की तरफ मौजूद है और एक डिफरेंट एंगल पर मौजूद है जो कि मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं 52 के लिए लेकिन 52 इस चीज से बिल्कुल नाआशना है कि कोई टीम उनके ऊपर क्रॉसेस जमाई हुई है मुझे अब थोड़ी सी परेशानी हो रही है फिक्र हो रही है मिकुन भाई मिकुन ले सकता है मिकुन एक प्लेयर को खा सकता है एक प्लेयर को खा ही लेगा मिकुन जैसी फॉर्मेशन बनाकर 52 आ रही है आई थिंक सो दे कैन जॉर्ड दूसरा प्लेयर भी गया ओ भाई भाई क्या कर रहा है 52 esports कम ऑन ज्यादा बाहर निकल गया वो लोग नहीं रे 52 एलिमिनेट हो जाएंगे पूरा इस्तकबाल करने के PMWI विनर रहा है नाउ तो एम्पायर esports मौजूद है 52 के पेन इन अ स्प्लिट सेकंड तीनों के एम्पायर फिर स्टारवर्ट से ले जाएगा प्लेयर्स को इस मैच से बाहर फेंक दिया जाता है 52 को भागना चाहिए एक्चुअली 52 को भागना चाहिए यहां से एक्चुअली थोड़ा सा मरहम लगाना चाहते हैं लास्ट प्लेयर जिंदा है पे यहां से रिट्रीट बैक करने की कोशिश की जाएगी रिट्रीट करना चाहिए इसको एक्चुअली रिट्रीट करना चाहिए साइड का इस्तेमाल करके प्लेसमेंट पॉइंट से निकालना साइड का दिमाग से मेरे नाम निकल गया था लेकिन पेन अभी तक के लिए सरवाइव करते हुए और एक बेहतरीन डिसीजन था उनकी तरफ से बैक टू बैक और एटॉन esports का भी फाइट यहां पे देखने के लिए मिल सकता है हमें बट नहीं बैक टू बैक तो पीछे जा रही है थोड़ा सा लेट है VPE जिन्होंने पिछले दोनों मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई सोल आगे ही देखने के लिए मिल रही है मैं वहां पे थोड़ा लेफ्ट में देखा था बट यहां पे मॉफ esports एटॉन esports का भी on the other side अपने प्लेयर्स का जो एडवांटेज था वो लूज कर चुके हैं अगेन आई वाज अज्यूमिंग कि इस मैच के अंदर हम भाई पकौड़ी खा लो पकौड़ी खा लो अरे एटन फ्रैन को नहीं खिलाया ना इन लोगों ने एटन वालों ने फ्रैन है ही नहीं फ्रैन को खिलाया ही नहीं है एटन वालों ने वेलकम किया गया है इस रीजन के अंदर किसी और रीजन में नहीं किया गया होगा बिकॉज़ एवरीवन loves to play Sanhok here और Sanhok जो है अभी थोड़ा पीसफुल चल रहा है थोड़ी देर बाद वापस फाइट होगी सारे प्लेयर्स तमाम टूर्नामेंट्स के अंदर जो कि लोकली खेले जाते हैं और जैसे ही जो टीम Sanhok के अंदर अपनी एक दफा से मॉफ का जैरी देखो भाई जैरी मस्त बैठा है फिर आने वाले मैच पकौड़ी खा लो दे दो भाई पकौड़ी भेज दो बैक टू बैक टीम STE ये टीम सारी जो है वो सराउंडिंग्स के अंदर मौजूद हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब मौजूद है लेकिन B2B के प्लेयर्स अपनी कॉन्स्टेंटली जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छी आदत रहती है गॉब्लिन सबके अच्छे स्किल्स है जी और जेंस जंपर ये भी जोन ना कैंपोंग और क्वेरी है ये तो डायरेक्टली नीचे शिफ्ट होगा टीम्स जल्दी एलिमिनेट हो गई ये भी डाउन शिफ्ट है ये भी डाउन शिफ्ट है जोन का वेकेंट एरियाज हमें दिखाई दे रहे हैं कैंपोंग हां कैंपोंग का पूरा खाली है डॉग्स के एरिया में जो ये भी कैंपोंग शिफ्ट है जोन का देख लो डॉग्स के बिल्कुल या फिर यहां शिफ्ट है यहां पे फैम में जहां पे मॉफ की टीम है ना मॉफ की टीम हां भाई कैंपोंग और मैप पे ज्यादा मशहूर है ये पकौड़ी दियो और भाई पकौड़े खाओ खिलाड़ी होंगे जो कि आउटसाइड द सर्कल जिनको हाईएस्ट डैमेज इसका भाई हाईएस्ट डैमेज भाई #3 है ग्रैंड फाइनल्स की मतलब फ्लूक वालों का क्या बोल रहा हूं के साथ कह सकता हूं कि कमबैक आएगा उनकी तरफ से लेकिन हो सकता है ना भी आए सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन फिलहाल फाल्कन esports जो होस्ट कंट्री इनवाइट है फ्रॉम सऊदी अरेबिया उन्होंने पिछले मैच के अंदर बहुत अच्छी डोमिनेशन दिखाई लेकिन USG इज गोना गेट पिक ऑफ बाय टीम DWG वही
ही करेगी यूएसजी के साथ अगर वो वहां से ट्रीट बैक नहीं करते, जो अभी थोड़ी देर पहले 52 यूएसजी को पता ही नहीं था। लेकिन अभी के लिए एक प्लेयर यूएसजी के उसी जगह के ऊपर मौजूद है आउटसाइड द सर्कल। लेकिन डायमंड को भी रोटेट पड़ रहा है वहां से। फ्रॉम तुर्की हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। #13 तो नहीं करते हैं और बिल्ली आंखों से आएगी वैसे। काफी शातिर स्प्रे दिया जाएगा इन स्प्लिट सेकंड। पी स्प्रे वाइल्डकैट की तरफ से टेक डाउन करते हैं और साथ ही साथ हार्ड कवर के अंदर जाने की कोशिश की जाएगी। फिर से जूनी भी स्प्रे देगी, जूनी भी स्प्रे देगा, जो भी है प्लेयर उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन देगा। खूबसूरत बुलेट्स को डॉज किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ डॉज किया मेरे ख्याल से। वाइल्डकैट्स का क्या स्प्रे बे। वाइल्डकैट्स एक और प्लेयर को टेक डाउन। व्हाट अ गेम प्ले फ्रॉम वाइल्डकैट्स। डीडब्ल्यूजी अब 2 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव करती हुई वाइल्डकैट्स अंडररेटेड टीम है वाइल्डकैट्स। पुल ऑफ किया है उन्होंने डीडब्ल्यूजी के अगेंस्ट। चारों के चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं, अभी तक कोई भी किल उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन डीडब्ल्यूजी के प्लेयर्स ये भगवान ये क्या चलता है इनकी स्ट्रीम पे। मैं दूसरी स्ट्रीम लगा लूंगा गाइस। अपने उस खिलाड़ी को उठाने में भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन देखना मैं चाहता हूं डीडब्ल्यूजी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सर्कल के अंदर है, ब्लू जोन का डैमेज दोनों ही टीम्स को पड़ रहा है। सो यहाँ से कौन से जोन का डैमेज भी ज्यादा पड़ेगा इन टीम को। निकलेगी ये चीज दीदनी रहने वाली है। आई थिंक सो वाइल्डकैट्स लिटरली आगे ही यूएसजी है और 4 राइवल्स आरएसजी। बिकॉज़ दे आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस। डोंट टेल मी वीजीएस भाई पूरा राइट रोटेट लेफ्ट रोटेट ले रहा है इनके ऊपर। पहुंचेगा ऐसा अगर वीजेस आ गया ना लेफ्ट रोटेट के साथ गलत हो जाएगा फिर तो करियर है भाई संकट में। अभी तक के लिए रिवाइवल जो है वो इजी रहने वाला है और हीलिंग लगाना इतना मुश्किल नहीं रहने वाला है। एंड टीम जो है वो यहाँ पर टेनिस डायमंड के प्लेयर्स सर्वाइव कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वाइल्डकैट्स उन्हें आने देगी जोन के अंदर। बहुत गंदा प्रेशर क्रिएट करेगी भाई वाइल्डकैट्स वाले उनके अंदर। कंफर्म हुआ उस प्लेयर का जो कि उन्होंने ऑफ एंगल के ऊपर पिक किया था। एंड ऑल थैंक्स टू फॉरेस्ट जिन्होंने फैविन को यहाँ पर एक दफा फिर से पिक कर लिया, बट फंस चुके हैं पूरी तरह। यूएसजी वाले भी फंस गए चॉड, बट इफ वो रोटेट देना तो निकल जाएंगे यूएसजी वाले। और चंपर को देख लो भाई, अपने गार्ड्स जो हैं उनको हाई रखना पड़ेंगे एंड मेक श्योर करना पड़ेगा कि टीम यूएसजी वालों ने या तो लेफ्ट ही रोटेट फुल लेफ्ट जाना पड़ेगा यूएसजी वालों को। राइट में गए तो वाइल्डकैट्स मिलेगी, गंदा वाला वाइल्डकैट भाई ले लेंगे इनको। तरीके से अपने आप को बार-बार सर्कल के एज के ऊपर पोजीशन करते हुए एक बार फिर से उनके सामने नाइट बॉट नहीं है, नाइट बॉट मर गया मेरा और नाइट बॉट डेड है। वो ये कर रहा है, रस्ट कर रहा है थोड़ा। 4 किल्स और ऐड करती हुई यूएससी की टैली के अंदर नजर आएगी। देखते हैं क्या होने वाला है। और अभी के लिए दोनों के दोनों स्क्वाड्स अपनी जगह सर्कल के अंदर बना चुके हैं। यूएसजी भी सर्कल 4 राइवल्स का भाई जंपर लिटरली क्लोज है वो, मतलब थोड़ा बहुत ही हद तक नजदीक आ चुके हैं यूएसजी फिलहाल। ये भी जोन नीचे ही, ये भी जोन नीचे का शिफ्ट है, डोंट वरी कैंपोंग का ही शिफ्ट है ये भी। ईस्टर्न साइड पर जाता है यूएसजी। और नहीं रे ऊपर का शिफ्ट गया। टीम सोल बॉक्स और मॉफ और लॉन्गेस्ट एलिमिनेशन स्क्वाड्स हैं। इनफैक्ट आरएसजी का भी स्क्वाड है स्टी के बनने में लॉन्गेस्ट बहुत अच्छी जगह पर। इनफैक्ट आरएसजी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। नेक्स्ट अच्छा सर्कल शिफ्ट होगा। अभी लगता तू नाइट बोर्ड को उठा के रहने वाला है, वो अभी लाता हूं नाइट बोर्ड को। अगर तो सर्कल वेस्टर्न एक शिफ्ट लेकर जाता है, टीम सोल पर आता है, बॉक्स पर आता है, या सोल है जोन में, सोल पर आता है, तो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल ईस्टर्न साइड है, फार ईस्टर्न साइड डॉक के एरिया पर जो टीम्स हैं और जो फार ईस्टर्न साइड पर आ रही हैं टीम सर्कल के अंदर एंट्रेंस लेने के लिए, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड के तीनों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं। यूएसजी बाइक का इस्तेमाल करते हुए इस जगह के ऊपर रहते हुए आई थिंक सो दैट इज अ गुड डिसीजन। लेकिन एक बैक टू बैक की फाइट बनती हुई, बैक टू बैक फाइट्स के अंदर मुलविस किल्स ऑलरेडी इनके पास आ चुके हैं। बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड दूर से थर्ड पार्टी किल्स स्कोर करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन अभी के लिए टीजेबी के भी प्लेयर एक बैक एंड पर सर्वाइव कर रहे हैं। वीवो के मौजूद है, नेट का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और भरपूर तरीके से नेट स्पैम भी किया जाता है। बैक टू बैक के पोलो को नॉक डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। एक और फॉलोइंग नेट भाई वो नेड एक्चुअली थोड़ा राइट में होता ना, करियर डेड एंड का कोई भी आउटिंग ये नेट जनरेट नहीं करता, लेकिन वीवो के और जॉर्ड नेट रे क्योंकि नेट कर दिए होगा। मोलोटोव भी परफेक्ट था थोड़ा सा, बट राइट में एक्चुअली उसको शिफ्ट डाउन करना चाहिए था उसके मोलो को। बैक टू बैक के ऊपर बहुत गंदा प्रेशर, नाइस वन मोर नेट ओपी। बैक टू बैक का पूरा टीम एलिमिनेट, इजी टीम एलिमिनेट, पहला टीम एलिमिनेट हुआ बैक टू बैक। दिस इज गेम ओवर फॉर देम। B2B जो कि अब मोमेंट बैक चारों के चारों प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे थे। बहुत अच्छी फाइट उन्होंने पुल ऑफ की थी, लेकिन उस एक होल्ड करना है बस। हाँ वही होल्ड करना पड़ेगा अब सोल को, एक अच्छा परफेक्ट पोजीशन लेके होल्ड करना पड़ेगा। पानी फेर दिया। IWL के प्लेयर भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, वाइल्डकैट्स मौजूद रहेंगी और उनकी तरफ से भी अभी तक चारों के चारों प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन तो वहाँ पे वाइल्डकैट का एक प्लेयर गया बोरन, विजेस वाले ने आई थिंक ले लिया उसको। सामना उनको करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो फाइट देखने की मिली ना वीवो के और इसके बीच में, बैक टू बैक के बीच में, वो बढ़िया थी। जो नेट जा रहे थे उसके
बट आखिरी जो दो प्लेयर्स हैं उनमें से दिएगो ही ओफ सोल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर, मॉलीज वॉलीज आ रही है अंदर से, अभी ना निकलना चाहिए सोल को, बाहर रहना चाहिए थोड़ा। ये लोग बहुत नेड स्पैम करेंगे। अक्षत का ये नेड कनेक्टिंग हो सकता है, ये नेड कनेक्ट हो सकता है अक्षत का, जॉर्ड नेड अक्षत का बहुत ओपी नेड था वो। और एक नेड अक्षत, और एक नेड नहीं रे, नहीं खूबसूरत नेड था अक्षत का, पर एक्चुअली वो और एक नीड जाता ना अक्षत का, और एक नीड कनेक्ट होता तो मर जाता वो, बट उसका ये आ गया। ओमेगा पूरा राइट जाना चाहिए, ओमेगा पूरा राइट जाना चाहिए। एक तो प्लेयर लो, अरे नहीं रे ओमेगा। #16 वाइल्डकैट्स 16 पे एलिमिनेट होते हुए ओमेगा नॉक हो सकता है, ओमेगा नॉक हो गया, हेक्टर भी नॉक हो गया और टीम एलिमिनेट होती हुई 15 पे सोल। थोड़ा स्कैम हो रहा है सोल के साथ, बट खेल रहे यू नो, खेल रहे सोल भी खेल रहा है, ऐसा नहीं खेल नहीं रहे, खेल रहे सोल, बट स्टारवॉर्ट्स ने भाई एलिमिनेट कर लिया सोल को। स्टारवॉर्ट्स ने बदला निकाला है अपना। निग्मा गैलेक्सी भी 14 पे एलिमिनेट होते हुए पूरा जोन के बाहर ही लॉर्ड चला गया, लॉर्ड भाई जोन के बाहर ही। मॉफ यहाँ पे मॉफ है, ओ रॉकी मर सकता है। ओके रशन कर दिया जा चुका है, टीम ऑफ के प्लेयर एक मौजूद हैं, रॉकी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आती हुई 4 राइवल्स के प्लेयर। नहीं 4 राइवल्स का एक प्लेयर डेड है और रॉकी का वो नेट था जो कि कुछ हुआ नहीं उससे, बट डिफ्लेक्टिंग नेट थ्रो किया गया उनकी तरफ से, लेकिन ये नेट कोई भी आउटिंग जनरेट नहीं करेगा। टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के पिका और टॉप स्काई और टॉप इनफैक्ट नॉक हो चुके हैं, एक्शन और पिका बचे हुए हैं। पिका कोशिश कर रहे हैं, ब्लू जोन का डैमेज भी उनको पड़ रहा है, लेकिन बॉक्स गेमिंग के ट्रिस में मौजूद है, बिल्कुल क्रॉसेज उनके सेट टारगेट और व्हाट। हेलो आई एम हियर, आंसर योर क्वेश्चन। अरे भाई ये नया आईडी बना के लाया और 3 किल्स अभी तक के लिए टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के पास मौजूद है। स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन दिस केओस, बहुत मुश्किल हो रही है काफी टीम्स को। ब्लू से ज्यादातर नॉक से निकाले जा रहे हैं, ज्यादा मुश्किल PMWI से इन टीम्स के ऊपर ढाई जा रही है। बॉक्स के बेंसू की तरफ से भी 3 किल्स इन मतलब बुरा हुआ मतलब के लिए सर्वाइव कर रही है और आई थिंक सो ब्लू जोन से हटकर निकल कर आ चुके हैं। एक्शन और पिका बिल्कुल इस रिज के नीचे मौजूद है। बॉक्स गेमिंग को एक अच्छा सरप्राइजिंग बैकस्टैब, TJB 11 तो इस बार कौन लेगा चिकन? लेकिन फाल्कन के प्लेयर काफी ज्यादा लो एचपी, इनफैक्ट नॉकडाउन है और मे भी फैल्कन्स ले सकता है, बट वहां पे फैल्कन्स के ऊपर ही थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा था, बट अभी मॉर्फ के प्लेयर और कर सकते क्रिएट। मौजूद नहीं है इनफैक्ट सिर्फ मॉर्फ के रॉकी अकेले खिलाड़ी हैं जो सर्कल के अंदर मौजूद है। रेगन्स गेमिंग वंस अगेन बैक इन एक्शन, कुछ ज्यादा फ्लैशी परफॉर्मेंसेस नहीं। आरजी वाले को ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए कि बॉक्स के प्लेयर्स भाई अगर देख लेना एक बार स्पॉट कर लेना, सीधा रेड करवा देंगे, देखेगी भी नहीं वो। दो ही किल्स इनके पास मौजूद है। एरर 404 नाइस, कोशिश कर रहे हैं कि टीम एरर दे रहा है। ओ एटन #9 पास आ चुके हैं। स्कैम्ड एटन ईस्पोर्ट्स का स्क्वाड इस मैच में #9 के ऊपर एलिमिनेट होता हुआ और एक किल स्कोर करने के बाद इस मैच से हमें खैर बात कहते हुए चारों की चारों टीम्स सर्वाइव कर रही हैं, जिसमें से 3 टीम्स आउटसाइड द सर्कल हैं और अकेले खिलाड़ी जिनके सर्वाइव कर रहे हैं। टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स भी सर्कल से बाहर हो जाएगी, 2 प्लेयर्स अभी तक उनके सर्वाइव कर रहे हैं। अब एग्रेसिव होना पड़ेगा, ये नीड थोड़ा नेवर माइंड, उसको पता है मॉफ के प्लेयर को कि कहां पे की जा रही है। ब्रेक एमवीपी की तरफ से है, बट एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। एक्शन ले सकता है एक प्लेयर को, एक्शन एक प्लेयर को नॉकआउट कर सकता है, उसको खा भी सकता है, एक्शन खा लेगा एक्शन खा लेगा। कवर फायर्स का इस्तेमाल करते हैं और नॉकडाउन करने में कामयाब हो जाते हैं एक प्लेयर को, लेकिन बॉक्स गेमिंग अरे नहीं यार कोशिश कर रहे हैं, नेट का इस्तेमाल किया जाए, खा सकता था रे एक्शन। एक्शन को पता था जब वो मरने वाला है। बेंसू किल बैटल पोजीशन को स्टेल्थी रखना चाह रहे हैं। ब्रेक एमवीपी जिनका कंफर्म सर्वाइव कर रहे हैं एंड देयर ही गोज, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। रिवाइवल का चांस ही नहीं बचा था उनके पास। पीका हील कर रहा है, हील बैटल कर रहा है। आई एम ओनली आंसर अबाउट दिस चैनल। ओके नाइट पॉट टाइम के ऊपर जहां पर फाइट होती है वहां पर मे बी माय प्रेडिक्शन इज दैट मॉफ और बॉक्स गेमिंग कैन टेक दिस चिकन। There is a chance Box Gaming can take this chicken. Pika still hill battle कर रहा है। Pika is like तुम लोग भाई पागल हो क्या? हिल बैटल नहीं छोड़ूंगा मैं, बट बैंडेज खत्म हो जाएगी और पीका जोन के बाहर ही मरने वाला है। आई डोंट थिंक फैल्कन भी सर्वाइव कर पाएगा। पीका अगर दमार ने फैल्कन को स्पॉट कर लिया ना, आई मीन इसको पीका को, फैल्कन को क्यों बोल रहा हूँ, पीका को। बॉक्स गेमिंग और लेट्स गो मॉफ के बीच में टिल फैल्कन्स वही दमार गया। #5 ओपी मॉफ ले जा सकती है, चिकन
बाद यहाँ पर इस फाइट को हार जाते हैं। And there is only Pika and this guy Kyo remaining overhash. Piro is in the top and oh. Pika gaya. Pika. Dead and is dead. Let's go. And वहाँ पे भाई ले सकता है नहीं, लगा ही था मॉर्फ ले जाएगी, लगा ही था मॉर्फ ले जाएगी. Let's go, GGWP. OR second mount scout बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया टीम मॉफ ने एंड पर आके काफी जबरदस्त टीम्स को एलिमिनेट किया. टीम बॉक्स गेमिंग के तीनों खिलाड़ी तो भाई उनको बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा होस्टेज एंड ये नहीं था तो नहीं रहती सिवाय इसके कि वो विन कर जाता एक्चुअली. अगर ज़्यादा उसके पास फर्स्ट एड एंड ये सब होता तो जहाँ पर वो टीम सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्कैम हो गया. एक्शन को ना एक्चुअली इसको क्या करना चाहिए था, एक्शन को लाइक वो जिसने अच्छे स्पॉट ये था स्टार वॉर्स के प्लेयर ने एक्शन को ही था, एक्शन को उसको पूरा फिनिश कर देना चाहिए था. सामना किया तीनों प्लेयर्स को सर्वाइव करवाते हैं और इख्तितामी मराहिल के अंदर बहुत अच्छे नॉक्स भी जनरेट किए, किल्स भी स्कोर किए. सो आई थिंक सो मॉफ के लिए एक वो ग्राउंड बन चुका है जिस पर रहते हुए वो अगले मैचेस के अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं. कुछ ऐसे ना टीम VPE इस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाती. 4 राइवल्स भी हमें इनिशियल्स के अंदर एलिमिनेट होती हुई नजर आई. टीम सोल अच्छी फाइट ले चुके थे. टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स के लिए एक ऐसा वक्त आया जहां पर 2v2 सिचुएशन. हाँ एक्चुअली ने वो अक्षत का अगर नीड अक्षत का वो नीड भी चला जाता ना बाहर मरने से पहले तो बहुत गंदा क्रिएट होता प्रेशर उनके ऊपर, स्टार वॉर्स के ऊपर भी. टीम स्टॉलवर्ट नीड एक डाला था अक्षत ने, वो बहुत ओपी था, जो कनेक्ट हुआ एंड नॉक हुआ. जो सेकंड वाला नीड जब डाला अक्षत ने तो वो उसके स्कैम हो गया एक्चुअली उसके साथ. तो मैं भी मैं गलत शायद नाम ले रहा हूं. सो वो नाइट बॉट बता भाई कौन बाहर आते हैं तो स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स के वही प्लेयर इंटेल जनरेट करते हैं अपनी टीम के लिए कि प्लेयर्स कंपाउंड के बाहर आ चुके हैं एंड दैट वाज द टाइम टीम सोल गेट्स एलिमिनेटेड बाय नीड और कुछ सूरत हाल खराब. अगर 52 हाउएवर ने भाई पिछली कुछ तो था ना स्काउटिंग मिसिंग थी ऐसे क्योंकि वो स्टेज है जहां पर आप लास्ट चल रही थी मॉप. पता तुम लोग गाइस, तुम लोग कह सकते हैं अगर हम सर्कल के बाहर हैं तो हमें मॉप लिटरली लास्ट थे. सो दिस लाइक इस पे ये चीज जो है वो यहां पर पूरे नजर आ रही है. लेकिन अभी के लिए दोस्तों मैच से इसमें पूरा लास्ट चल रही थी. कहीं नहीं जाना वो राइट बैक. अब पता नहीं मॉफ का पोजीशन क्या होगा इस बार, जो कि चिकन निकाले. सो आई एम गेसिंग कि मॉफ का कुछ टॉप 5 में आ ही जाएंगे मॉफ. नॉट टू वरी. इंडेस्ट मेंटल फ्रेंड नाइस. क्या मतलब वेलोसिटी का नाम आने वाला है. अच्छा खेल मेरे यार. भाई मॉफ टॉप 5 में आ ही जाएंगे. लास्ट चल रही है, तू सोचना भाई मॉफ लास्ट चल रही है. हैश 18 चल रही है मॉफ एंड सेकंड लास्ट 52 esports. वैम्पायर एक्स नाइस है. ठीक है भाई नाइट वोट ठीक है ना, ठीक है ना. ये करो ना, ये करो ना भाई, ये करो ना तुम, ये कर लो. अच्छा हो रहा है, अच्छा खेले. सऊदी अरेबिया फैल्कन्स भी अच्छा खेल रहा है. फैल्कन्स का भी कुछ अच्छा खेल रहा है. फैल्कन्स अभी जब राउंड इनके अपने पास लिया है ना स्टैट्स तब मज़ा आएगा देखने में कौन टीम क्या पोजीशनिंग होल्ड कर रही है. मे बी सोल का सेम पोजीशन रह सकता है या फिर डाउन भी जा सकता है सोल का. बट इस बार अच्छे खेले थे सोल तो मे बी ऐश 7 या 6 पे नहीं गया, तो 9 पे भी जा सकता है. स्कैम चल रहा है थोड़ा बट you know. वापस से एरेंगल ही होगा. अच्छा वीकेंड. इंडेक्स मैरिड और अनमैरिड. ओ भाई सीरियसली. नेक्स्ट मैच कौन जीतेगा गाइस? अपनी बैटिंग्स लगा लो. 1500 करोड़ की बैटिंग लगा लो अपनी. कौन जीतेगा? 1500 करोड़.
₹1500 देख ही लिए अभी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, खुशामदीद। हम लोग वापस आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आगाज़ किया जाएगा अपने चौथे मैच का आज के दिन का, जो कि एरांगल पर खेला जाएगा। वो वीकेंड ही नहीं है भाई, वीकेंड पे बातें कहने से पहले अपने दिल की कर ही देंगे, बुलाना चाहूँगा अलादीन को। अलादीन वेलकम बैक। थैंक यू सो मच आदि। और ख़वातीनो हज़रात, जल्दी से जब हम मैच रैंकिंग की तरफ जाएंगे, अगले मैच का आगाज़ कुछ ही मिनटों में होने वाला है। लेकिन लास्ट मैच के बाद जो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस थी उसमें टीम्स कहाँ हमारे सामने से आ जाएगा, जहाँ 7 पोजीशनिंग पॉइंट्स अभी के इस मैच के पहला पायदान उनकी तरफ से लिया जाता है, वहीं पर दूसरे पायदान जो मौजूद है 22 पॉइंट्स अच्छे मिले, फिर टॉप 5 में तो आ ही जाएंगे आराम से। मॉर्फ की बात करें वो भी काफी अच्छा नॉट टू वरी राइट, उनकी तरफ से कुछ फाइट टॉप 5 तो आराम से ले जाएंगे। और 14 ही पॉइंट्स कंपेयर एक्सडी यहां टीम सॉलिड के पास पोटेंशियल काफी अच्छा था। इंडस्ट्री इज मैरिड विद 2 बेबी आल्सो। ओ भाई दो बच्चे, क्या बात कर रहे हो, 2 बच्चे, वो भी पता चला है तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बिल्कुल अलादीन, और वो फाइट काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी हो जाती है। आई थिंक सो टीम सोल से फाइट लेने के बाद कहीं ना कहीं टीम स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स का जो चांस इनसाइड द सर्कल था वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका था। वही डिले हो गया था उनका चांस, वही पर आके बॉक्स गेमिंग की प्लेस के साथ उनकी फाइट होती है जिसमें कंप्लीट स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया जाता है। लेकिन डोनट्स यूएसजी 5वां पायदान लेकर जाते हुए 7 पॉइंट्स के साथ 4 राइवल्स भी लेकर जाते हुए, और ये 6 के 6 जो पॉइंट्स हैं उन्होंने अपने जोरे बाजू पर, इनफैक्ट दोनों स्क्वाड्स ने 1 प्लेसमेंट पॉइंट और 6 किल्स स्कोर किए हैं इस मैच में। बिल्कुल एक जैसी परफॉर्मेंस एक दूसरे को मिरर करते हुए नजर आए। इसके बाद टीम फाल्कन ई स्पोर्ट्स जो कि होस्ट कंट्री इनवाइट है, 6 पॉइंट्स लेकर जाते हुए टोटली ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल गेम। वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड 8वां स्पॉट लेकर जाती हुई विद 5 पॉइंट्स, जिसमें से 1 किल का पॉइंट। आई वाज थिंकिंग कि यार टॉप 5 में आएगी मॉर्फ, बट दे आर #8 एक्चुअली, एंड टॉकिंग अबाउट सोल दे आर #10। 9 सोच रहा था बट 10 स्टिल वैम्पायर भाई #1 होल्ड करते हुए, स्टारवॉर्ट्स #2 होल्ड करते हुए, लेकिन यहाँ पर वो TJB with 3rd, बॉक्स गेमिंग with 4th, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं लास्ट followed by KS, FIZ, CSG 6, Falcons 7, Morph 8, लास्ट पे 52 esports, स्कैम चल रहा है 52 esports के साथ, सिर्फ एक ही से फॉल बैक कर पाता है, किसी प्लेयर को फाइट करने का मौका नहीं मिलता। बट वहाँ पर जब हमने देखा कि उनके उनको जब लॉबी की तरफ भेजा जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ मैच रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। मैच वन के डिएगो ही 3 बार रहे, मोस्ट लिमिटेड, हाई डैमेज, ग्रेनेड, डिएगो को फोन लगा रे बाबा, निकालते हुए डिएगो ही नजर आते हैं। तो एक शानदार मैच इस टीम की तरफ से, स्पेसिफिकली इस प्लेयर की तरफ से काफी अच्छा खेला गया। बिल्कुल, और टॉप की तरफ से फ्रॉम टीम स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स 295 मीटर्स का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किल भी स्कोर किया गया उनकी तरफ से, एलिमिनेशन। लेकिन दमार टॉप ट्रैवलर रहेंगे इस मैच में, 7.3 किलोमीटर का लगभग उन्होंने सफ़र तय किया है, और यूजेन बोल्ट वो बन चुके थे इस मैच के अंदर। आई एम जस्ट किडिंग गाइस। सो हर चीज़ का, जितने आपको डिपार्टमेंट्स कहाँ पर नजर आ रहे हैं, आपका क्लोज रेंज अच्छा है या लॉन्ग, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी बेहतरीन खिलाड़ी इनाम यहाँ से जरूर लेकर जाएंगे। सो डिएगो की तरफ से ओवरऑल, जैसे अलादीन ने मेंशन भी किया कि 3 डिपार्टमेंट्स को आउट ऑफ 5 ओवरऑल जिनके अंदर उन्होंने इस मैच में डोमिनेशन दिखाई है, 5 किल्स भी लेकर जाते हैं, हाईएस्ट डैमेज भी रजिस्टर करते हैं। अपने लिए इस मैच को कम्प्लीटली अपने फ़ायदे में ज़रूर लेकर गए। आने वाले मैचेस के अंदर अलादीन ऐसा हो रहा है कि वही टीम्स ज़्यादातर टॉप 5 में आ रही हैं, जिनको हम लोग आज से पिछले 3 मैचेस हम लोग देख चुके हैं। मतलब इन तीनों मैचेस में टॉप 5 के अंदर, टॉप 10 के अंदर सिर्फ वही नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि मॉर्फ एक्चुअली लास्ट में था, एंड आई वाज थिंकिंग कि उसको उनको टॉप 5 में तो आराम से मिल जाएगा, बट उनका कुछ एलिमिनेशन साथ था, आउटशाइन नहीं कर पा रही टीम स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स। ये तीसरा मैच था कंसिस्टेंसी वैम्पायर तो अलग ही नशे में खेल रही है। मेरे को तो लग रहा है ना स्टारवॉर्ट से वैम्पायर ये दोनों ही टीम ले जा सकती है, और भी कह नहीं सकते, और भी डेज है भाई, मतलब और भी ये है जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ कुछ पॉइंट्स क्या पता डामबॉन ही, लेकिन अभी के लिए ग्रो अप करके निकल ले, बेहतरीन लम्हात की तरफ चलते हैं। टीम सोल से आगाज किया गया और बहुत बेहतरीन फाइट रही, जहां पर टीम सोल के प्लेयर ने बहुत अच्छे तरीके से 2 नॉक्स निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
प्लेयर्स बैकअप करने के लिए मौजूद नहीं थे। दैट इज व्हाई टीम सोल अपने 1 से 3 प्लेयर को पहले ही गवा दी। लगता है मेरा लॉन्ग, क्योंकि कल आपको टीडीएम में 3 बार मरा रहे जॉर्ड पोजीशन बनाया चाहता है, 2 प्लेयर्स को ऐसे खदेड़ते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता उनके साथ हुआ क्या है। जॉर्ड उन्होंने बहुत जबरदस्त एंगल होल्ड किया जरूर था, उसके बाद भी निग्मा गैलेक्सी का जिस तरह से गेट कीप किया गया। निग्मा गैलेक्सी का पोजीशनिंग क्या चल रहा है? निग्मा गैलेक्सी का इंफॉर्मेशन को जब यूटिलाइज करना इनके लिए काफी बेहतरीन। निग्मा 17 पे निग्मा आ गए रे सेकंड लास्ट, बोलो लास्ट 52 स्पोर्ट्स निग्मा 7 लाइक सेकंड लास्ट, बीट बैक टू बैक पे थर्ड, ऑब्वियसली जोन के बाहर से एक प्लेयर का थर्ड लास्ट। ओके जोन का थर्ड लास्ट ऑलरेडी वो लो एचपी थे जॉर्डन भाई फैंटम उनका जब सर्कल में आकर जब एक ऐसे प्लेयर से फाइट लेना जो कि फुल एचपी भी है, कवर भी उसके पास मौजूद है। सोल अभी टॉप 10 में आ गई है, मुश्किल हो जाता है वो, थोड़ा चल रहा होगा प्लेयर्स में, थोड़ा यू नो होता है, बट कोई ना वापस से आ जाएंगे भाई, डोंट वरी, अपने प्लेयर्स ये नहीं है, They'll come back. की तरफ वापस चलते हैं जहां पर हमने देखा कि टीम सोल की फाइट हुई टीम एसटी के साथ। एसटी के ऊपर सोल ने काफी प्रेशर डाल के रखा, एक टाइम तक जो वो 2 नॉक्स निकाले हुए थे। पहला नॉक हालांकि सोल ने ही डील किया था, लेकिन सोल गर्लफ्रेंड नहीं भाई, कहां गर्लफ्रेंड है? वो तो है वहां पर खेल रहे थे, है तो बता दे भाई नाइट बॉट को इवन किया, उसके बाद ग्रेनेड्स इस्तेमाल करते हुए प्लेयर नॉक हो जाते हैं, तो भाई बता दे मेरे को, हो जाते हैं। उसके बाद भी सिचुएशन को भी जाने मेरे गर्लफ्रेंड का नाम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैकएंड से कोर टीम आती है, वो थर्ड पार्टी करती है, वहां पर सोल के ऊपर एक नॉक निकाला जाता है बिकॉज़ हिज गर्लफ्रेंड इज मोर देन 100 होते हैं, वो फिर क्या एक हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं। और एरा 404 बिकॉज़ हिज गर्लफ्रेंड इज मोर देन 100, वाओ, मेरे 100 से भी ज्यादा। नाइस वन, नाइस, कुछ भी भाई पागल हो गए, मेरी 100 से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड, इतनी गर्लफ्रेंड हैंडल भी नहीं कर पाऊंगा भाई। वो फाइट उनको इतना डिले कर देती है कि ओए गुटखा खा रहा है ये देख, ओए मैनेजमेंट टीम, अरे देखा कैसे नहीं भाई, बंदा मुंह पे गुटखा खा रहा है, रुको पीछे कर, अरे पीछे नहीं होगा रे, ये देखो ओवरऑल आ गई है गाइस। मैं जैसे बोला था, मॉर्फ #8 7 Falcons, डोनट्स USG, फिर वैम्पायर अपना ऑब्वियसली ले लेते हुए फर्स्ट पोजीशनिंग, सेकंड स्टारवॉर्ट्स, थर्ड TJB बॉक्स, VIVO, डोनट USG, टीम फाल्कन्स भाई। अरे बट रुको, वो बंदा गुटखा खा रहा था बिल्कुल, और जितने किल्स वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के पास है इस टाइम, उतने प्लेसमेंट पॉइंट्स इस पहले पेज के ऊपर इनफैक्ट इस पूरी लॉबी के अंदर किसी के पास मौजूद नहीं है। ओए स्ट्रीम, मेरे स्ट्रीम ने भी देखा ना, सुने रिपोर्ट करो भाई, गुटखा खा रहा था बंदा के अंदर सेकंड स्पॉट पर विदाउट स्कोरिंग। क्या अजय देवगन से इंस्पायर थे वो? इन एनी ऑफ द मैचेस 3 मैचेस खेलने के बाद जोरेबाजू मेरे को ना TJB का चिकन एक्चुअली पसंद आया, TJB का और वैम्पायर वालों का, जो स्टार वॉर्स वालों को पीछे से लिया है वैम्पायर वालों ने, जॉर्ड और TJB ने जो भाई पोजीशनिंग होल्ड करके 2-2 का स्प्लिट में भेजा ना अपने बंदों को, देवर लाइक जाओ तुम यहां जाओ। इस सारे इवेंट की जो पहला मैच था, जो कि आइस ब्रेकर था, जो आइस ब्रेकर रहा टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के लिए, उन्होंने उसमें बहुत खूबसूरत परफॉर्म किया। सो आने वाला जो एरेंगल का मैच है, एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वैम्पायर ईस्पोर्ट्स वापस से वही डोमिनेशन दिखाए। इनफैक्ट उनकी तरफ से कोशिश जरूर की जाएगी उस मैच को भरपूर सोल हैश वही 10 पे सोल यार चलते हैं। स्कैम चल रहा है। इस्तांबुल वाइल्डकैट्स 9th स्पॉट के ऊपर रहेंगे 18 पॉइंट्स के साथ। कंपटीशन इस पेज के ऊपर भी काफी ज्यादा है। बैक टू बैक #16 पर मौजूद है, #15 पर RSG। मैं हैरान हूं अलादीन RSG को देखकर, सबसे लास्ट में यही है, लेकिन 52 वो काफी ज्यादा चोक करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड सेकंड लास्ट तीनों ही मैचेस में गुटका तो वो खाती थी तभी उसके दांत पीले थे, ये भगवान। 7C कल खेलेंगे नहीं भाई, सिर्फ 4 ही किल्स 18 टीम्स ही है। ओके 17th स्पॉट के ऊपर है, 17 निग्मा गैलेक्सी वही लगाई था 52 वही। कहीं ना कहीं ये निग्मा गैलेक्सी, RSG और 4 ब्रो जितने टीम्स दिख रहे हैं ना रुपेश ब्रो, उतनी ही टीम्स खेलेंगे। अगर ऐसे कुछ होता कि लाइक एक्सटर्नल टीम्स है, फिर तो बता देते ना, टीम्स उतनी ही है, जितने टीम्स दिख रहे हैं ना उतनी ही है। ऐसे अभी दूसरा कोई टीम नहीं आएगा भाई। ऐसे हुआ ना, बंदे गाली डालने शुरू हो जाएंगे भाई। 7C कल खेलेंगे नहीं भाई, अंडर परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं। डैमबॉन्ग गेमिंग जिस तरह से आपने कहा, और 4 राइवल्स उनको भी हम नहीं देख सकते सेकंड पेज के ऊपर। लेकिन चलें, ये बात मैंने इन्होंने डाला था पर सोल, इन्होंने डाला था पर सोल और 7C नहीं ब्रो, 7C कैसे है ऑफिस? अभी आपने देखा ना, वापस दिखाओगे? मैं पीछे नहीं कर सकता, वो ये नहीं करने देगा ना। हम
हाँ हंस रहा है दूसरे नंबर वो टीम्स आती है जो कि रामखोर। अरे हाँ ब्रो, आप अगर ऑफिशियल लाइक टीम्स देखोगे, इनवाइटेड बोल रहा हूँ सॉरी, अगर ऑफिशियल टीम्स देखोगे तो वही टीम है जो अभी दिखी थी ना, लाइक 4 राइवल्स, 5-2, फिर बैक टू बैक, बॉक्स, स्ट्रॉन्गवॉन, वाइल्डकैट्स, मॉर्फ, निग्मा गैलेक्सी, RSG, ST, फैल्कन, सोल, उतनी टीम्स है लाइक USG, वैम्पायर, VSG, सब VGS, सॉरी VSG नहीं, USG और VGS, वैम्पायर करके सारी जितनी टीम्स है उतनी ही टीम्स है, और एक्सटर्नल टीम्स बिल्कुल नहीं होने। हो सकता है हटा दिया हो, नहीं हटाया नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग से यही टीम्स थी। जब फॉर्मेट बोल रहे हो, जब सारी टीम्स का रिवील हुआ था ना कि ये टीम्स खेलेंगी PMWI, तब उतनी ही टीम्स थी, 18 टीम्स। जहां पर तमाम टीम्स है वो ठान कर आई हैं उन्होंने। वो डामवन के साथ स्कैम चल रहा है क्या ऐसा, लाइक मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। एक अच्छा मैच निकालना उनके साथ तो बहुत ही बुरा स्कैम चल रहा है डामवन के साथ। मुश्किल बन रहा है जहां पर निग्मा गैलेक्सी जैसे स्क्वाड्स भी आज के उसमें 7C भी थी इंडिया में, बात है कि आपकी बात से मैं एग्री स्काउट 7C में आया था। आखिरी पेज है उन पे वो सारी टीम्स है जिनको अभी तक अंदाजा नहीं हो रहा कि हमने कैसे परफॉर्म करना है, जो अभी तक इस चीज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे कि हमने किस स्ट्रेटजी के साथ जाना है। अगर ऐसे होते ना भाई 7C वाले नाम मौजूद हैं, और खासकर बहुत लुकिंग फॉरवर्ड टू 52 Esports के वो क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं अगले मैच के अंदर, क्योंकि जब भी रैंगल आता है चांस उन टीम्स के पास पता लगाओ होता है जो कि यार लीडर बोर्ड के ऊपर नीचे मौजूद पता लगाते हैं हम 7C के साथ हुआ क्या है। एक मौका होता है, एक गोल्डन चांस होता है कि अपने फेवरेट मैप के ऊपर, जिस मैप के ऊपर सारी टीम्स वाकिफ हैं कि किस स्ट्रेटजी के साथ आपने खेलना है, आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज भी डिप्लॉय कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जितने लाइक ऑफिशियल टीम फॉर्मेट तो मेरे को वही दिखाया गया था, ये मैच उनके पास है अभी भी, इट्स नॉट लेट राइट नाउ। ऑफिशियल टीम जो फॉर्मेट था ना जो भी दिखाया गया उतना ही पड़े हुए हैं, अभी आज का दिन 50% मुकम्मल हो चुका है और उतना ही बाकी है, तो आई थिंक सो उस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। 52 को थोड़ा बहुत एग्रेसिव ज़रूर होना चाहिए। टीम सोल ने पिछले मैच के अंदर कुछ पॉइंट्स लेकर वो गए हैं अपनी जगह, उन्होंने आखिरी पेज से उठाकर दूसरे पेज तक तो वो ले गए हैं, सो आई थिंक सो उनके पास भी मोमेंटम अगले मैच के लिए मौजूद रहेगा। लेकिन बात करते हैं टॉप 2 टीम्स की। स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स काफ़ी हद तक करीब आ चुकी है वैम्पायर्स के, सो इस मैच के अंदर कहीं ना कहीं मुकाबला इन दोनों के बीच भी रहेगा कि क्योंकि यही वो दोनों स्क्वाड्स हैं जो प्रॉमिसिंग हमें नजर आ रहे हैं। स्लॉट कैंसिल का सीन है गाइस, लीडर बोर्ड को टॉप जरूर किया जाए। अरे देखो जो इंडिया चैनल पे ही डाला था ट्रेलर, देखो नहीं उनका कुछ स्लॉट कैंसिल का इशू है 7C का वाला या फिर टॉप 3 में बहुत ज्यादा बड़े नंबर वाला मैच उनका ना यहां पर इस वजह से मौजूद है। स्लॉट अच्छा खेला है, तमाम तीनों के तीनों मैचेस में उन्होंने अच्छा खेला है। और जबकि अगर बात करें लाइक ये है वैम्पायर स्पोर्ट्स की, उन्होंने पहला मैच स्लॉट कैंसिल का सीन हो गया उनके साथ आई गेस, 7C इसलिए नहीं खेल रहे। उसके बाद वो एवरेज खेले और उसके बाद थर्ड मैच में वो अच्छा नहीं खेल रहे। वही तो बोल रहा हूं, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब अगला मैच टीम ST का बहुत इन्होंने एक टीम ही लिया है सालों ने, हिसाब से क्या ही बोले मैच है अभी तक कुछ छोड़ो, स्लॉट कैंसिल कर दिया उनका 7C वालों का। और दूसरी तरफ हम बात करें अरे यार बुरा किया रे, अरे तरफ आ गया तो बुरा किया रे, कॉन्फिडेंस डाउन होगा जरूर, लेकिन SCE हम जानते हैं उनको साउथ एशियन रीजन से जो टीम वाकिफ हैं, जो ये कैसे हो सकता है यार, चलो कोई बात नहीं, खेलता हुआ देख चुके हैं, उनको पता है कि STE दिन में उनका स्लॉट कैंसिल करवा दिया, स्लॉट कैंसिल कर दिया इन लोग ने भी। हाँ यार ये नहीं सैड अगला मैच और इससे अगला नहीं तो फिर आखिरी मैच की तरफ क्या गलत सीन कर रहे हैं को सेकंड निकाले। सो ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से उसे कन्वर्ट करते हैं अच्छे मैचेस के अंदर, और पॉइंट्स टेबल में फर्स्ट पर बनाते हैं। लेकिन टोंगजिया आप उनको भी साइडलाइन नहीं कर सकते। टोंगजिया और ऊपर से स्लॉट कैंसिल किया तो किया, और जो इंडियन कास्टर्स ना उन्हें भी अलाउ नहीं किया है। निकालते हुए देखा था नो ब्रो 18 से खेलेगी 7C नहीं है ब्रो, 18 में देखो मैं आपको स्ट्रीम पे दिखा दूं क्या कितना लाइक ओनली जितने टीम्स है उतनी ही टीम्स है। लास्ट एक अच्छा मैच निकाल तो लिया उन्होंने, बट अभी भी तेर देखो और सुना दिया क्या सुना दिया सेकंड पेज पे नजर आ रही हैं, हालांकि अरे दिखा सेकंड पेज पर होना और सुना दे तारे दिखा और सुना दिया। अरे नहीं ब्रो मैं अगर ऑफिशियल फॉर्मेट अभी दिखाऊं क्या इसमें डोमिनेट करती हुई नजर आई हमें फिनाले में। नाम भी ले सकता हूं, मेरे को सारी टीम्स का नाम पता है, जो 3 टीम्स है खेलने वाली सब टीम्स का नाम पता है। टॉप किया गया था अगर आपको याद हो तो। देखो बताया लाइक क्या हुआ है, मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, मेरे को पता चला है क्या हुआ है। 7C का है ना, मैं रुको अभी इनका कास्टर का ये करता हूँ। 7C का सीन क्या किया गया है, स्लॉट भी कैंसिल कर दिया और इंडियन कास्टर्स है ना उन्हें भी अलाउ नहीं किया गया है PMWI में, तो बहुत गलत सीन हुआ है। 18 से खेलेगी नहीं 18 से नहीं खेलेगी। आगे बढ़ाएं जितना जल्दी वो रिकवरी मैचेस खेलें उतना ही जरूरी है उनके लिए।
रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि देखो अगर 18 से खेलती ना तो ये जो जितनी टीम्स है ना, जितनी टीम्स अभी फॉर लाइक अभी समझो #18 पे अभी करंटली कौन चल रही है, अगर लास्ट टीम की बात करें टीम 52 चल रही है राइट, तो भाई टीम 52 को अगर इन्होंने निकाल दिया या फिर कुछ हुआ, बहुत लाइक इश्यूज क्रिएट होंगे PMWI में कि यार तुम हमारी टीम को कैसे निकाल सकते हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो बहुत इश्यूज हो जाएगा। तो आप ही मुझे बताओ ना यार, टीम अभी 18 में कैसे होगा, लाइक एक ही टीम ली है इन्होंने, हाँ वही बोल रहा हूँ, और लाइक लिटरली इंडियन कास्टर्स को भी नहीं लिया गया है, इंडियन कास्टर्स भी जाने वाले थे PMWI में लाइक कास्ट लाइक ये करने के लिए, उन्हें भी नहीं लिया गया है, तो वही सीन है ब्रो। सो दिस इज़ द बैड न्यूज़ कि स्कैम हो गया, स्लॉट भी कैंसिल हो गया एंड कास्टर्स को भी अपने ले लिया। टीम इंडिया ओनली वन टीम, या टीम इंडिया से एक ही टीम है, तो टीम सोल है। मैं दिखा दूँ क्या, रुको 7 सीज नहीं खेलने वाली है, क्योंकि बहुत सैड है न्यूज़। इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रीमिंग सेटअप, इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रीमिंग सेटअप $0 रुपीज़। हम लोग वापस आ चुके हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू ज़रूर सुना। सो अलादीन आपसे वंस अगेन बैक टू द टॉक्स, और सारी बातें जो है वो हम करते हुए नज़र आएंगे। अगले मैच की क्या प्रेडिक्शंस हैं, व्हाट आर योर थिंकिंग्स अबाउट द टीम्स ऑन द थर्ड पेज। मैं खासकर सवाल जो है वो तीसरे पेज का करूँगा, सेकंड पेज का करूँगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये आखिरी 3 मैचेस कहीं ना कहीं गेम चेंजर होने वाले हैं? बिकॉज़ हिज स्ट्रीमिंग सेटअप इज नथिंग एक्सेप्ट लिखा है आपने, नाइट वर्ड थोड़ा इंग्लिश सुधार लो। एक्सपेक्ट हिज मोबाइल व्हिच इज आल्सो सेकंड हैंड मोबाइल। व्हाट द हेल भाई, I27 सेकंड हैंड, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ये कर लो तुम, ठीक है भाई, आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। फिर आप 2 मैचेस में ठीक है ना भाई, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई जादू चला नहीं सकता। सो टॉप ऑफ में आगे नेक्स्ट गेम में आनी चाहिए यार, चिकन निकालना चाहिए रे। टॉप 5 ऑफ छोड़ो यार, एटलीस्ट एक चिकन निकाल लो यार, मजा आ जाएगा। उसके खिलाफ हो जाता है ये थोड़ा सा मुझे बॉलीवुड और हॉलीवुड। 7C कहाँ है भाई? 7C ब्रो नहीं खेल रही है, 7C का स्लॉट कैंसिल कर दिया है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कास्टर्स को भी अलाउ नहीं किया गया है, इंडियन कास्टर्स को। करेंगे कि थर्ड मैच को पूरा खेलने के बाद अब फोर्थ मैच में 7C का स्लॉट कैंसिल है, सो दैट्स अ सैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि #18 में सोल को खिलाएगी, तो मेरे को एक ही आंसर बता दो कि फिर कौन सी टीम को निकालेंगे ये लोग। 18 टीम्स में से कोई भी टीम को नहीं निकाल सकते, सीधी बात है। तो 7C का स्लॉट भी कैंसिल कर दिया है एंड इंडियन कास्टर्स को भी अलाउ नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है, सैड न्यूज़ है। क्या ही करें, सस्ता नाइट बोर्ड ऐसे ही होता है साले, होता है भाई। यार तुमको पेमेंट किसका देता हूँ मैं, ये सब बुलवाने का। स्काउट ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम बाय द वे। या नहीं लिख पाएंगे, इंतजार स्काउट आ गया, लो भाई, सीधा साक्षात स्काउट आ गया, देख रहे हो तुम लोग। काफी उम्मीदें हैं क्योंकि जब आपने स्काउट आया भाई, स्काउट यार तेरे को पता रहना चाहिए ना भाई, तुम तो यार 7C में थे, क्या कर रहे हो मेरा भाई स्काउट, तुम तो 7C में थे यार, क्या कर रहे हो यार। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बात नहीं करना चाह रहा। ऑब्वियसली 52 की भी हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ बात करने को मिल नहीं रही है अलादीन। असल बात ये, वजह ये है कि ज़्यादा बातें करने को मिल नहीं रही हैं उन टीम्स के बारे में जो नीचे मौजूद हैं। हाउएवर ऑब्वियसली उम्मीदें मुझे इसीलिए भी हैं टीम सोल से, टीम 52 से, क्योंकि जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो भी हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। सो आई रियली बिलीव, और टीम सोल की जैसी हिस्ट्री रही है, जैसे जो स्क्वाड्स रहे हैं, जो नाम जुड़े रहे हैं, आई थिंक सो दोज वर द पीपल जिन्होंने असल में ई स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर शुरू किया था, जिन्होंने वो सारा बेड़ा उठाया था ई स्पोर्ट्स का, भगा दिया 7C तक अब वो लेकर उनको आ चुके हैं। हाँ यार, भगा दिया 7C को एक तरफ से, एक तरफ से एक किक कर दिया। दिल बैठता है जब वो स्क्वाड नहीं, बट इंडियन कास्टर्स को भी अलाउ नहीं किया यार, जो कि लाइक देखते भी क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बातें खेलेगी तो नहीं 7C, अगर खेलेगी भी तो कौन सी टीम को किक करेंगे ये लोग, कौन सी टीम को रिमूव करेंगे ये लोग। लेकिन अभी के लिए अगले मैच की तैयारियां की जा रही हैं, प्लेयर्स लॉबी में भी जा चुके हैं और चंद ही सेकंड्स में मैच भी आगाज हो जाएगा। देखते हैं कि किस तरफ ज़ोन एक शिफ्ट लेकर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली काफी कुछ डिपेंडेंट रहता है। मैच ऑफ द डे, अपने जो मेरा करियर है कास्टिंग का, उसमें बहुत कम मैंने ऐसे स्क्वाड्स देखी हैं जो जोन की
जो सिचुएशंस एंड फेवरेबल सिचुएशंस हैं उनको अपने फेवर में करते हुए नजर आए। पेमेंट 5 रुपए भी नहीं देता हूँ हर टीम ही नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, हर टीम अरे ही कुछ सैलरी नहीं है हरामखोर हार्डशिप्स के अगेंस्ट नहीं खेल सकती। सो आई थिंक सो फ्री में वो तो क्या वो 1000 लाख करोड़ रुपए तू पागल हो गया। फ्री में काम करना है तो कर। डिपेंडेंट रहती हैं। बॉक्स गेमिंग को हमने देखा पिछले मैच के फ्री अंदर में बहुत भाई, अच्छा फ्री सर्वाइवल में काम कर। और 3 यहाँ पे ओशन अच्छा कास्टर है। यस अग्रीड। जैसे ही सर्कल आता है बॉक्स गेमिंग हमें उस जगह से वाइप आउट होती हुई नजर आती है। सो ऑब्वियसली इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते कि सर्कल एक रोल नहीं ये भी अच्छा कास्टर है। देखते हैं क्या बनता है अगले मैच के अंदर। दिन 52 के खासकर मेरा आपसे सवाल है कि 52 के लिए क्या कास्टिंग का करियर स्टूडेंट से पहले खत्म कर देता हूं इधर उनके साथ। सो मैं ये जिम्मेदारी आपको देना चाहता हूँ कि आप बताइए कि बेसिक क्या चीज है। मैंने एसेंस से भी ये सवाल किया था, सो वही सवाल मैं आपसे रिपीट करूंगा। बट ये एक्चुअली ना गलत किया रे 7C के साथ, स्लॉट आउट कैंसिल करवा दिया। देखिए Esports को मैं कोई भी सजेशन नहीं दूंगा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा कि आप ये करें तो ऐसा हो जाएगा, आप इस तरफ से इस तरह से रोटेट करें तो ऐसा हो जाएगा। स्कैम पूरा पूरा कम्युनिटी स्कैम है भाई। बैड टाइम अच्छा वक्त अगर आता है उसके लिए लेट्स गो जोन जा रहा है मस्त ओवर जॉर्ज पुल बस यही कह सकता हूं और याशनाया। लेकिन चलिए मैच स्टार्ट हो चुका है, आज का दिन का चौथा मैच और जो कि इंतजाम करेगा उन तमाम टीम्स। अरे भाई साहब का वॉइस चला गया। हाँ इस वन यार, आई मीन तुम लोग भी स्कैम कर रहे हो भाई, वॉइस चला गया तुम्हारा। ए भगवान। जी बिल्कुल, जी वेलकम बैक। थैंक यू। आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। आपने मुझसे पूछा कि टीम रेज को मैं क्या 52 को मैं क्या कहना चाहूँगा। 52 को मैं ऐसा कोई नसीहत नहीं करना चाहता, मैं बस उन्हें सपोर्ट ही करूँगा। मैं बस यही चाहूँगा कि वो बुरे वक्त में उनको सपोर्ट करूँ ताकि उनका अच्छा वक्त भी आ जाए। लेकिन फिलहाल बात करते हैं इस मैच की, जो कि आज के दिन का चौथा मैच है। कहीं ना कहीं ये मैच इंतजाम करता है तमाम ही टीम्स का, जो कि बॉटम पे मौजूद है, सेकंड पेज पे मौजूद है, उनका पहले पेज पर आने का। लेकिन इस इंतजाम को आपने खुद ही क्लैश होना चाहिए, ड्रॉप क्लैश हुआ ना इनके बीच में, बहुत गलत सीन हुआ। जोन बना है पोचिंग की फार्म, लेट्स गो। जोन अभी पूरा जोन गाइस, मेरा ये ले लो, पूरा जोन ना पोचिंग की और फार्म ही जाएगा। देखो की बात करें वो अपार्टमेंट्स भी जा सकता अपना। इस तरह का सर्कल फिनिश होता हुआ फार्म और मिल्टा के आसपास के कौन जो एरिया ब्रिजेस के आसपास कौन बंदा सार की गया है। सर्कल क्या है ये, कहां जाए लेकिन उत्कर फट के 52 के फेरो को भाई ले लिया। बहुत गलत सीन हुआ 52 के साथ, बहुत गलत हुआ 52 के साथ, बहुत गलत हुआ रे। हाय उत्कर्ष फल के ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई, कैसे हो। साले ने मुझे भी नहीं बताया है अभी तक, वरना मैं ही हैक कर लेता। वाह भाई, मैं दे देता ना भाई चैनल आईडी, बस ले लो भाई। अरे यार क्या दिया रे एटन के प्लेयर ने, क्या स्मूथ किट दिया भाई। नहीं रहते एक और मजीद प्लेयर आते हुए घुटनों पर। जॉर्ड स्पोर्ट्स के प्लेयर एफपीपी मोड के ऊपर शिफ्ट करते डाकू हुए अभी डाकू को बहुत अभी तक के लिए सर्वाइव करते हुए, लेकिन डाकू को ये किल जरूर स्कोर करना पड़ेगा। एटॉन स्पोर्ट्स के बैक एंड के ऊपर कैवलरी भी आती हुई, प्लेयर्स कवर प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं। डाकू आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक 1v1 बनता हुआ, दोनों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, काफी हद तक लो करने में कामयाब मार सकता है डाकू, मार सकता है एक्चुअली, इसका एचपी बहुत लो है। अगर रश कर दिया डाकू ठीक से मार सकता, नहीं गया, छोड़ो डाकू मरेगा। किल भी स्कोर करा, लेकिन एटॉन स्पोर्ट्स के एक और मजीद प्लेयर आएंगे। डाकू आप नहीं खेल रहे क्या ब्रो, अभी वॉच पार्टी कर रहे हैं। डाकू भी नॉकडाउन, हम वॉच पार्टी कर रहे हैं। 17 के ब्रावो आई थिंक सो मौजूद है बैकएंड के ऊपर, जो कि तैयारी पकड़ रहे हैं। पूरा अभी चला जाएगा रे 52 स्पोर्ट्स का। होने के बाद वाज अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो डाउन टू 1 मैन सर्वाइवल पर आ जाएगी। इनफैक्ट वाज इज द लास्ट, वही वो लास्ट बच वही। सो वाज के सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती हुई कि उन्होंने अब किस तरह से सर्वाइव करना है। इसको टीवी भी लेना चाहिए वाज को, थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा क्योंकि एटॉन स्पोर्ट्स के तीनों प्लेयर्स एक ही साथ गया, नहीं डेड काफी हद तक डैमेज कर दिया जा चुका है। गेम का इस्तेमाल करते हैं, एक प्लेयर को डैमेज पूरा एलिमिनेशन 18 पे ही हुआ। एलिमिनेट हो जाएंगे। 52 स्पोर्ट्स थोड़ा स्कैम चल रहा भाई, पता नहीं इनके साथ क्या हो रहा है। बात आ चुकी है 17 वापस ये लोग #18 पे ही रहने वाला है। 4 किल्स लेकर जाने में कामयाब हो चुकी है टीम। टॉकिंग अबाउट #18 गेमिंग स्क्वाड के अगेंस्ट आता हुआ, तीनों के तीनों प्लेयर्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है। वहां से कोई गाड़ी लेके जा रहा है, इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई आउटिंग जनरेट कर पाएंगे। जीएस और वैम्पायर के बीच में हो सकता है, वैम्पायर का प्लेयर एक वहां पे प्रोन्ड है, मौजूद है, बगी लेकर निकल रही है, रिट्रीट बैक किया जा रहा है वीजीएस के की साइड से, और उनको भी अंदाजा नहीं है इस चीज का कि एक अकेला प्लेयर उनके नजदीक बिल्कुल मौजूद है। लुक एट दैट, दुआएं कर रहे होंगे फिलहाल के मुझे फ्लूक के ना भाई, बहुत फ्लूक का पसीना आ रहा होगा फिलहाल के लिए। वीजीएस भगवान कैसे क्या करूं, लोकेशन चेंज करती हुई, रोटेट करती हुई फर्दर आगे की तरफ जाएंगे मजीद अच्छी लूट स्कोर करने के लिए। लेकिन
एक लक का फैक्टर, लक साथ देती हुई टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के प्लेयर का, और मैं दाद दूंगा जिस उन्होंने हेक्टर के साथ भी ऐसे ही हुआ था भाई किया है यहाँ पर। आई थिंक सो दिस वाज द राइट डिसीजन। बिल्कुल जी, परफेक्ट डिसीजन। उठ के भगले भाई, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से। चलो बच गया, फ्लूक बच गया है गाइस। फ्लूक यहाँ पर अपनी टीम को ना सिर्फ अपने आप को बचाते बल्कि अपनी टीम को जो है वो एक अफोर्ड सिचुएशन में बरकरार रखते हुए नजर आते हैं, किसी भी तरह से डिसएडवांटेज में नहीं लेकर जाते। लेकिन जब आप एलिमिनेट हो रहे हैं यार एक्टर के साथ ना ऐसे ही हुआ था, बट गलत हुआ यार, उसको स्पॉट कर लिया एक्टर को, तो गलत था। किसी भी टीम के सामने जब फाइट स्कैम हो गया बेचारे के साथ, जाते हैं जो कि कोई बात आपको नहीं, एक बिना वजह का डिसएडवांटेज पहुंचा जाती है। लेकिन मॉर्फ वर्सेस फाल्कन यहाँ पर हमारे सामने बनता हुआ, फाल्कन की टीम लास्ट मैच की तरह यहाँ पर लूट करेगी, उसके बाद रोटेशन कर जाएगी। मॉर्फ और फाल्कन दोनों ही शायद जानते हैं, वाकिफ हैं इस बात से कि उनको किन कॉम्पाउंड्स को, किन एरियाज को तो टीम ये भाई आश्रम में आप देखेंगे कोई भी प्लेयर गलती नहीं कर रहा, ज्यादा करीब नहीं जा रहा, वहां पे पीछे है फाल्कन का मॉर्फ के, और यहाँ पर फाइट नहीं बन रही, कोई टसल नहीं बन रही। इसके बाद ये दोनों टीम्स डिफरेंट रॉकी आ गए उसकी टीम से, और देख सकते हो। सो मेरे ख्याल से हे भगवान कहाँ बफर दे रहा है, देख रहे हो हम किसी भी तरह का। हाँ भाई ये कर लो ना तुम लोगों, वाओ उसको इस मैच से बाहर जिनकी हम बात कर ही रहे थे, किल फीड में मिसोल्स के ओमेगा नॉक होते ही साथ एलिमिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा साउथ एशिया की जो टीम जूझ रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, वो टीम 52 रेस है। और मैं जब भी ये दुआ करता हूँ कि सोल के डैमेज खाने के बाद मैं दुआ करता हूँ कि 52 इसके बाद जो वो ना आए, तो ऐसा अपना सोल फुल एकदम 52 के एलिमिनेट मजे में खेल रहे हैं, बस अब सोल ना आए, हमें किल फीड के अंदर नजर और यही होता है कि सोल नजर आ जाती है। लेकिन चलें 3 प्लेयर्स अभी भी ओमेगा कहाँ मारा था, बिगड़ा जरूर है कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं बिगड़ा। एक अच्छा मैच निकाल सकती है टीम सोल, बट उसके लिए उनको अब किसी भी फाइट में नहीं जाना, यहाँ एक प्लेयर को एलिमिनेट करवाना क्या वजह बनी इसके पीछे हम बाद में बात करेंगे जरूर, जब हमें ओमेगा कहीं तो मरा था। क्योंकि हम इस चीज़ से वाकिफ नहीं है तो हम इस बारे में बात नहीं। अब वॉल्यूम इंक्रीज करना नाइट बॉट हूँ तो क्या हुआ देखूंगा तो मैं भी, वाह गुजर चुका है। ठीक है भाई ले ले नाइट बॉट तेरे लिए। हम खेल देख रहे हैं, तमाम टीम्स की तरफ से रोटेशन करने की कोशिश की जा रही है, और सर्कल में जो वो अच्छे सोल मस्त रोटेट देते हुए चौड़ बन रोटेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, और टीम सोल जिस एरिया से जा रही है आई डोंट थिंक सो उनको कुछ फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तीनों के तीनों प्लेयर्स इंटैक्ट है। ओमेगा को एक रोटेशन के दौरान आई थिंक सो पिक ऑफ किया गया होगा, बज़ाहिर लग ऐसे ही रहा है, या मे भी शायद कोई फाइट हुई हो, लेकिन अभी के लिए टीम सोल के प्लेयर्स तीनों के तीनों प्लेयर्स डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर मौजूद हैं और पोचिंकी के नज़दीक से रोटेट करते हुए निग्मा गैलेक्सी है राइट नाउ, और कोई भी फाइट लेना पसंद सोल नहीं करेंगे, लेकिन एनजीएस का स्क्वाड भी इस जगह से निकलना चाहता है बाहर को, और ड्यूरिंग द रोटेशन में भी शायद आगे जाकर लेट्स सी टीम सोल के प्लेयर्स कहाँ पर रुकते हैं, कहाँ पर वो स्टे करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली में भी शायद कोई फाइट बनती हुई नजर आए। लेकिन अभी के लिए एनजीएक्स के प्लेयर कुछ लूट एक्सचेंज की जा रही है उनकी तरफ से, और मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। फ्रीक के पास 4 ग्रेनेड्स रहेंगे, 8 स्मोक्स रहेंगे, कुछ मिड किट्स उनके पास मौजूद हैं, कुछ उनके पास पेन किलर्स मौजूद हैं, अच्छी लूट इख्तियार कर ली गई है उनकी तरफ से। लेकिन अभी के लिए ठीक आ गए, बिल्कुल करीब आते हैं, पता चल गया सोल के प्लेयर्स को पता चल गया सोल जा रहे हैं, थोड़ा सा बाकी लेकर अपनी शिफ्ट की है पोजीशन, और आई थिंक दैट वाज अ गुड मूव, क्योंकि काफी इंटेंस क्लोज अकेले प्लेयर का आना, अकेले खिलाड़ी अच्छा, अरे नहीं गॉब्लिन ने फायर कर दिया, हो सकता था। कुछ रैंडम फायर्स एक्सचेंज किए गए हैं सोल के गॉब्लिन की तरफ से, लेकिन कोई भी आउटिंग जनरेट नहीं की जाएगी। डीडब्ल्यूजी के प्लेयर्स भी मोहतात रह रहे हैं, वो भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहते, ज्यादा फ्रंट एंड पर नहीं जाना चाहते कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। टीम सोल भी उसी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रही है, दे आर वेटिंग फॉर डीडब्ल्यूजी डैम गेमिंग कि वो कोई गलती करे और फिर उनको हम लोग इस मैच में पनिश करते हुए नजर आए। लेकिन अभी के लिए फावियान भी अपनी व्हीकल के अंदर विराजमान हो चुके हैं, उनकी तरफ से फॉल बैक किया जा रहा है स्लाइड, और डीडब्ल्यूजी रीग्रुप होकर फाइट लेना चाहती है। टीम सोल भी तीनों के तीनों प्लेयर्स एक ही साथ फाइट लेना चाहते हैं। अब गॉब्लिन की तरफ से जब उनको आवाज आती है कि प्लेयर वहां से रिट्रीट बैक कर चुके हैं मे बी, तो वो आगे की तरफ जाएंगे, हाई ग्राउंड उनकी तरफ से अचीव किया जाएगा। विजुअल गेमिंग स्क्वाड याफूज हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स भी आ चुके हैं, और वीजीएस के अगेंस्ट थोड़ी सी स्काउटिंग जरूर की जा रही है, देखना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं कि कहां पर प्लेयर मौजूद है, थोड़ा सा जंप करते हैं, ज्यादा व्यू लेना चाहते हैं, एक वाइड एंगल व्यू लेना चाहते हैं, लेकिन सर्कल का शिफ्ट आई थिंक सो साउदर्न साइड पर आने वाला है, जहां पर बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड मौजूद है, मे भी शायद वहां पर हमें नेक्स्ट शिफ्ट बनता हुआ नजर आए।
सर्कल का शिफ्ट किस तरफ जाता है, किस टीम को फेवरेट करता हुआ नजर आता है। STE को आप देखें उनका कोई भी गेट कीप करते हुए नजर नहीं आता। वैम्पायर उनसे अच्छे खेल रहे हैं, तेरी बात नहीं हो रही वैम्पायर, उनकी बात हो रही है। ओके वही कोचिंग की फार्म ऑब्वियसली बात है। निग्मा गैलेक्सी यहाँ पर कोचिंग के आसपास रोटेट करते हुए जिस एरिया की तरफ जा रही काफ़ी एडवांटेजेस इनके लिए साबित होगा जरूर, बिकॉज ये 8 कॉम्पाउंड जो है यहाँ पर होल्ड बनाए रखना, आप यहाँ पर अगर आप होल्ड बना लेते हैं आपकी तरफ से एलिमिनेशन काफ़ी टीम्स पर दिखाई जा सकती है। लेकिन सोल को देखिए आप, वो बॉक्स से बिल्कुल करीब है और जिस तरह से आपने का सर्कल चाहता वही है, बट सोल वर्सेस बॉक्स का एक फाइट बनती है हमारे सामने या नहीं बनती, ये देखना बहुत जरूरी है। वो किल्स लेने पड़ेंगे यार, कम ऑन टीम सोल। जी बिल्कुल, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। अगर आप देखें मिलिट्री साइड जो ब्रिज है वहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी करता मैं तो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्लस्टर फॉर्मेशन भी बनती हुई नजर आ रही है वहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन वंस अगेन मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक करके ये प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं ड्यूरिंग हमेशा इनके प्लेयर्स को इस मैच से पिक ऑफ किया जाता है ड्यूरिंग द रोटेशन। दूसरे मैच में भी हमने देखा बैक टू बैक प्लेयर्स को ऐसे ही पिक ऑफ किया गया। पोलो सर्वाइव कर रहे हैं, तीनों के तीनों खिलाड़ी अभी तक इंटैक्ट हैं और बिल्कुल शोर साइड के ऊपर थोड़ा सा रुकना जरूर चाहेंगे, लेकिन अभी के लिए RSG कोशिश कर रही है कि मजीद कुछ नॉक्स निकाले जाए। टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स का पिक ऑफ काफी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मार भी दिया जाएगा व्हीकल बस्ट की जद में आते हैं और इंस्टेंटली भी कंफर्म कर लेती है टीम RSG। थर्ड पार्टी स्कोरिंग बहुत अच्छी है RSG को पॉइंट्स भी चाहिए। थर्ड पेज के ऊपर आई थिंक सो नीचे की साइड पे काफी मौजूद है। लुक एट दैट भाई they knew that कि यहाँ पर उनके प्लेयर अभी एलिमिनेट हुए हैं, सो यहाँ पर ऐसे गुजरना इसका कोई मकसद नहीं था, मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। लेकिन RSG को कि प्लेयर्स की गन्स बैक टू बैक एलिमिनेट जल्दी रीलोड हो जाती है। काश इनके पास M249 होती, चारों के पास वो रीलोड पे होती, फिर थोड़े से बचने के इम्कानात हो सकते थे। लेकिन रेगन्स गेमिंग अभी के लिए चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं और 4 किल्स भी स्कोर कर चुकी है। और कुल 4 किल्स पे स्कोर किए जा चुके हैं इनकी तरफ से। वैम्पायर स्पोर्ट्स एक वाइड टीम जो कि सर्कल के बाहर मौजूद है, आपको इस वक्त ब्लू नजर आ रही होगी इन द राइट साइड, लेकिन वैम्पायर स्पोर्ट्स सर्कल में जब आती है तो फिर सर्कल वाले परेशान हो जाते हैं। जब तक वो बाहर हैं तब तक उनके लिए परेशानी है, लेकिन जब वो सर्कल में आएंगे फिर सर्कल में जब बाकी टीम्स होगी वो उन पर परेशानी ढाते हुए नजर आते हैं। एक ही मैच में उन्होंने एक ऐसा अपना मयार सेट किया है आदि जो मैंने इससे पहले सेट करते हुए किसी टीम को पहले मैच में तो एटलीस्ट नहीं देखा इतने बड़े स्टेज पर। लेकिन चलें, उनका प्लेयर्स पूरा फैला हुआ है भाई वाइल्डकैट्स का। बहुत शानदार मैच की तरफ से 4 राइवल्स के भी 2 प्लेयर्स स्प्लिट, 4 राइवल्स इनको एक अच्छे टू स्प्लिट खेल रही है मोस्टली टीम्स। मलेशियन टीम जो कि हमें PMGC में बहुत ज़बरदस्त खेलते हुए नजर आई थी, मैं बार-बार ये बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ खेलना ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल होता है। PMGC की लॉबी ऑब्वियसली PMWI से ज़्यादा डिफिकल्ट होती जरूर है, लेकिन फिलहाल अभी तक अपना मोमेंटम नहीं पकड़ पाई ये टीम। देखिए जहाँ पर आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं बॉटम पर, आपके साथ इतनी बड़ी टीम सोच रही होती है, तो आपको ये बात जो है वो कहीं ना कहीं समझ आनी चाहिए कि मौका आपके पास भी है और उनके पास भी है। ये हैवी ड्राइवर है तो दिन का खेल डिसाइड नहीं करता कि आप वो वहाँ पे फोड़ दिया भाई TJB के प्लेयर को, कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपकी खतरनाक चीज बन सकती है। सो आपको कहीं ना कहीं रिकवरी मैचेस जल्दी। ये भी जोन डाउन है, ये भी जोन का डाउन शिफ्ट है। नहीं टॉप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट नहीं बोल रहा, टॉप शिफ्ट कोचिंग की। ये सर्कल हमें कुछ सेकंड से बता जरूर देगा। इमेजिन कोचिंग की और वो सोल सेंटर में आज पूरा कोचिंग की शिफ्ट है गाइस, ले लो हार्ड शिफ्ट पड़ेगा। ये जोन तो हार्ड शिफ्ट है, कोचिंग की फार्म हार्ड शिफ्ट, दोनों में से भाई कहाँ जाएगा? कोचिंग की हार्ड शिफ्ट आई थिंक सो। ओके टीम सोल इज इन द मिड ऑफ द सर्कल, बिल्कुल एपिसेंटर के ऊपर मौजूद है और टीम सोल के नज़दीक जो क्लस्टर बनने वाला है अब वो असल चैलेंज है। ऑब्वियसली जोन ने कुछ हद तक मुश्किलात में कमी ज़रूर की है सोल के लिए और आपकी दुआ भी हो जाती है कबूल, लेकिन अब असल चैलेंज है कि उस क्लस्टर का सामना आपको कैसे करना है। वो जो एक क्लाउड ऑफ टीम्स बनता हुआ आपको नजर आएगा, आपने उसमें अच्छे खासे किल्स भी स्कोर किए जा सकते हैं मिड में रहकर। लेकिन अभी के लिए टीम सोल का नाम लिया, हमारी स्क्रीन पर आ भी चुके हैं, बिल्कुल रिज के ऊपर मौजूद रहेंगे, पोचिंकी के नजदीक आउटस्कर्ट्स में रिज 5 USG के प्लेयर्स मौजूद हैं और USG पर आंखें जमाए हुए टीम 4 राइवल्स के प्लेयर भी मौजूद रहने वाले पोचिंकी में। पोचिंकी में बहुत जबरदस्त क्लस्टर हमें बनता हुआ नजर आया क्योंकि काफी एक्सटेंसिव सिटी है और यहाँ पर 2 से 3 को आइडिया नहीं कि कोचिंग इससे भाई 4 राइवल्स भी देख रहे हैं। हेक्टर गाड़ी लेना चाहता है, स्क्वाड ही सिर्फ मौजूद है और उनके करीब बिल्कुल बान हाउस में टीम डोनट्स USG का स्क्वाड भी रहने वाला है। टीम सोल बिल्कुल नॉर्दर्न साइड के ऊपर साउदर्न साइड ऑफ द मैप रहने वाली है पोचिंकी के, लेकिन अभी के लिए कोई भी ऐसे खास फाइट बनती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। टीम के मोमेंट बैक आउटसाइड सर्कल थी, अभी सर्कल के अंदर वो भी आ चुके हैं। कोई भी ऐसा स्क्वाड नहीं है जो सर्कल के बाहर हो, सबके सब टीम्स सर्कल के अंदर जाने की कोशिश एटलीस्ट कर रही है। ब्लू
जोन के अंदर इनफैक्ट कोई भी टीम मौजूद नहीं है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स, अलादीन आपने जैसे मेंशन किया था कि जैसे ही वो सर्कल के अंदर आ जाएंगे, इस स्क्वाड की मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है, दे ऑलवेज लाइक टू प्ले इनसाइड द सर्कल। लुक एट दिस, सर्कल के बाहर वो फाइट लेते ही नहीं। ओनर है वैम्पायर, ओनर नेम इज वैम्पायर एक्सडी। सपने में गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो? 280 सब्स ओनली, लेट्स गो। ज्यादा कुछ नहीं खेला लेकिन उनके सामने काफी एरिया खाली है। ओके गया, डेड, नॉक हो गया, डेड भी हो जाएगा इजी। और कहां पर कब ये प्लेयर एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ वीवो केट स्टार्स वालों ने वीवो केट जो भी नाम है भाई इनका, केट कियो ताक लगाए बैठे थे यहाँ पर वैम्पायर के प्लेयर्स और किल कंफर्म किया जाता है। एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, सर्कल के बनते ही मैंने देखा कि सोल हेक्टर को जो है वो इंस्टेंटली रिग्रुप करने के लिए कहा जाता है। हालांकि वो डिस्पर्स थे काफी दूर से अपनी टीम से, लेकिन फिलहाल कैपिटलाइज किस तरह से करते हैं सर्कल के शिफ्ट को, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। सर्कल बनना को बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है सर्कल। ये भी सर्कल पोचिंगी का ही है रे, पोचिंगी का ही होगा जोन, लिंक लो पोचिंगी डाउन साइड किल्स कंफर्म ना करने देना और उनके ऊपर किल्स कंफर्म करके अपने बैकपैक ओ भाई क्या ड्राइविंग रे, अरे बैठ भाई बगी का टायर बस वीवो के भाई के उनके काम नहीं आते बिकॉज़ डिफरेंट साइड उनको स्पॉट करते हुए एक प्लेयर डाउन स्पोर्ट्स के उनके ऊपर नॉक्स निकालते हैं, इंस्टेंट किल कंफर्मेशन भी किया जाता है। ये चीज़ वैम्पायर स्पोर्ट्स की बहुत शानदार है। टीम प्लेयर्स को देखें आप वो कहाँ खेल रहे हैं, एक पर एक डिफरेंट एंगल पे मौजूद था कि अगर इस टीम पर रश भी हो जाता है, अगर कोई और आकर यहाँ पर एग्रेसिव ऊपर टीजीबी का एक प्लेयर है, टीजीबी का एंड डिफरेंट एंगल पे प्लेयर मौजूद है, वो कहीं ओ पी मेरे को लगा टीजीबी का प्लेयर वो ओपोनेंट टीम को वल्नरेबल कर भाई गलत हो गया रे, एक बार फिर से आती शिफ्ट लेकर बोले भाई टीजीबी उनके ऊपर ये कर लेगा। बिल्कुल सर्कल बिल्कुल पोचिंकी के नज़दीक एक इख्तितामी शक्ल लेकर जा चुका है अभी के लिए, लेकिन टीजेबी ईस्पोर्ट्स अभी अपने 2 प्लेयर्स को गवा चुकी है। तीसरे प्लेयर भी नॉक डाउन को रिवाइवल दिया जा रहा है, लेकिन किल फीड के अंदर ग्रेनेड्स का कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तांबुल वाइल्डकैट्स मौजूद हैं और इनके अगेंस्ट टीम विजुअल गेमिंग का स्क्वाड आ चुका है। इस रिच के ऊपर पहले मैच के अंदर हमने देखा था आगाजी फाइट एक ली गई थी, इस मैच के अंदर भी इस्तांबुल वाइल्डकैट्स और वीजीएस के एक आमना सामना बनता हुआ, एक क्लैश बनता हुआ। वीजीएल्स शॉट ऊपर हो गया, बहुत गलत वाला सैंडविच किया गया आईडब्ल्यूएल के प्लेयर को, लेकिन नॉक नहीं निकाल पाए। यूएमपी45 का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ बुलेट स्टैक करें, लेकिन बहुत खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत रिटालिएट किया जाता है। जवाबी कार्रवाई बहुत जबरदस्त की गई और वीजीएस अब डाउन टू 3 मैन आ चुकी है। टूर्नामेंट है क्या? यस ब्रो, PMWI खिलाड़ी सर्वाइव कर रहा है और मैं देखना चाहता हूं कि इनके अकेले प्लेयर जो मौजूद हैं यहाँ पर बोरन, उनकी तरफ से कैसे सर्वाइव किया जाता है। It is a 1v1, I think. So yes, it is a 1v1 situation between Istanbul Wildcats and Team Virtual Gaming Squad. प्लेयर्स को रिवाइव कर देंगे अभी के लिए दोनों तरफ रिवाइवल की प्रोसेस इनिशियलाइज कर दिया जा चुका है, कोशिश की जा रही है उसको रिवाइव करता है, उसका एचपी लो है तो कंप्लीट हो और उसके बाद यहां से निकला जाए या तो इस फाइट के अंदर जूझा जाए, लेकिन VGS Virtual Gaming Squad के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि इस फाइट को खत्म किया जाए। बेस्ट बीच में प्लेयर इन इंडिया इज वैम्पायर एक्सडी, वाओ प्लेयर यहां से ट्रीट बैक कर जाते हैं और अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाना चाहते हैं। ही इज फोकसिंग टोटली ऑन हिज सर्वाइवल कि किसी ना किसी तरह इस मैच से जाते कुछ ना कुछ पॉइंट से सर्वाइवल की जद में आकर लेकर जरूर जाएं। आईडब्ल्यूएल के बाकी प्लेयर्स जो नॉक थे एलिमिनेट होते हुए, टीजेबी का स्क्वाड भी बैक एंड के ऊपर वीवो केट के स्क्वाड से जूझता हुआ। अच्छी फॉर्मेशन है, मॉफ की बहुत खूबसूरत फॉर्मेशन है। फाल्कन स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को जैसे रैप राउंड किया गया है, दैट इज क्वाइट गुड। बिल्कुल जिस तरह से रैप राउंड किया गया काफ़ी खूबसूरत जरूर था। कैलफीन हमने देखा कि इस्तांबुल वाइल्डकैट्स इस वक्त लॉबी की तरफ चली जाती है, लेकिन मॉर्फ वर्सेस फाल्कन की फाइट में मॉर्फ के फ्रेंड्स काफ़ी लो हैं। जॉर्ड नेट पड़ा है, गया नेट से ही जाएगा, उनके ऊपर लैंड करने वाला है और उनके ऊपर अरे नहीं रे, और एक नेट परफेक्ट हो जाते हैं इस वक्त फ्रेंड्स। आखिरी में बचाएंगे फाल्कन्स काफ़ी खूबसूरती के साथ फाइट लेकर जाते हुए नजर आएंगे। मैं पहली बार उनको फाइट में इस तरह से विन करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अपने प्लेयर पर रिवाइव करना पड़ेगा। नेवर अलोन सर्कल के बाहर रहा है, नेवर अलोन उनका नाम है, लेकिन वो इस वक्त हमें अलोन नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके आसपास कोई भी प्लेयर को रिजल्ट देने के लिए नजर नहीं आ रहा और प्लेयर्स का फोकस भी नहीं है उनके ऊपर, बाकी प्लेयर्स का, बचे हुए प्लेयर्स का। और इसी के साथ साथ वो जोन के बाहर जूझते हुए ही अपनी जान भी दे जाते हैं। सर्कल में मौजूद टीम सोल एक बार फिर से सेंटर में आ जाती है, ये काफ़ी शानदार नजर आ रहा है हमें इस वक्त। सर्कल में जब शिफ्ट खाया था तब वो टीम सर्कल से थोड़ा सा दूर शुरू हो गई थी, बट अभी सेंटर में फिर से टीम सोल जा चुकी है और टीम सोल भाई इस बार सर्वाइव कर रही है। जॉर्ड वाला वहीं पर उनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि अभी 40 प्लेयर्स बहुत सारे प्लेयर्स अलाइव हैं। डीडब्ल्यूजी सर्कल में आती हुई टीम फाल्कन्स इस बार उनको हाइट से गेट कीप कर रहे हैं और डीडब्ल्यूजी की टीजीबी हैव स्टडी एलिमिनेशन, क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है। 12 टीम्स बाकी है भाई।
अभी के लिए बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। कोई भी किल फिलहाल उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन एक अच्छी एज के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। टीम फाल्कन्स का स्क्वाड बिल्कुल सामने मौजूद है। डीडब्ल्यूजी के एक स्पॉट आउट करके कामयाब, एलिमिनेट भी करते हैं, नॉक करते हैं, जाएंगे एलिमिनेशन की तरफ। लेकिन अभी के लिए उनकी गन रीलोड पर जाएगी। बॉक्स गेमिंग भी बैक एंड से कोशिश करेगी कि सर्कल के अंदर किसी ना किसी तरह अपनी जगह बना पाए। टीम फाल्कन्स उनको भी गेट कीप कर सकते हैं। 3 अच्छे किल्स उनके पास मौजूद हैं। डीडब्ल्यूजी के 2 प्लेयर्स अभी तक सर्वाइव करते हुए, बॉक्स के प्लेयर बैक एंड के ऊपर थर्ड पार्टी स्कोर करते हुए टीम के ऊपर, और एक मजीद प्लेयर को नॉक कर दिया जा चुका है। फाबियान वंस अगेन ही इज डाउन ऑन हिज नीज, उनका भी किल कंफर्म हो जाएगा। पिंच डाउन हो गई थी डीडब्ल्यूजी 2 टीम्स के दरमियान, और दोनों टीम्स भरपूर तरीके से सिचुएशन का फायदा उठाती हुई अपने हक में करती हुई इस सारी फाइट को। डीडब्ल्यूजी अब 2 ही प्लेयर्स हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कैसे वो यहां से बाहर निकलते हैं, क्योंकि स्मोक्स नजर आ रही है। दिस शोज के व्हीकल लेकर निकलने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन बॉक्स गेमिंग और फाल्कन से बचना थोड़ा नामुमकिन दिखाई दे रहा है अभी के लिए। देखते हैं टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के एक्शन बगी के ऊपर बैठे हुए थे। आरएसजी के लाइटनिंग आ रहे हैं, ओके वो स्पॉट ही नहीं कर पाए। आरएसजी के बैक एंड से डिफरेंट प्लेयर टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करते हैं। ऐसा कभी हो जाता है, कभी ओए 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 यहाँ पर जब क्या मार रहा भाई टीम भाई फाल्कन ये कर रही है उठाना पड़ा उनको, लेकिन डीडब्ल्यूजी जो सर्कल बनाने की मस्त। अरे टीम सोल के अक्षत के ऊपर फायर चाहता है, और कुछ उनके बैकपैक में भी जा रहे हैं। काफी अच्छा जरूर है। सर्कल फिर से उनके ऊपर आ चुका है। सर्कल की बार सर्कल टॉप में जाएगा, ये तो सोल का बनेगा या तो टॉप में जाएगा। मेहरबानी कदरदानी इस वक्त टीम सोल को जब वो किसी ना किसी तरह अब साबित करना है कि अगर उनको सर्कल बार बार फेवर दे रहा है तो वो उसको कैश भी करना जानते हैं। लेकिन वहीं पर एजेस पर फाइट होती हुई ब्रेक वर्सेस बॉक्स वर्सेस टीम फाल्कन्स की। ब्रेक इस वक्त सर्कल में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर फाल्कन के प्लेयर्स उनको सर्कल में नहीं आने देना चाहेंगे। धमार की टीपी चल रही है, लेकिन डीपी से अभी तक वो नॉक नहीं निकाल पाए। किल फीड में एटॉन का भी एक प्लेयर डाउन है, एटॉन को फिनिश कर दे। चलो छोड़ो, ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर चुके हैं। जी हां, तमाम प्लेयर्स को एलिमिनेट कर चुके हैं विदाउट लूजिंग अ सिंगल प्लेयर। 4 Rebels इज बैक इन द गेम, लेकिन वहीं पर वैम्पायर ईस्पोर्ट्स उनके काफी क्लोज मौजूद है। बॉक्स वर्सेस फाल्कन क्या अभी बिल्कुल, और बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स कुछ कॉम्प्रोमाइज होते हुए। जस्ट लुक एट द ऑडियंस, कैसे ऑडियंस अपनी होस्ट कंट्री इनवाइट को सपोर्ट करती हुई, और वो आवाजें जो अरीना में गूंज रही हैं वो सुनने का अपना ही मजा है। वो एक हाइप क्रिएट करती हुई नजर आती है, एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। लेकिन बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स अभी भी 3 सर्वाइव कर रहे हैं। काफी प्रोलॉन्ग ये फाइट होती हुई। एज के ऊपर 3 टीम्स मुख्तलिफ मौजूद है। अगर आप मिनी मैप में देखो, आरएसजी भी बैक एंड के ऊपर इंतजार कर रही है कि जो टीम यहाँ से बचकर निकलेगी उसके ऊपर हम किल स्कोर जरूर करेंगे। लेकिन आरएसजी के फ्लावर सी नेड्स का इस्तेमाल करते हुए 5 अदद नेड्स इनके पास अभी तक मौजूद रहने वाले। टीम फाल्कन्स कोशिश करेगी किसी न किसी तरह सर्वाइवल को यकीनी बनाया जाए, लेकिन मुझे अपने ही प्लेयर्स के ऊपर नेड स्पैम ना कर दिया जाए। लेकिन आरएसजी के प्लेयर्स एक अच्छे डायरेक्शन में अच्छे नेड स्पैम करते हैं। प्रोजेक्टाइल बहुत बेहतरीन रहता है। बॉक्स गेमिंग के दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाता है। आखिरी भी प्लेयर इस मैच से एलिमिनेट हो जाता है, और टीम बॉक्स गेमिंग 4 एलिमिनेशन स्कोर करने के बाद #9 के ऊपर इस मैच से हमें खैर बात कहती हुई टीम आरएसजी वर्सेस फाल्कन्स की अब फाइट बनती हुई नजर आएगी। सर्कल शिफ्ट लेकर जा चुका है आरएसजी। खेल रही है टीम फाल्कन्स। रेड डॉट का बेहतरीन इस्तेमाल, बहुत अच्छा स्प्रे किया जाता है, और आरएसजी का नीड गॉब्लिन पे पड़ा है जाता है। जीजी अभी तक जिंदा रहेंगे। टीम फाल्कन्स आहिस्ता आहिस्ता क्लोज इन करती हुई जीजी स्मोक्स का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लाइंड कवर अपने लिए वर्चुअल कवर डिप्लॉय कर चुके हैं। फाल्कन्स स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसजी की जीजी बैकएंड के ऊपर काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और इस मैच से वो भी ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने वाले हैं। लिटरली 20 एचपी पर अभी तक मौजूद है। अरे गॉब्लिन को ले लिया। का इस्तेमाल करते हुए टीम फाल्कन्स नेड्स का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, और अभी भी एक और नेड थ्रो किया गया है। नेड आएगा काफी करीब, कॉम्प्रोमाइज भी करता है, हेल्थ काफी ज्यादा डिप्लीट भी करता है, लेकिन आरएसजी के प्लेयर अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि ये अकेला लड़का कितनी मुश्किलात में लेकर आ सकता है। बाथरूम पे हो क्या? हां ब्रो, बाथरूम में बैठ के स्ट्रीम कर रहा हूं। एक और मजीद स्क्वाड को इस मैच से एलिमिनेट किया गया इसी जगह के ऊपर। अभी तक आरएसजी जीजी सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है, बहुत बेहतरीन नेड स्पैम किए जा रहे हैं, लेकिन टीम सोल के अक्षर यहां पर मौजूद रहते हैं, स्पॉट आउट करते हैं, नॉक करने में कामयाब नहीं रहते। 2 प्लेयर्स एक ही साथ टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के रशन करते हैं। 60 किल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। टीम 4 राइवल्स के प्लेयर्स इसी चीज का फायदा उठाते हुए आते हैं, लेकिन वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स उनको भी नॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। 4 राइवल्स बैक एंड के ऊपर अभी तक 2 प्लेयर्स मौजूद है। टीम सोल भरपूर तरीके से फायदा उठा सकती थी सिचुएशन का, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 2 ही किल्स उनके पास मौजूद हैं, और एक प्लेयर उनके अकेले सर्वाइव करते हुए। 4 राइवल्स वर्सेस टीम वीपीई बहुत अच्छी जगह पर है। निग्मा गैलेक्सी भी बीच के अंदर मौजूद रहने वाली है। निग्मा ले गया तो यूएसजी मौजूद रहने वाला। टीम फाल्कन्स भी ले सकती
सकती है फैल्कन्स बहुत के पीछे से आती हुई हमें नजर आ रही है। निग्मा गैलेक्सी को अब इस सिचुएशन को अपने फायदे में लेकर जाना है। पिंच डाउन है दो टीम्स के बीच में, लेकिन अभी के लिए कोई सूरत हाल खराब नहीं बनी उनके लिए। नेट का इस्तेमाल करते हैं, वीपीई को नेट हिट भी करता है, एक प्लेयर नॉक भी हो जाएगी फ्री के हाथों। और वीपीई के आखिरी प्लेयर सर्वाइव करते हुए देखना चाहता हूं कि क्या अपने प्लेयर को उठा पाएंगे। रिवाइवल का प्रोसेस इनिशियलाइज करते हुए बाकी से निग्मा गैलेक्सी को फ्री के ग्रेस करते हुए स्मोक्स का इस्तेमाल करते हैं, हर तरफ वर्चुअल कवर डिप्लॉय करने की उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी। डिप का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं यूएसजी के प्लेयर्स। बैकएंड के ऊपर अभी सिचुएशन को देख रहे हैं, सिर्फ वो एनालाइज कर रहे हैं कि सही वक्त का फायदा कब उठाएं। फाल्कन्स अभी भी सर्वाइव करते हुए और बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस निकल आती है। एनजीएक्स के बैकपैक में 3 किल आते हुए। जस्ट लुक एट द वॉइसेस, क्या ही जबरदस्त एक शोर मचाया जा रहा है ऑडियंस की तरफ से। बिल्कुल सी फाइनली निग्मा गैलेक्सी की तरफ से एक अच्छा मैच निकाला गया जरूर है, अभी तक निकाला आदमी को बात है। टीम 16 अच्छा खेल रही है बट थोड़ा स्कैम हो रहा है उनके साथ। यहां पर थोड़ा निग्मा गैलेक्सी के पास एडवांटेज दो ही उनको अरे चॉट ने एपी का, लेकिन 4 राइवल्स के प्लेयर्स कहां से आते हैं और रऊफी को हे भगवान 4 राइवल्स कहां से ले लिया। उनके प्लेयर्स एक के बाद एक नॉक होते हैं। बैकएंड से यूएसजी आता है। सैड जी ब्रो, सैड यार, सैड गैलेक्सी एक के बाद एक देखते ही देखते प्लेयर्स गवाती हुई नजर आ रही है। कम ऑन जा रहा है स्टोन यहां पर आहिस्ता आहिस्ता आगे पुश करते हुए। अब तो मेरे को पक्का लग रहा है ये तो यूएसजी या फिर वैम्पायर में भी ले भी सकता है, बट यू नो यूएसजी के पास चांसेस है, पोजीशनिंग भी अच्छी है। लेकिन सर्कल से बाहर है वो टीम, हाइट से वो टीम काफी किल्स बटोर सकती है, लेकिन उनको सर्कल में टीम सीरियसली आना पड़ेगा। वहीं इसका क्या हो रहा है रे बब्बा, ये भगवान मैं नेपाल का ही ना देख लूं। तरफ से सर्वाइवल निकालने की कोशिश की भाई, मैं नेपाल का लगा दूं क्या यार, नेपाल का लगा देता हूं, इनका बहुत गंदा चल रहा है। टीम फाल्कन्स को अब अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं क्योंकि उनको सर्कल के अंदर भाई नेपाल का लगा देता हूं मैं, रुको। अब थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। गंदा स्ट्रीमिंग को खेलनी नहीं था, मैं ही जीतूंगा देख लेना। कौन बोला 9 किल्स इनके पास। अबे क्या रे, कितना गंदा स्ट्रीम है इनका। शी सर्कल के अंदर बनाना भी प्लेयर्स एक के बाद एक नॉक होते हैं। बैकएंड से यूएसजी आ जाती है। ओह नो टीम निग्मा गैलेक्सी एक के बाद एक देखते ही देखते प्लेयर्स गवाती हुई नजर आती है। हर तरफ से कहर बरसाया जा रहा है। स्टोन यहां पर भाई यूएसजी ले सकती है। फर्स्ट चिकन होगा यूएसजी का अगर ले ले तो। इस मैच के एफएलसी इनके काफी करीब मौजूद, फाल्कन गेमिंग इनके काफी करीब मौजूद, लेकिन सर्कल से बाहर है वो टीम। हाइट से वो टीम काफी फैल्कन्स का हो सकता है चिकन, बट वो थोड़ा जोन के बाहर है और जोन में जाना पड़ेगा। उनका इशू है या तेरा हक रहा है? अबे उनका इशू है, मेरा हक था ना। तो अभी इसमें भी हक सर्वाइवल निकालने की कोशिश की जा रही है। टीम डोनट्स यूएसजी काफी देर से इस जगह के ऊपर सर्वाइव करते हुए टीम फाल्कन्स को अब अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं क्योंकि उनको सर्कल के अंदर जाना है। स्प्लिट स्ट्रेटजी उनकी तरफ से इस्तेमाल की जरूर जा रही है। मैप अगर आप देखें, एक प्लेयर जो स्प्लिट अप थे उनको ले जाएगा यूएसजी, ले जाएगा यूएसजी, ले जाएगा। 9 किल्स इनके पास टोटल मौजूद हैं। 2 किल्स जीजी के पास मौजूद रहने वाले हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर यूएसजी इस मैच में थोड़ा लाइक सर्कल के अंदर बनाना भी चाहते हैं। टीम फाल्कन के वो प्लेयर हो सकते हैं जो कि इनको स्पॉट डाउन करे, क्योंकि बाकी जो लॉबी है वो ऑलरेडी एक ऐसे एरिया पर मौजूद है जहां से इतना अच्छा एंगल नहीं बन पाएगा टीम आरएसजी के प्लेयर को। लुक एट दैट, और वही होता है। फाल्कन के यूसुफ आखिरी किल भी टीम आरएसजी के प्लेयर का स्कोर करते हुए 10 किल्स पर जा चुका है। ये स्क्वाड ऑलरेडी बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुकी है। वीपीई वर्सेस फाल्कन के दरमियान ये सारा मैच बनता हुआ। 10 किल्स वीपीई के पास मौजूद है, फाल्कन्स के पास भी 10 से 11 किल्स मौजूद रहने वाले। डोनट्स यूएसजी के प्लेयर्स स्पॉट डाउन करते हैं, लेकिन अभी के लिए कोई भी नॉक जनरेट नहीं कर पाए। वीपीई स्पोर्ट्स के प्लेयर अच्छा खेल रहे थे वो लोग फाल्कन वाले। मौजूद रहेगा, नेट भी थ्रो किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे फिलहाल। नेट उनके पास जोन का एडवांटेज करेगा, लेकिन अभी के लिए कोई भी आउटिंग जनरेट नहीं कर पाएंगे। यूएसजी आगे की तरफ रवानगी इख्तियार करती हुई एनजीएक्स को मैं दाद दूंगा जिस तरह से उन्होंने इस मुश्किल सिचुएशन का सामना किया है, जैसी रेजिस्टेंस उन्होंने दिखाई है, जैसी मज़ाहमत की है सिचुएशन में रहते हुए, मैं उसको दाद जरूर दूंगा। लेकिन अभी के लिए निग्मा वाले बोलेंगे क्या पे सैंडविच हो गया हमारे इनके बीच में, व्हीकल बस को अच्छे तरीके से काश किया जाए, लेकिन यूएसजी भी घबरा रही है। दे जस्ट डोंट वांट टू पुश राइट अवे, लेकिन वीपीई मौके का फायदा उठा रही है। एनजीएक्स के 2 करते हुए 13 किल्स पर जा चुकी है और एनजीएक्स की कंप्लीट स्क्वाड को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। 13 किल्स कर चुकी है। एक प्लेयर नॉक है, यूएसजी के प्लेयर्स को स्पॉट डाउन करने में कामयाब टीम 4 राइवल्स के प्लेयर बैक इन टीम फाल्कन्स भी एलिमिनेट हो जाती है। यूएसजी वर्सेस वीपीई की फाइट बनती हुई 4 राइवल्स आखिरी टीम थी, थर्ड टीम थी जो इस मैच से एलिमिनेट होती है और हाश 3 के ऊपर आते हुए अपनी जगह कामयाबी से बना लेंगे। लेकिन अभी के लिए 2 टीम्स आमने सामने आ चुकी हैं। 2v3 सिचुएशन बन चुकी है, 3v3 सिचुएशन बन चुकी है।
प्लेयर नॉक है यूएसजी के, जिनको रिवाइव देना पड़ेगा। अगर एक उसको देना चाहिए रिवाइव एक्चुअली स्मोक को डाल के, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस कर रहे हैं कि कोई ना कोई गलती जरूर की जाए। दे नीड टू गेट इनसाइड द जोन। सिर्फ 6 से 7 मीटर का ये डिस्टेंस है, लेकिन बहुत मुश्किल बना दिया जाएगा ये डिस्टेंस तय करना, ये सफर तय करना। इस सफर के दौरान काफी ज्यादा सफर भी किया जा सकता है इस टीम की तरफ से, लेकिन दे नीड टू कैच दिस आउट। 13 किल्स को चिकन डिनर में बदलना पड़ेगा। मे बी यूएसजी ले जाएगा रे, बदलना पड़ेगा। सिचुएशन यहां पर 4v3 की हो चुकी है। यूएसजी ले गया ना, फर्स्ट होगा चिकन। वैम्पायर ले गया ना, रिवाइवल देने नहीं देना हो गया। वैम्पायर पूरा मार लेगा इस दिन का। तो यहां पर चीजें काफी तब्दील हो सकती थी, लेकिन अब हालात सारे शिफ्ट होते हुए वैम्पायर स्पोर्ट्स की तरफ से टीम डोनट्स यूएसजी के ऊपर, और यूएसजी वालों को लेफ्ट पूरा स्मोक करके जाना चाहिए एक्चुअली। लेफ्ट में पूरा लेफ्ट ले लेना चाहिए। सामने टीम के पास 3 प्लेयर्स मौजूद, एडवांटेज मेन एडवांटेज है इस वक्त कहीं ना कहीं जो यूएसजी के पास है। और देखो स्मोक कर भाई, बता बोला भाई मैंने उनको स्मोक कर दो। यूएसजी वालों क्या कर रहे हो? सुन लिया रे मेरा। ओह क्या मारा है जोन के बीच। काफी लो किया जाएगा। ओमिकॉन डाउन वैम्पायर ले लेगा वैम्पायर इस बार ले लेगा। छोड़, प्रेशर क्रिएट हो गया उनके ऊपर। पहले ही करना चाहिए था ना स्मोक उनको, अभी कर रहे हैं। ले लेगा रे वैम्पायर एनएच के। कवर लेते हुए आगे बढ़ेंगे। शोपेक्स के ऊपर डैमेज पड़ता हुआ काफी लोग वो भी हो जाते हैं। डाउन टू अभी भी कुछ कह नहीं सकते। रुको वैम्पायर का भी एक नॉक है, अभी भी कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है ड्रॉप शॉट देते हैं, उसे रिवाइव किया जा चुका है। किस तरह से खेलती हुई भाई, क्या रिवर्स किया है इनके ऊपर यूएसजी वालों ने। क्या रिवर्स किया है यूएसजी वालों ने, क्या रिवर्स किया है, क्या खेले यूएसजी। जो रिवर्स किया है ना इनके ऊपर भाई साहब, I don't wanna talk about it now। क्या खेले भाई। क्या मतलब इंडियस बाहर से आईजीएल कर रहा है, क्या मतलब है आईजी इनको आईजी कोचिंग नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल, और जैसा नाम वैसा ही क्या काम। जिस रिवर्स किया है यूएसजी वालों ने उनके ऊपर। और जो खुशी है उनके चेहरों पर, वो ये बता रही है कि दे वर फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग इन दिस। अगर यूएसजी फाइट ने साबित किया कि किस जज्बे के साथ वो इस मैदान। क्या मतलब यूएसजी वालों को कोचिंग नहीं दी है। बहुत अच्छे तरीके से टीम उन्होंने जो स्मोकिंग किया ना लास्ट का स्मोक, वो थोड़ा लेट किया था। उनको बैलेंस कर देना चाहिए था, बहुत गलत किया। आगे बढ़ाएगी बट स्टिल भाई, स्पोर्ट्स 13 से ज्यादा वैम्पायर ले जाएगी जब उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। बट दे वर लाइक नो, विल क्रिएट प्रेशर ऑन यू। मेरे ख्याल से कंपटीशन मजीद मुश्किल बनाया जा रहा है। हे भगवान यूएसजी, क्या कर रहे हो तुम लोग। हो सकता है अलादीन गलत प्रेशर किया। उन्होंने ना यूएसजी वालों ने बहुत ओपी सीन किया वहाँ पे। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे भाई पूछना, झूठ लग रहा है तेरे को यार, इसको झूठ लग रहा है भाई। इसको पूछ, मिसाइल को पूछ, नाओटो को पूछ, और कौन है, ओमिकॉन को पूछ। ओमिकॉन सॉरी ओमिकॉन। फिर ओजी भी है, ओजी सान को भी पूछ ले भाई। कोचिंग कौन देता है उनको, पूछ ऐसा उनको कोचिंग कौन देता है भाई, जाया ही ना चाहे। जो फाइट्स में ये टीम उनको पूछ, नाओटो को पूछ, मिकुन को पूछ, ओजी-सान को पूछ। मिसाइल छोड़, मिसाइल कोरियन प्लेयर है। मिसाइल स्टिल मतलब मिसाइल को भी पूछ लो, उसको मैं नहीं बोला था भाई कोचिंग ब्रो। कोचिंग यू नो ब्रो कोच ब्रो, आई एम कोच यू नो। कोच करना भाई मेरा फर्ज बनता है मेरी टीम को, अच्छी बात है यू नो। बट कुछ भी बोलो, यूएसजी को तो कोचिंग देता है बस, क्या यार, मैं ही तो कोच भाई यूएसजी का। भाई क्या मतलब है, यूएसजी वाले अभी कॉल करके मेरे को बोलेंगे अंधा है क्या। एक्चुअली ना वो अच्छा प्रेशर वैम्पायर वालों, देख चिकन वैम्पायर वालों का ही था, बट वैम्पायर का एक्चुअली गलती क्या हो गया, ज़्यादा से मोस्टली ना उनको थ्रोएबल्स यूज़ कर देना चाहिए था। जितने थ्रोएबल्स ने डाल देने चाहिए थे उनके ऊपर। उनका एक्चुअली गलती क्या हो गया ना कि वो ज़्यादा फॉरवर्ड चले गए और ज़्यादा ओपन भी चले गए। उन लाइक एक तरफ से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई इनके प्लेयर्स तो डेड है, हम लोग जाएंगे, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस मार देंगे। अरे गेमर 9095 वेलकम टू द स्ट्रीम प्रो। टीम इंडिया एंड FTW, यस टीम इंडिया फॉर द विन। बट फिलहाल थोड़ा टीम इंडिया के साथ हमारे स्कैम हो रहा है एंड देखते हैं क्या होता है। थोड़ा स्कैम हो रहा है हमारे प्लेयर्स के साथ, बट यू नो ट्रैक पे आ जाएंगे वो, डोंट वरी। Bro, what is this? Bro, this is PMWI, PUBG Mobile World Invitational, जहाँ पे हमारी टीम रिप्रेजेंट कर रही है, टीम सोल रिप्रेजेंट कर रही है हमारे इसको। इनको ना यार वैम्पायर वालों को ना ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए था यार।
प्रेशर से अभी अडाप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ वही थोड़ा सीन है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। वेलोसिटी की तरह, वेलोसिटी टाइम पास कर रहा है, ही इज नॉट हियर। अभी यूएसजी का चिकन हुआ ना तो टॉप 5 में आ जाएंगे। 6 में थे ना यूएसजी, टॉप 5 में आ जाएंगे यूएसजी। आप टीम सोल में हो, मैं टीम सोल में हूँ। हाँ हाँ मैं टीम सोल में हूँ, मैं खेल रहा हूँ। क्या मतलब, अरे नहीं मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। मैं वी आर डूइंग वॉच पार्टी ब्रो। यूएसजी कोच नेम इज इंडस्ट्री, यूएसजी नहीं है यूएसजी है वैम्पायर। डॉलर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। झूठ बोल रहा है साला, खुद तो एक्सक्यूज देता है, ये क्या कोचिंग करेगा। ओ भाई तमीज से, ओके यू नो नोवा को मैंने कोचिंग दी थी भाई, समझ रहा है। लेकिन स्टिल दे स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट्स। अबे वैम्पायर क्या खेल रहे भाई, तेरी तो ये देख लो बे, इस मैच में 21 हाईएस्ट पॉइंट्स है कामयाब, और सिर्फ किल्स की बेसिस के ऊपर वैम्पायर ईस्पोर्ट्स टोटली डोमिनेट करती है। लेकिन मैं भाई वैम्पायर यार, मैं बोल रहा हूँ गाइस वैम्पायर ले सकती है यार, वैम्पायर सीरियसली ये पूरा वर्ल्ड इनविटेशन जीत सकते है, ले सकती है पूरा। और 16 ओवरऑल क्या नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। कामयाबी हासिल कर लेते हैं। 4 राइवल्स जिनको हम लोग मैच से पहले भी बात कर रहे थे कि ये वो आई थॉट अभी यूएसजी का ये होगा एक टॉप टोटल पॉइंट्स एंड ऑल दैट, बट उनका एलिमिनेशन पॉइंट्स कम पड़ गया बेचारों का। प्लेसमेंट पॉइंट तो है उनके पास ज़्यादा, पर एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है, सो दैट मेक्स वैम्पायर एश वन कहीं एक अच्छा कमबैक दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन 11 ही पॉइंट्स लेकर जाने में कामयाबी इख्तियार करते हैं। एटॉन ईस्पोर्ट्स 6 पॉइंट्स जो कि काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं आज के दिन, वो 5 पॉइंट्स लेकर जाते हैं। क्या बोल रहे ब्रो, वेयर आर फ्रॉम वैम्पायर टीम, वेयर आर फ्रॉम, अच्छा वैम्पायर टीम कहाँ से, थाईलैंड, वेयर आर फ्रॉम, मैं बोला वेयर आर फ्रॉम वैम्पायर टीम। वैम्पायर एचडी कांग्रेचुलेशन, योर टीम इज ऑन टॉप। काहेगा योर टीम इज ऑन टॉप, इट्स नॉट इवन हिज टीम, इट्स नॉट हिज टीम, ओके इज जस्ट अ इम्पोस्टर। वैम्पायर थाईलैंड टीम है ब्रो, देख लो ना आप वहाँ पे उनका फ्लैग देख लो, थाईलैंड से वैम्पायर टीम। रीजन से जो होकर आई है, जो कि हमें डोमिनेट करती है यहाँ पर। अच्छा खेल रहे हैं मतलब ये लोग भी, वैम्पायर वाले यार तोड़ रहे मतलब। पर जो अभी हमें इसका देखने के लिए मिला ना, टीम फैल्कन्स का अग्रेसिव गेम प्ले, चौड़ यार क्या खेल रहे हैं वो लोग। बीच में जो एग्रेशन था ना उनका टीम फैल्कन्स का, जो बहुत बढ़िया था। और बहुत हालांकि मेरे को ना लाइक थोड़ा बुरा लगा वैम्पायर वालों के लिए, यार ज़्यादा लाइक उनको ओपन चले गए उनके टीममेट्स। राइट से उसका जो कोई टीममेट था क्लॉ थोड़ा ओपन चला गया, एंड उसका प्लेयर भी कोई आगे था, वो भी लाइक ये कर दिए, तो उनके ऊपर थोड़ा ये हो गया, स्कैम हो गया, एंड दे गॉट द डब। पैसिव हो गई थी। अभी ब्रो जोन के अंदर गया और एक अच्छा घर दिखा, जैसे छत में गया, दो एनाकोंडा का लोंडा मुझे लॉबी भेज दिया। अरे जिस जगह के ऊपर वो मौजूद थे घर भेज दिया भाई, हो जाता है भाई थोड़ा एसएसटी में भी खूब। अरे कोई बात नहीं, क्या मतलब $50K वॉच पार्टी का प्राइस खुशी हुई मुझे देश को मिलने वाला है। निग्मा गैलेक्सी लेट्स गो, $50K गाइस, कम ऑन, के जहां पर उन्होंने व्यूज दो मुझे, व्यूज दो। 5% चार्ज है अभी, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। चार्जिंग लगा के देख ले भाई, चार्जिंग लगा के यूज कर ले, कुछ नहीं होता फोन को। मैं भी वही करता हूँ, अभी मेरा चार्ज कितना 54 है। लगा देगा चार्ज लगा के खेलो भाई, कुछ नहीं होता। डिपेंड्स कि अगर तुम्हारा लाइक चार्जर कौन सा है, अगर सब ठीक हुआ तो कुछ नहीं होता। तो तुम बोल मत देना कि इंडस्ट कुछ भी बोलता है, फिर मेरे ऊपर आना है। उनके अंदर एटलीस्ट 30 पॉइंट्स और 3 मैचेस में मिलाकर आपको 40+ पॉइंट्स को सिक्योर करने चाहिए। एलिमिनेशन निग्मा गैलेक्सी वर्सेस हीलिंग्स 81, डैमेज 367। अभी निग्मा गैलेक्सी की तरफ से ज्यादा किंग एलिमिनेशन, जहां पर 3 निग्मा गैलेक्सी दिखा रही है, टीम सोल के पास सिर्फ 2 एलिमिनेशंस हैं।
अब देखेंगे सोल के पास सर्कल तो क्लेम्स नहीं, सीधा स्ट्राइक आएगा। थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं और ओवर डिफेंसिव। वही यार, डायरेक्ट स्ट्राइक पड़ेगा। निकाल स्ट्रीम साले, आपकी स्ट्रीम दिखने के लिए 99 चार्ज। यार थैंक यू गेमर 909। देखो ऐसे बंदे रहिए, ओके ऐसे बंदे चाहिए। देख रहे हो ब्रो, थैंक यू गेमर भाई, थैंक यू वेरी मच। सोल के पास डिसएडवांटेज ये जरूर था सर्कल एडवांटेज होने के बावजूद कि उनके 3 प्लेयर्स जिंदा थे। वहां पर डिफेंस साइड से टीम्स ने आना था, तो मेरे ख्याल से स्कूल का प्रोजेक्ट लिख रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन लिख रहा हूं प्लेयर्स को डिस्पर्स रखा जाता। तीनों प्लेयर अगर उस जो भाई तुम्हारी तरह अच्छे फोन हमारे पास टैंक्स के आसपास जाती है चार्जिंग पिन यूज करने पे। वहां पर अगर ये टीम खेलती पिन यूज करती क्या तो शायद कुछ हमारे पास रिजल्ट्स नजर आते। किल्स शायद हमें जाती है चार्जिंग पिन यूज करने। हम थोड़ा सा उसको नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज़ वहां पर 4 से 5 टीम्स एक साथ आ चुकी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर फाइट लेते तो किल्स पिन को मिल सकता है, बट उसको अवॉइड करने की कोशिश में ये टीम हमें एक-एक करके एलिमिनेट होती भी नजर आई। बहुत रिवर्स कर दिया है इनके बेचारों के। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्होंने पहले 3 मैच बहुत बुरे खेले, उसके बाद किसी भी टीम प्रेशर ऑन अस, फुल क्रिएटिव प्रेशर है, किसी भी टीम को कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो सकता है। पहले 3 बुरे मैच, उसके बाद आप देखेंगे रेस के साथ जो हो रहा है वो उनको समझ नहीं आ रहा। और मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये बात की थी, कुछ टीम्स आज के दिन ऐसी जरूर होगी और वो कोई भी टीम हो सकती है। इट डजंट मीन कि बुरी टीम ऐसा करेगी। बहुत अच्छा खेल रही है, बस एक गेम निकल जाए ओनली। हाँ यार, सोल के साथ थोड़ा सा स्कैम हो रहा है, तो अभी भी तो हो जाएगा रे, हो जाएगा। बाकी है आखिरी मैच रह जाएगा। हम तब भी ये बात बोलेंगे कि अभी भी आखिरी मैच बाकी है। यहाँ आखिरी मैच बाकी है, हम बोलेंगे अभी भी बाकी काफी दिन पड़े हुए हैं और भी दिन है गाइस, डोंट वरी भाई। क्या आप पढ़ती हो क्वालिफाइड भी होना पड़ेगा क्या? क्वालिफाइड ना क्वालिफाइड किस लिए होना पड़ेगा? नहीं क्वालिफाइड किसको क्वालिफिकेशन रुपए मतलब मैं समझा नहीं। हमारे भाई ने ऐसे एक एक्सपेरिमेंट्स कर आप पढ़ती हो मतलब मैं समझा नहीं कि आज की रात इन सारे मैचेस को खत्म करेगी तो ऑब्वियसली वो अपनी गलतियों को एक दफा मोड़कर जरूर देखेंगे कि हमने क्या चीज की और उन गलतियों को सुधारा जाएगा। बात ये होती है कि अगर आप हार जाए, हारने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हार कर आप गलतियों से सीखना जरूर पड़ता है। अगर आप वो काम नहीं किसलिए मतलब ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। हमें कोशिश करती हुई 52 नजर आती है, तो मेरे ख्याल से आज के दिन जो मैचेस बुरे गए हैं उनका हक अदा मैं कॉलेज में नहीं हूं एक्चुअली, जरूर हो जाएंगे। टॉप 5 में आना है किसलिए अर्जुन ब्रो? मतलब कुछ नाम हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि अच्छा वो जीसी का PMGC का सारे इवेंट को समझा है, इस लॉबी को समझा है। निग्मा गैलेक्सी इज वन ऑफ देम। जैसे उन्होंने वो एरिया होल्ड किया, अबैंडन्ड एरिया जिसको हम कहते हैं पुचिंग की, और बान हाउस के करीब मोस्ट एलिमिनेशंस ऑब्वियसली माइक तरीके से एंड दे न्यू दे कैन प्ले देयर और काफी हद तक अच्छे तरीके से टॉप 5 के अंदर आने में शुमार हो जाते हैं। मैच रिपोर्ट हमारे सामने आती है, कुछ शहदाद हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। नल्ला बे न्यू स्टडी यार, मतलब स्टडी यार, स्टडी बड़ी बन अल्लाह यार ऊपर से ऐसे मखसूस डिपार्टमेंट्स में होता हुआ, मखसूस इलाकों में होता हुआ जहाँ पर एलिमिनेशन की तरफ सबसे ज़्यादा निकाली जाती है। डैमेज उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा दिया गया, ग्रेनेड एलिमिनेशन 1 निकाली गई, लेकिन ये इस मैच की सबसे ज़्यादा एलिमिनेशंस में आता है। लेकिन वहीं पर ओजी सान की तरफ से हमने देखा कि लॉन्गेस्ट एलिमिनेशन निकाली जाती है, जो कि काफ़ी एडवांटेज देखी उनको। वो जो एक टाइटल है, जॉब है क्या कोई? हाँ, एक तरफ से जॉब ही है जो कि मिलने वाला है, उसमें उसको हासिल करने में। सो आपको टॉप 5 टीम में हर इनको टॉप 5 टीम में होता था कि रिवाइवल देते हुए प्लेयर कहते थे कि नहीं यार तुम रिवाइव दो। अब जब पता लग गया कि रिवाइव देने का भी $5,000 मिल रहा है। अच्छा वो इसकी बात कर रहे हो क्या? वो आफ्टर बिग शोडाउन का, आफ्टर पार्टी शोडाउन, सॉरी वो और $5,000 में जब वो की जो फहरिस्त है उसमें वीक 2, हाँ वीक 2 के लिए वही तो ऐसे ही है। जो टॉप 5 रहेगा वही जाएगा शायद से। हाँ वैसा ही है, वही है। ये जो यहाँ पर टीम्स मौजूद है इनमें से कम, इसलिए तो टॉप 18 टीम्स है ना, सोचो ना, इसलिए तो टॉप 18 टीम्स है। उस रॉयल्टी को क्लेम करना चाहती है, जो कि उस तो हमेशा टॉप 16 ही रहती है। इस बार बस 2 ऐड कर दिए, उस रुतबे को हासिल करना चाहती है। 2 टीम्स ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। बिल्कुल, देन इट इज ऑल फॉर द ग्लोरी इन द एंड। ऑब्वियसली हर टीम से सिर्फ टॉप 5 टीम है, रीजन फर्स्ट वीक में से ये करेंगे। तो हैप्पी रक्षाबंधन, यस हैप्पी रक्षाबंधन राइट, चीजें दिमाग में हैप्पी रक्षाबंधन। दे वांट टू बी द बेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, और ये टीम्स कुछ करती भी नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल वैम्पायर ईस्पोर्ट्स, वो आफ्टर पार्टी शोडाउन का है, वो जो टॉप 5 टीम सिलेक्ट होंगी। डैमेज डीलर्स की आई रियली होप यार सोल सिलेक्ट हो जाए। वंस अगेन बैक टू बैक पिछला जो एरेंगल था उसके अंदर हमने देखा कि दे वर एंड अगर अभी बात करें राउंड 4 की, जो मैच हुआ अभी
As usual, Vampire with first positioning, USG second positioning hold कर रही है, इनको को और भी बता दे भाई. टीम्स की जानिब से, लेकिन Vampire Esports ने एक चीज़ And third ST Stalwart, fourth Falcon, fifth Box Gaming, sixth TJB, seventh वो अपना KD, VIVO KD, फिर 8th है 4 Rivals, 9th है Morph, 10th है RSG, 11th है Aton Gaming, 12th है Wildcats, 13th पे सोल है. थोड़ा ब्रो क्या ब्रो किसी लड़की ने राखी बांधी. मैं को किसी ने नहीं, मैं तो घर में ही था. मेरा जो राइट लेग का इंजरी था ना, तो इसलिए मैं घर में ही था. और मैंने घर वाले मेरे बाहर है, सबको लाइक मेरी मम्मी एंड ऑल दैट लोग बाहर गए और राखी बांधने, मेरी मम्मी राखी बांधने गए उनके भाई को. एंड आई टोल्ड कि किसी को मत बुलाना प्लीज़. मेरे को थोड़ा सब साइलेंट चाहिए. एंड मेरा वर्क का भी था, तो मैं सुबह वर्क कर लिया, स्ट्रीम खत्म होने के बाद थोड़ा वर्क कर लिया, एंड अभी स्ट्रीम कर रहा हूँ. एंड या टॉकिंग अबाउट अनदर, फिर 14 पे है VGS, 15 पे Nigma Galaxy, 16 पे है Dongwon 16 पे आ गई यार. कम ऑन Dongwon, व्हाट द हेल. 17 में है बैक टू बैक, एंड मतलब एज यूजुअल 18 पे FTW Esports. चमक रहे होते हो रैंकिंग्स में, तो यहाँ पर चमकते हुए मेरी टीम नजर आ रही है, सो इनको हम दांत जरूर देंगे. ब्रो 1v1 लगा दो, 1v1 लगा दो. किसका 1v1 पड़ेगी? मुझे बज़ाहिर बहुत ही खुशी हुई है जो टीम्स थर्ड पेज पर आसान नहीं होता जब आपके 3 मैचेस अच्छे ना जाए और आप आखिरी पेज पर शुमार हो रहे हो. आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है. फॉर एग्जांपल निग्मा, अगर हम बात करें NGX की, उनके ऊपर एक प्रेशर ये भी है कि ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया में वो खेल रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. ये सारी चीज़ें अकाउंट. और इन्होंने ना टीम फैल्कन ने क्या लाइक ये किया, रेजिस्टेंस आपको दिखानी पड़ती है, आपको फाइट बैक करना पड़ता है. अरे ये लोग पता क्या कर रहे हैं एक्चुअली, जो उर्दू का कोई बोल रहा था ना, प्लेट में रख ये लोग उर्दू का स्ट्रीम ऑन करके खुद कमेंट्री कर रहा है. सो दैट्स व्हाई 7 टीम्स ऑलरेडी है सेकंड वीक में. बाकी इस वीक की टॉप 5 टीम टोटल 12 टीम खेलेगी. 18 19 20 को टोटल 12 टीम्स देखते वही 7 टीम्स है. वही तो भाई ब्रो रैंक मैच खेलोगे? रैंक मैच ब्रो अभी नहीं, अभी तो वॉच पार्टी है मेरे भाई. कुछ मैचेस को तो जीतना ही पड़ेगा. अभी तो वॉच पार्टी है. चिकन निकालने वाली टीम ही हमें जो है वो टॉप 5 की रेस में राउंड अभी देखते हैं भाई. इफ यू टॉक अबाउट वैम्पायर के किल्स, जो कि वैम्पायर गेमिंग के किल्स जो कि बहुत अच्छे. राउंड 1 में उन्होंने 24 किल किए है, फिर राउंड 2 में 7 किल्स, फिर 4th राउंड में 13 किल्स. लाइक जॉड है यार, बहुत लाइक डोमिनेट कर रहे हैं यार ऑलमोस्ट वैम्पायर के. लाइक ये तो Again, thank you so much Aladdin, and thank you so much everyone. Falcons को भाई पता नहीं, Falcons को बीच में जोश चढ़ गया. Falcon ये क्या है, क्या है मतलब, क्या है ब्रो, मैं समझा नहीं. एंड Falcons को मुझे पता नहीं कहाँ से बीच में जोश चढ़ गया. वो क्या खेल रहे थे बंदे. They were dominating for you know nice one. इनका भी गया है. No mind. चलो गाइस, Erangel वैम्पायर का Erangel बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वॉच टाइम ओ ये तो लोग कितने देख रहे हैं, वो उनका है. ये काफी खुशाइंद रहेगा. पर ऐसा नहीं सोचता. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले दिन अगर आप अच्छा वॉच पार्टी, तो वॉच पार्टी कर रहा हूँ. शायद आप हमें बॉटम पे ही नजर आए. तो बहुत सारी टीम्स एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, वो हमें बॉटम पे नजर आती है. तो ये चीज़ आपको किसी भी तरह से एडवांटेज नहीं देगी, हानिकारक साबित जरूर होगी आपके लिए. लेकिन चलें, फिलहाल फ्लाइट पाथ हमारे सामने आ चुका है. लाखों बेड़े की तरफ से फ्लाइट पाथ खत्म होता है. मैं आपको बिल्कुल सेंटर से कट करेगा. किसी भी टीम को प्रॉब्लम नहीं आने वाली अपने ड्रॉ स्पॉट पर जाने के लिए. हाँ, अगर आपको कैंपर मिलता है जाना चाहिए तो आपको थोड़ा सा साइड करना पड़े. और इसी के साथ साथ वेलेड मारी जाने वाली टीम को ये कास्टर को हटाओ रहे. चलो अभी इंडस्ट्री की कास्टिंग देते हैं. मेरी कास्टिंग मेरे को यार सोलो कास्टिंग पसंद है एक्चुअली, यू नो. सोलो कास्टिंग कर भी लूँगा मैं, बट अभी फिलहाल के लिए अभी जो मेरा सेटअप है एंड मेरा स्ट्रीम है, तो उससे मेरे को सोलो कास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी. आप इसी की कास्टिंग देख लो गाइस. सॉरी, मेरी कास्टिंग ओपी है. आई डोंट नो ओपी है कि, बट ठीक है. जब अपने पास सेटअप अच्छा होगा एंड ऑल दैट अच्छा होगा तो अपन कास्टिंग कर लेंगे. डोंट वरी. मैं भी जाना चाहता हूँ इस मैच में. प्रो ग्राइंड करो 9095 गेमर 9095. आप जाना चाहते हो ना किसी वर्ल्ड लेवल पे, बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा आपको. लाइक बहुत एक्चुअली बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा. दिन में आपको आधा टाइम तो गेमिंग पे ही देना पड़ेगा. फिर तो आपको घर वालों के ताने भी सुनने पड़ेंगे.
गेमिंग भी करना पड़ेगा ऑल दैट, तो ग्राइंड करो। मे बी वन डे आप जा सकते भाई, कोई भी जा सकता है। लाइक अगर उनके अंदर विल पावर और ग्राइंड करने का ताकत हुआ तो कोई भी जा सकता है। हमने देखा पिछले मैच के अंदर भी अपर नॉर्दर्न साइड नियर अल्पोजो जो There we go, Team Soul की तरफ से फर्दर जो है वो डीप जाया जाएगा टुवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप। एंड ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, एक इंटरेस्टिंग फाइट बन सकती थी इनिशियल्स के अंदर, बिकॉज ड्रॉप क्लैशेस में अभी तक के लिए कामयाबी दोनों ही टीम्स को नहीं क्या मिली। मैंने हो सकता था कि ये फाइट कहीं ना कहीं स्विच अप करती उनके क्या अगेन आई वुड से कि इस चीज़ के लिए हमें फिर से इंतजार क्या मैं सोच ऐसे ही घुस जाओ? अरे भाई ऐसे नहीं घुसने देंगे भाई, निकाल देंगे वो। सही टीम सोल अपने निकाल देंगे भाई। रिसोर्सेज इकट्ठे करने में सोल ने ड्रॉप बदल दिया, व्हाट द फक। नहीं यार इनका कुछ ना फिक्स ड्रॉप रहता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बोलो तो फिक्स ड्रॉप है ही नहीं कुछ लाइक टीम्स का इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में मोस्ट लाइक इसमें कुछ टीम्स का फिक्स ड्रॉप है, कुछ टीम्स अपनी फिक्स ड्रॉप बदलते रहती है। लाइक हाँ सोल का लाइक अगर हुआ ना तो 2-3 लाइक ड्रॉप्स होता है कुछ टीम्स भी। हमारा खुद का एक्चुअली रैंगल में मिरामार में 3 हॉट ड्रॉप्स है, लाइक बैकअप हॉट ड्रॉप्स एंड ऑल दैट। अगर यहाँ नहीं बन रहा वहाँ खेलेंगे, वहाँ नहीं बन रहा वहाँ खेलेंगे, ऐसा सीन है। अपने रीजन के हमारा सामना जो है वो विनर्स के साथ ही होगा, बट समहाउ जिस तरह से टीम वैम्पायर खेल रही है, टीम बॉक्स बैक टू बैक का यार स्कैम चल रहा है, बैक टू बैक को आराम से खेलना पड़ेगा इस बार। We'll have to play safe. वो हर टीम को एक टीम को रीड करना पड़ेगा और उनकी स्ट्रेटजीज के लिए काउंटर स्ट्रैट्स जो है वो अपने बनाने ही पड़ेंगे। अब बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, एक टीम के बारे में बात करना चाहूँगा, दैट इज टीम एसटी हमेशा से ही हमें या आई नो, बट अभी इंडियन टॉक्सिक लोग हंस रहे होंगे, डर के भाग गए। अरे भाई वही सीन है, लोग ना टॉक्सिक होते ही रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ लाइक चाहिए टॉक्सिक बनने के लिए। और वो वही लोग होते हैं जो इमैच्योर होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो बच्चे इमैच्योर बच्चे होते हैं, क्रेडिट देना चाहूँगा उनका जिनका एक यू नो एक तरफ से कोई करियर नहीं है, वही लोग होते हैं वो जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं ऑल दैट स्टफ। कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो रीजनल टूर्नामेंट्स में डोमिनेट तो करती हैं, बट वो बड़ी जस्ट अवॉइड देम जस्ट अवॉइड देम स्ट्रगल करता हुआ देख रहे हैं। लेकिन एसटी से टीम हमने उसको रीजनल भाई लेवल पे डोमिनेट करते देखो हुए देखा है। लॉकडाउन किड्स, हाँ वही लॉकडाउन किड्स। देखो अगर बात किया ना लाइक अभी मेरे को पता है कि टीम सोल का इस पॉइंट पे हालत क्या हो रहा होगा, पर हम लोग, मैं नॉट गोना लाई, हम लोग की T1 जब हम लोग T1 मैचेस खेलते हैं ना, हमारी खुद की फट जाती है। हाई T1 मैचेस खेलते हैं ना, हमारी खुद की फट जाती है, प्रेशर क्रिएट होता है कि यार हम लाइक बंदे जो भी देख रहे होंगे लाइक ब्ला 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 एंड ऑल दैट स्टफ। तो भाई ये तो वर्ल्ड इनविटेशनल है ब्रो, वर्ल्ड लेवल का इनविटेशनल है। टीम सोल की क्या हालत है ना हमें पता है कि क्या हो रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैंने तो ये बात ही खास की है कि इसलिए कि हाँ ठीक है भाई, और जो पोजीशन पे अभी सोल है ना, कौन से पोजीशन पे सोल 13 पे है ना, बहुत बड़ी बात है। तुम लोग सोचो डाउनबोर्न गेमिंग भाई, डाउनबोर्न गेमिंग जैसे टीम्स #16 पे चल रही है, लाइक बैक टू बैक का मेरे को पता नहीं इतना, बट ये डाउनबोर्न गेमिंग जैसे टीम #16 पे चल रहा है, डिडंट एक्सपेक्टेड दैट। उनका भी गेम प्ले डाउन चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, बट यार किसी भी तरह से कोई फाइट्स नहीं ली जाएंगी बिकॉज़ अभी आगाज है मैच का, 5 ही मिनट हुए हैं। इतना मेरे लिए बहुत है कि टीम सोल रिप्रेजेंट करके आई है, मेरे लिए बहुत हो गया कुछ टीम्स लूट कर कि हमें इंडिया से कोई टीम गई है, हाँ दे रिप्रेजेंटेड अस, इट्स अ लाइक गुड थिंग यू नो फॉर मी एटलीस्ट। मेरे लिए बहुत हो गया भाई, रिप्रेजेंट करके आए हो तुम, बहुत बड़ी बात है। और तुम लोग खेल रहे हो कि लाइक अच्छी बात है भाई, काफी अरसे से इकट्ठे खेल रहे हैं। एट द सेम टाइम जो चीज़ उनके लिए वर्कआउट कर रही है वो है उनका कॉन्फिडेंस, और वो चीज़ उनको मोस्ट ऑफ द टाइम बट प्रीवियस मैच पे कुछ भी बोला यार, जो वैम्पायर गई ना यार, वैम्पायर जो लाइक ओवर कॉन्फिडेंस पे आके रश मार दिया एंड दे डाइड, लाइक ब्रो कम ऑन यार, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे, उन्हीं के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया वैम्पायर वालों के ऊपर। मी टू ब्रो, यस भाई घुस सकते हैं ऐसे ही, नहीं भाई बिल्कुल नहीं घुस सकते आप। गेमर 9095 चलो फॉर एग्जांपल एक तरफ से समझ भी लेते हैं, आप घुस गए ना, तो अगर आपका जहाँ पे गेम प्ले अगर दिख गया ना कि लाइक हाँ आपका गेम प्ले ही नहीं है, मतलब फॉर समझ लो आपका गेम प्ले ही नहीं है, आप घुस गए हो, तो यार आपको ना हेट मिलेगा बिना फालतू का, तो वो सीन है। तो आप ना गेम प्ले बिल्ड करो, ऐसा ग्राइंड करके ना गेम प्ले बिल्ड करो एंड आपका पोजीशनिंग लो।
भाई बंदे कुछ भी नहीं बोल पाएंगे आपको। इस बात को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि साथ रहकर खेलना और फाइट टू स्पोर्ट्स का थोड़ा सीन चल रहा है यार। फाइट टू स्पोर्ट्स थोड़ा अच्छे से नहीं खेल रहे हो वो लोग लास्ट पे यार। पाकिस्तानी टीम है यार, थोड़ा लाइक उनके साथ स्कैम चल रहा है, पता नहीं बस ये अच्छा खेल रहे वो भी, बस सारी टीम अच्छा खेल रही है बहुत वैम्पायर स्पोर्ट्स के साथ, लेकिन रियलाइज करते हैं कि इट्स दे स्प्रे आप एक जबरदस्ती की फाइट के अंदर चाहें जरूर, लेकिन यहाँ पर एक और फाइट चलती है मजीद डिफरेंट साइड पर। एटन भाई, एटन के प्लेयर्स दो है, एटन इनके ऊपर वाइल्डकैट्स को मार सकते हैं इजीली, बहुत इजीली, बट एटन ये नेट गया ना, ये नेट गया ना उसका, अगर कनेक्ट जबरदस्त नेट। मैं कहना चाहूंगा टॉमी के स्प्रे को ग्रेनेड के साथ ब्रूनो यहाँ पर ये नॉक निकालते हैं, किल कंफर्म भी कर पाएंगे, लेकिन डी फोक्स को देखें आप, वो एक एटन पूरा फिनिश हो सकता है यहाँ पे भाई। सोल जिंदा है, यप सोल जिंदा है, डोंट वरी, यस सोल जिंदा है। अरे गया रे, फर्स्ट टीम एलिमिनेट हुआ है, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। एटन स्पोर्ट्स द फर्स्ट टीम टू एलिमिनेट, स्कैम हो गया यहाँ 4 के 4 किल्स यार। चलो कोई बात नहीं, अच्छा खेले ये लोग भी, इन लोग पीछे एक अच्छी फाइट निकाली जाती है जहाँ पर पहला प्लेयर गवाया जरूर, लेकिन डिफरेंट साइड से आने का, डिफरेंट एंगल से स्पेस देने का एडवांटेज जो था वो इस टीम के पास था, और बहुत किया गया इनकी तरफ से। बिल्कुल, और अगेन यहाँ पर मैं समझ रहा था कि जैसे इस एटन हैड एडवांटेज टिल दे लॉस्ट, लाइक आई डोंट नो व्हाई। पढ़ सकते हैं 2v ऑलमोस्ट 4 सिचुएशन को डील किया गया यहाँ पर टीम IWC की तरफ से, एंड बेहतरीन एग्जीक्यूशन अगेन। जॉर्ड नेड है, फूटेगा, अरे जी का नेड देखे कितना ऑन पॉइंट, नेड बिल्कुल बाल बचते हुए रॉकी हमें नजर आए। एक हायर रिच के ऊपर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। आई थिंक रॉकी विल और मॉर्फ के फजर यहाँ पर मौजूद मे बी ही ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं और उनको वहां पर नॉक कर सकते हैं, लेकिन पहला सर्कल हमारे सामने शिफ्ट होने पहला सर्कल वाटर ट्रीटमेंट सैन मार्टिन, लेट्स गो, टीम्स नजर आएंगी। लेट्स गो वाटर ट्रीटमेंट, लेट्स गो। क्या मतलब है वीनस पे बनेगा? साउथ वेस्टर्न साइड पे देखें तो TWG जितने प्लेयर्स जो ये एक सेकंड है, जितने प्लेयर्स जो ये टर्नी खेल रहे हैं सभी ने इंडिविजुअली खुद को प्रूव किया है, आसान नहीं है अपनी कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट। हाँ वही बात है, ये भी एक बात समझ के चलो कि भाई लाइक तुम लोग सोचो ये खुद के कंट्री के लाइक जो बेस्ट प्लेयर्स है सिलेक्ट हुए एंड ऑल दैट, पकड़े जा चुके हैं। यस बोला था ना वाटर ट्रीटमेंट एंड सैन मार्टिन, लेट्स गो यार ब्रो। प्रेडिक्शन करो, प्रेडिक्शन छोड़ो भाई, आईजे लो भाई। तुम लोग इन्होंने जितनी भी टीम्स अभी है ना, इन्होंने या तो लाइक किसी भी कुछ टीम्स ने PMPL, कुछ टीम्स ने लाइक उनके खुद के कुछ प्रो सीरीज या फिर PC लाइट सीरीज जो भी लाइक हुए हैं उनके लाइक यहाँ पे, उन्होंने उनको प्रूफ लाइक खुद को प्रूफ किया है कि हाँ भाई हम लोग बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारी टीम के। कौन सा गेम है? कभी प्रीतम ऋतु स्ट्रीम पर बोला, एंड दिस इज BGMI, ये PUBG है, PUBG यस PUBG BGMI अगर आपको पता नहीं होगा तो। और अभी करंटली इनकी वर्ल्ड इन्विटेशन चल रही है, PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशन, आप देख लो, मजे करो, आप देखते हुए नजर आते हैं। इनकी तरफ से किल पॉइंट्स की तरफ फोकस इतना नहीं किया जाता, लेकिन अभी जिस पायदान पे मौजूद है इनको बैक टू बैक 2 से 3 मैचेस में मजा तो फाइट वर्सेस सोल में आएगा, बट देखने नहीं मिलेगा हमें क्योंकि दोनों टीम्स दूर दूर है अभी इस मैच में। ओ रॉकी ओके रॉकी ने ले लिया, जॉर्डन रॉकी। क्या चल रहा है? कोई बात नहीं, रॉकी ने अच्छा किया वहाँ पे किल लिया, जो कि बढ़िया बात थी। सच होता है ओ ओके ये ले सकता है यूसुफ भाई, क्या खेल रहा है। टीम फैल्कन्स वापस से BGMI बंद है नहीं ब्रो, रुको मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली यस BGMI बैन है, बट ये PUBG है, तो ये जो वर्ल्ड इन्विटेशन चल रहा है ये इंडिया में नहीं चल रहा है, ये बाहर के देश में चल रहा है, तो जिसका हम वॉच पार्टी कर रहे हैं। अरे रे रे दमार ने मार दिया बेचारे को, 4 राइवल्स के प्लेयर को। एपी देखो कहाँ पे, जंपर देखो कहाँ है, एपी देखो कहाँ है। ये लोग रैंडम्स की तरह क्यों खेल रहे हैं? गॉब्लिन ऊपर है, एपी के ऊपर गॉब्लिन, अक्षत भी है, ले लेगा जॉर्ड रे। एपी भाई एपी क्या कर रहा है? एपी क्या कर रहा है? एपी कर क्या रहा है मेरे भाई? तू व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आई वाज थिंकिंग कोई बात नहीं भाई, गॉब्लिन को मस्त किल मिला, कुछ भी बोलो, हमारे गॉब्लिन ने क्या किल किया वहां पे।
क्या किल मिला है वो इनको। बट ये लोग 4 राइवल्स वाले रैंडम्स की तरह क्यों खेल रहे हैं? व्हाई दे प्लेइंग लाइक दे आर रैंडम्स? गॉडलिन नहीं, गॉब्लिन गॉब्लिन। अरे तेरा माइक भाई, तेरा आई मीन आर्यन ब्रो आपका ये कीबोर्ड थोड़ा आपका कीबोर्ड थोड़ा स्कैम दे रहा है इस चीज की रियलाइजेशन होती है। और भाई ये 4 राइवल्स वाले ना मेरे को पता नहीं क्या चल रहा है, रैंडम्स की तरह क्यों खेल रहा है? एक बंदा वहाँ है, एक बंदा यहाँ है। जरूरत नहीं है जैसा अपने व्हीकल्स को कवर के अंदर लगाएं। अभी में भी हमें फैल्कन वर्सेस सोल देखने के लिए मिल सकता है। लेट्स गो। ये भी हसी अंडा जोन जाएगा, हसी अंडा या फिर वाटर ट्रीटमेंट। ये सैन मार्टिन सॉरी सैन या फिर हसी अंडा। ओ हसी अंडा, सैन मार्टिन जाएगा, सैन हसी अंडा। लेट्स गो। जोन वापस से शिफ्ट करेगा सैन मार्टिन और हसी अंडा के बीच में। सराउंडिंग्स में एक और टीम भी मौजूद है, सो केयरफुल रहना पड़ेगा। बट सोल का कटेगा रे जोन नहीं तो वाटर ट्रीटमेंट भी बन सकता, बट जहाँ पे चांसेस जो के साउथ ओके वाटर ट्रीटमेंट ही है। लेट्स गो। दे बिलीव्ड इन स्प्लिट सुप्रीमेसी। हाँ ना यार, अरे रैंडम्स की तरह खेल रहे हैं लिटरली 4 राइवल्स वाले। पता नहीं क्या चल रहा है क्या यार। तुम्हारे ऑलरेडी लाइक 1-2 प्लेयर्स डेड है। यू शुड लाइक यू नो, मैं कहूंगा कि जो एक साथ आ रहे कहने की एक टीम की डिमांड होती है। ये मजेदार था यूसेफ का ना, मेरे को ये मजेदार लगा गेम। दोनों को एक इसमें भाई गेम के स्प्रे में ले लिया। लास्ट मैच में मैन एडवांटेज नहीं था टीम सोल के पास। डामवॉन का यार, कम ऑन डामवॉन, कम ऑन, यू कैन डू इट। के बावजूद सर्कल में डामवॉन का डाउन चल रहा है गेम अच्छे एरिया को होल्ड करने के बावजूद अगर सोल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो उनको आज के दिन के खत्म होने के बाद साथ बैठकर जो है वो डिस्कस करना चाहिए कि क्या ऐसी गलती है जो वो कर रहे हैं, और जो कि वो शायद अगले स्टावर्स का है। मैं वो पीका देखना, पीका करते हैं तो उनकी जो ओवरऑल स्टैंडिंग है वो बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। भाई दिल तोड़ दिया मम्मी ने मेरे मनपसंद लड़की से राखी बांध दी। और सैड ब्रो, I can feel your pains, you know. टोचन स्प्रे वही ना यार, क्या टोचन स्प्रे दिया बंदे ने यूसुफ ने। जरूर था चौड़ एकदम एक गेम में ले लिया। गेमर 9095 यार, यार सैड ब्रो देखना बहुत जरूरी है। भाई बहुत बुरा हुआ यार आपके साथ। I can feel it, you know. देख रहे हैं सर्कल में I feel your pain करते हुए टीम नजर आ रही है, और एजिस पर चवरी टीम में दूसरी भी नजर आई जरूर। हां मार मेरी मान पीछे वाले को अंदर मत आने दे यार। अभी पर स्पोर्ट्स की बात करें, उनके प्लेयर्स अंदर मत आने दे उनको, के ऊपर कोलैटरल डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जी के फर्स्ट की गाड़ी को यहाँ पे डैमेज दिया जा रहा है, और मेक श्योर किया जा रहा है कि वो प्लेयर रोटेशन करके सर्कल में अपनी जगह। टीजीबी का एक प्लेयर बाहर ही है, उसको अंदर आना पड़ेगा। ओ भाई 1 HP है लिटरली। एक गोली खाएगा ना, एक गोली खाएगा, हील कर ले। और नाइस वन, नेवर माइंड, हील की जरूरत ही नहीं पड़ी उसके प्लेयर ने, इसको पीछे से बचा लिया। चौड़ दूर से उनके ऊपर वाइस प्रेस पड़ा। ये देख ये देखो स्टेडियम को देखो भाई, क्या हाइप मचा रहा है। चौड़ यार जब लाइक क्या मजा आ रहा होगा यार उनके प्लेयर्स को सुनने में, उनके लाइक क्या चैंटिंग्स हो रही है। मैं एसटी को 1 ईयर से देख रहा हूँ, उनकी सिनर्जी भाई जॉड है यार। एसटी वाले स्टावर्स एक्चुअली जॉड है, बट एक्चुअली फर्स्ट मैच में उनका स्कैम हो रहा है, पता नहीं क्या एसटी वालों के साथ स्कैम हो रहा है। गया डामवॉन इस बार भी आई गेस नहीं हो पाएगा उनसे। और चौड़ ले यार यूएसजी वालों ने। यूएसजी के प्लेयर की तरफ से एक थर्ड पार्टी सारी सिचुएशन के अंदर इस्तांबुल वाइल्डकैट के प्लेयर्स को यहां पर पुश करना पड़ेगा। डामवॉन लेट्स गो। शॉटगन डीबीएस इजी डामवॉन, लेकिन डीबीएस रीलोड कर ले इजी। उस रेंज पर जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। भाई यूएसजी वालों ने क्या लिया रे? हील अप करने के बाद अपने प्लेयर को उठाएंगे। इट्स जस्ट द थर्ड फेज ऑफ द गेम। और भाई नॉक पड़ा है बेचारा, उसके ऊपर काहे क्यों नेट डाल रहे हो तुम लोग? लगा सकेंगे, लेकिन जूनी के ऊपर नेट जाता हुआ डीफो का। अच्छा नेवर माइंड, यहां पर कोशिश करे कि जूनी को अपनी उसका एचपी लो है, गया पिन करके रखा जाए। मुझे लगा नॉक था वो, बट उसका एचपी लो था एक्चुअली। नेवर माइंड दैट, इट इज डेड। प्लेयर्स को डाउन करेगा, रे को डाउन कर दिया जाएगा। जूनी का नेट जाएगा, डामवॉन डेफो को टेक डाउन करते हुए। एंड टीम डीडब्ल्यूजी के लिए उम्मीद है कि फिर से बनती हुई इस मैच के अंदर सर्वाइव करने। अबे इनका ये चला गया रे, क्या बकवास खेल रहे हैं लोग। ये लो लेकिन आपने सर्कल के शिफ्ट सीरियसली देखा हो, अगर आपको याद हो तो। दिस वीडियो इज प्राइवेट। चौड़ गोवा विवो डेली स्टील डील से बेस्ट प्राइस पाओ और यूज
ये क्या यार जब यहाँ पे ओके जो पुशेस हैं जो स्लैमन्स हैं वो अवॉइड करना होंगे किसी ना किसी तरह और यहाँ पर एक स्लैमन है वो 52 esports मार रहा है रुको गैलेक्सी उनके पास आई थी अरे 52 खेल रहा है कंफर्म करना चाहते हैं लेट्स गो फाइनली इंडिया विन लेकिन सामने ओ भाई इस वक्त नहीं अभी विन नहीं है एक्चुअली बट मार रहा है भाई यहाँ पर एक और प्लेयर को सोल वाले भी खेल रहे हैं 52 वाले भी खेल रहे हैं सोल वाले भी खेल रहे हैं एसटी के एक्शन ले लिया है 52 के फ्रेड को एक्शन यहाँ पर निकाल सकते हैं लॉर्ड के ऊपर उसके जगह वैम्पायर फर्स्ट की तरफ से लॉर्ड यहाँ पर नॉक निकालते हुए इंस्टेंट कंफर्म लॉर्ड को उसको फिनिश कर देना चाहिए अरे उसको फिनिश कर देना चाहिए तो उसको एटलीस्ट ये तो मिल जाता क्या रे चल कोई ना 16 मैच से बाहर हो जाती है 3 टीम्स इस मैच से बाहर जा चुकी हैं आरएसजी 87 जीरो एलिमिनेशन के साथ वहीं पर बॉक्स गेमिंग पूरी की पूरी सर्वाइव करती हुई अभी तक हमें नजर आ रही है आर्यन भाई आपकी टीम एसटी थोड़ा स्कैम हो रहा है उनके साथ 52 के पास लोकल्स मौजूद है फाल्कन ईस्पोर्ट्स भी यहां पर लोकल्स कंफर्म कर चुकी है अभी के लिए अगर बात करें फाल्कन ईस्पोर्ट्स के आसपास काफी टीम्स मौजूद जरूर हैं सो मेरे ख्याल से मौका इनको रहेगा मिलता रहेगा बाकी किल्स कंफर्म करने का भाई नेक को क्या मिलेगा खेलकर खुद को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है बैक एंड पे देखें तो मतलब विजेस वर्सेस यूएससी की फाइट अभी चल सकती है विजेस के पास फाइट मौजूद है लेकिन गलती नहीं करनी जो इसके प्लेयर्स को उनके व्हीकल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं यहाँ से निकलना उनके लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल बन जाएगा अगर अपनी पोजीशन वो रिवील कर चाहते हैं और मेरे ख्याल से जानती है टीम हाइट पे मौजूद रहने वाली सारी टीम्स ने एक लाइक घर होल्ड करके ही रखे हैं पूरी पोजीशन के साथ एसटी और वीवो केड के हो सकता है बिल्कुल और यहाँ पर अगर बात करें आधी की आधी जरूर इस चीज़ का जवाब देंगे आपको लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स की एक किल उनके बैकपैक में रहने वाला है और टीम स्टालवर्ट इनको क्या मिलेगा खेलकर प्राइस पुल ब्रो इनको प्राइस पुल मिलने वाला है लाइक बहुत बिग प्राइस पुल है इन सारी टीम्स को जो भी फर्स्ट टीम होगी उन्हें कुछ क्या 2 मिलियन लाइक ये मिलने वाला प्राइस $2 मिलियन जो है वो लेता हुआ कुछ 1 करोड़ है कुछ एक लाइक 10 करोड़ कुछ सॉरी 15 करोड़ नहीं 15 भी करोड़ नहीं कुछ भी करोड़ है $2 मिलियन कुछ $2 मिलियन है ना कुछ फिर ऑलमोस्ट 18 करोड़ होंगे कुछ 18-19 करोड़ हाँ भाई मतलब 15 से लेके कुछ 18 करोड़ तक का प्राइस पूल है फर्स्ट प्लेयर को फर्स्ट जो भी टीम को एक्चुअली प्लेयर्स को सेकंड वीक में सभी मैप्स है लिविक और क्रैकन मैग जो है वो नहीं भाई क्रैकन नहीं है उसको रोका जाए उनके ऊपर पागल हो गया क्रैकन मत बोलो यहाँ पर किस तरह से इस सारी सिचुएशन को टैकल करते भाई अगर क्रैकन हुआ ना सेकंड वीक में मैं कसम से वॉच पार्टी नहीं करूंगा यहाँ पर उनको डाउन करने की कोशिश करेंगे लेकिन थोड़ा मैच देखते भाई मैंने आई वांट गो नाउ इतने में कितने आईफोन आ जाए भाई उतना ग्राइंड भी करना पड़ेगा गेमर रेंजर पे अपन लोग क्या करते हैं अपन लोग बस प्राइस पूल देखते हैं बट जो प्राइस पूल पाने के लिए हमें जो ग्राइंड करना पड़ता है ना वो नहीं देखते हम गया भी वो केवेट गया ये भगवान स्कैम हो गया बेचारे के साथ अबे 1 सेकंड फिर अच्छा कोई खेल रहे स्टारवॉर्स वाले खेल रहे ओ क्या टैप थे उसके क्या टैप बैक टू बैक के अच्छा टैप डैमेज नहीं रहेगा कि प्लेयर को यहाँ पर नॉक करे जस्ट टैप दिया जाता है एक मैं समझता हूँ कि इशारा दिया जाता है कि साइड के ऊपर टीम पहले ही मौजूद है सो बी केयरफुल और B2B इस बड़े और कंपाउंड को बेहतरीन भाई 13 साल का बच्चा क्या करेगा 13 साल का बच्चा अब 13 साल की हो गया अरे बहुत कुछ कर सकते हो फिर तो अब तो टाइम है तुम्हारे पास और यहाँ पे बहुत परफेक्ट स्प्रे था इसका और वही होता है और उनकी तरफ से स्प्रे देकर जो मिस्टर को काफी डैमेज से जाता है बैकएंड पे जो प्लेयर्स भी चीयरिंग देख रहे हो चीयरिंग ये सभी मैं आपसे देख लेना मैं नहीं देखना चाहता बिल्कुल नहीं भाई फिर से वीजेस के प्लेयर्स अरे क्या हो रहा है किसी भी तरह से अभी तक किल कंफर्म करने में या फिर व्हीकल बर्स्ट करने में कामयाब नहीं हो पाते और मेरे को तो देखना ही नहीं भगवान क्रैकन मैप है सीरियसली छी बे और लिविक हे भगवान एक बार के लिए वीकेंड ही बोल देते ना भाई आर्यन भाई मैं मान जाता बट लिविक और क्रैकन कितनी डिफरेंट है प्रोजेक्ट स्कारलेट से आरजीसी अगर हम बात करें इफ यू रिमेंबर आरसी की तरफ से उनके प्लेयर्स मैं वॉच पार्टी बंद कर रहा हूं भाई जो नहीं कर हमने जापान रीजन से आने वाली टीम देखी थी ये तो प्लेयर्स उनके बाहर टीजीबी का एक बंदा नॉक हो गया आई स्टिल डोंट रिमेंबर द नेम मेरे सेंस से एम्पायर का भाई लेकिन एक्शन के ऊपर नेड डिफरेंट प्ले स्टाइल है इस टीम का और अगेन अपने रीजन के अंदर जो कामयाबी है ये टीम समेट रही है 52 esports बहुत अच्छा खेल रही है इस बार सोल का पूरा टीम अलाइव है इस बार का मैच गॉब्लिन ने भाई बैक टू बैक एक प्लेयर को नॉकआउट किया है चल ओमेगा सम जॉट रोटेशन इज नीडेड यस आई हैव गॉन इज विद क्रैकन गॉब्लिन बहुत गलत पोजीशन पे उसको भाई अपनी टीम के साथ बैक टू बैक का एक प्लेयर बहुत लो है
एक गोली जॉर्ड अक्षत छोड़ यार, एक गोली चाहिए था। अच्छा वो अक्षत ने उसके ऊपर ध्यान दिया यार। गॉब्लिन बोला था मेरे को, गॉब्लिन लगा ही था मेरे को नॉक होगा, वो ऐसा फीलिंग आ रहा था क्योंकि जो जिस पोजीशनिंग पे था ना बहुत गलत पोजीशन था उसकी गॉब्लिन की। बहुत परफेक्ट है अक्षत, बहुत अच्छा खेल रहा है अक्षत, जॉर्ड खेल रहा है। ऐसे ही खेलते रहो यार, ऐसे ही खेलते रहो। टीम इंडिया कम ऑन, ऐसी गेम प्ले रखो भाई। अरे 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 गया, मॉली गया। एसटी के 2 बंदे नॉक, मॉली से ऐसे ही नॉक हो जाएंगे 2 बंदे। नहीं बच गए, बच जाएंगे। एक बंदा नॉक होगा, टॉप तो ऑब्वियसली नॉक होगा, इसके पीछे एचपी होता। एंड ये तो नेट से नॉक होगा। एसटी के लिए बहुत गंदा खतरा है। गॉब्लिन को 52 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। देखो देखो गाइस, 52 वर्सेस सोल। नेवर माइंड, अक्षत को पूरा डेड करवा दिया। तो बोला था ना 5-2 वर्सेस सोल का मैच होना चाहिए, मतलब ऐसा हुआ था बट वो थोड़े समय के लिए यू नो। हेक्टर नाउ पे हेक्टर को पूरा डेड दे देंगे रे। ओमेगा के ऊपर सारा ओमेगा के ऊपर है। 52 का स्क्वाड बहुत गंदा ये बना रहा है उसके ऊपर, ओमेगा के ऊपर, अभी सोल के ऊपर एक्चुअली। गया ओमेगा भी नहीं बच पाएगा, मे बी बच जाओ ओमेगा, कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले ओमेगा। गॉब्लिन अरे कोई बात नहीं यार, होता है प्लेयर्स के साथ। वैम्पायर #10 पे ये हुआ, एग्जिट किया है भाई वैम्पायर वालों ने। ओ भाई एसटी वाले भी एग्जिट कर लेंगे, एसटी वाले भी एग्जिट कर लेंगे। जहाँ से फीलिंग आ रही है ना एक्शन खेल रहा है। एक्शन नहीं बे, यहाँ बैठ के हिल मार रहा है हरामी, बालकनी में बैठ लेते, कोई बात नहीं है। नहीं एक्शन को एलिमिनेट किया जाता है लेकिन बंद नहीं होता टीम 56 रेस का एक्शन। ओमेगा जॉर्ड, ओमेगा ने पेन को ले लिया। जॉर्ड नॉक, ओमेगा की तरफ से एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की जाएगी। मिनी 14 से नॉक निकालते हुए टीम 52 के ऊपर नजर आते हैं। रिवाइवल की कोशिश की जाती है। ओमेगा प्लीज, ओमेगा नहीं, ओमेगा ओमेगा क्या कर रहा है। आखिरी प्लेयर मौजूद हमारे सामने इस वक्त के लिए स्पॉट हो जाएंगे लेकिन वहीं पर आई शॉट की तरफ से क्या ही ओमेगा ने पेन को जो नॉक किया है ना, जॉर्ड 1 पेन का बस किल। अरे यार यूएसजी वाले स्कैम हो गया रे यूएसजी वाले के साथ। जॉर्ड 1 ओमेगा ने अपना किल कंफर्म कर दिया मे बी। और इनके ऊपर 52 वालों के ऊपर बॉक्स गेमिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे। ओमेगा का छोड़ दो, ओमेगा पीछे से आके थोड़ा ये कर भी सकते हैं बट मॉर्फ है उसके आगे। खत्म कर सकता है लेकिन डाकू भी ग्रेनेड को करते हुए स्पॉट हो जाएंगे। नॉक हो जाते हैं, ग्रेनेड उनका आता है, काफी लोग करेगा लेकिन नॉक नहीं निकल पाता। बॉक्स के प्लेयर को बाज नॉक करते हुए इस बार उनकी तरफ से नॉक किया जाएगा। बॉक्स के बाकी प्लेयर को सर्कल में नहीं। अरे यार ओमेगा को ले लिया, शिट बे, नाइस ट्रैक्शन, शिट यार ओमेगा को ले लिया। मॉर्फ भाई लमाओ, फाल्कन ने भाई चैंटिंग देख रहे हो तुम क्राउड से गाइस, जो लाइक हाइप देख रहे हो क्राउड से जब भी फाल्कन ये करता है। फाल्कन अच्छे खेल रहा है एक्चुअली, नॉट गोना लाई। देखो 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 क्या क्या चल रहा है क्राउड में उनके भाई, उनके अलग वाइब आ रही होगी। एंड इस बार ये चिकन ले जाएगा टीम फाल्कन। तो कवर मौजूद है यहाँ पर 52 के पास, लेकिन फाल्कन के स्क्वाड जो कि हाइट के ऊपर मौजूद है, फाल्कन आराम से ले जाएंगे चिकन, आराम से, कोई इशू नहीं है भाई। 52 esports लाइक टॉप 5 में आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बट आई गेस वो लोग नहीं आ जा पाएंगे ज़्यादा आगे क्योंकि टीम फाल्कन्स बहुत गया। टॉप 4 में एलिमिनेशन हो जाएगा 52 esports का। काफी एक जर्की स्प्रे रहेगा लेकिन अपना काम करता हुआ ये स्प्रे नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बॉक्स ये M762 मार रहा है हरामी, नॉक कर दिया जाएगा। फाल्कन के पास 11 हरामी भाई, M762 मार रहा है यार। जीतने के चांसेस काफी रोशन होते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज़ ऑन द अदर साइड ज्यादा कुछ रिटेलिएशन। टीम फाल्कन आराम से चिकन ले जा सकता है बट टीजेबी का प्लेयर हो के आराम से, अब तो आराम है, अब तो पूरा खाली है टीम फाल्कन के लिए। चिकन पूरा खाली चिकन है अभी, और स्प्रे और देते रहो रे। फाइटो का लास्ट बंदा बाकी है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। टॉप 3 में आ गई है ये टीम देख के 52 esports। इसको ना, इसको क्या करना चाहिए 52 esports वाले के प्लेयर को, ज्यादा लाइक ये नहीं करना चाहिए। एंगेज मत कर कॉम्बैट में भाई, आगे चले जा। कॉम्बैट में एंगेज कर रहा है यार ये बहुत मुश्किल। जॉर्ड 1 यहां पर बेहतरीन नॉक निकाला जाएगा उनकी तरफ से, बहुत अच्छा खेल रहा है। कोशिश की जाती है। फाइनली कवर जोन में भी मौजूद है, 11 मीटर जोन में भी है। जॉर्ड 52 esports भाई बहुत अच्छा खेल रहा है। सामने जो उनके एक छोटा सा एज टैग बना रहा है। इसको ना अभी क्या करना चाहिए बंदे को, वाज जो भी लास्ट प्लेयर लाइव है आराम से गया, वाज गया। अब पूरा गेम फाल्कन का गाइस, फाल्कन जीत गई। वो इस्तेमाल की जाती
आती हैं और फाल्कन जीत गए, आराम से जीत गए। एक प्लेयर को नॉक करते हुए नजर आते हैं। बी बॉक्स गेमिंग के प्लेयर डैमेज देते हुए वास को काफी लोग करते हैं। नहीं मत कर इसको क्या करना चाहिए था वास को, बॉक्स वाले प्लेयर को ना मारना नहीं चाहिए था। अब गया, अब 52 स्पोर्ट्स हैश सेकंड पे एलिमिनेट। अच्छा है हैश सेकंड पे भाई, बहुत अच्छा देख के लगाया हैश सेकंड पे। देखो गाइस क्राउड सुनो, रुको क्राउड सुनो, क्राउड सुनो। नहीं कर पाएंगे, देखना बहुत जरूरी है। एक प्लेयर ग्रेनेड से नॉक करते हुए बहुत से काफी लोग एचपी यूसुफ सामने मौजूद, फ्री फायर दिया क्राउड सुन रहे हो? यूसुफ पीक नहीं अरे करते यार गुड एंगल, क्राउड सुनो भाई, क्या लेकिन जॉड ये हो रहा है। इतने किल्स उठाना और बॉक्स को ठिकाने लगाना ये आसान नहीं था जो किया जाता है इनकी तरफ से। अरे इसका गलती क्या 52 स्पोर्ट्स वाले प्लेयर का, इसका ना बॉक्स और उसके बीच में होने देना चाहिए था फाइट, इसने गलत ये किया रे। चलो अच्छी बात है उसके लिए, लाइक किल्स भी मैटर करते हैं उनके टीम के लिए भी 52 स्पोर्ट्स का, बट उनके दोनों के बीच में ना क्लैश होने देना चाहिए था, बॉक्स गेमिंग और फाल्कन के बीच में। तो क्लैश के हो जाता ना क्लैश, तो लाइक दोनों टीममेट्स एक दूसरे के टीम को नॉक कर देते, वॉक कर देते, फिर ये जो थर्ड पार्टी लेके मार देता ना उन्हें, वो मजा आता था देखने में। बट अच्छी खेले भाई 52 स्पोर्ट्स, बहुत अच्छे खेले, जॉर्ड बने यार 52 स्पोर्ट्स बहुत अच्छे खेले यार एक्चुअली। कहाँ लॉन्च पे चल रहे थे और कहाँ डायरेक्ट हैश टू लाइक जॉर्ड यार, जॉर्ड बन GGWP फाल्कन भाई। अब तो बहुत खुश हो गया भाई उनके बंदे, उनकी पब्लिक क्या खुश हो रही है। एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा आपसे, आई एम सॉरी टू कट यू, क्या आपने उम्मीद की थी 52 स्पोर्ट्स से इस तरह की कमबैक की? वही तो भाई, क्या कमबैक किया वो इस मैच में कमबैक करेंगे। अगेन एक बड़ी अच्छी पोजीशन थी उनके पास एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सर्कल का शिफ्ट जैसे ही वाटर ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा ये सारा मैच दो ही टीम्स के हाथ में आ जाएगा एंड दैट वुड बी सोल एंड 52 स्पोर्ट्स। बट अनफॉर्चुनेटली सर्कल थोड़ा सा साउथ की तरफ मूव कर जाता है और टीम सोल स्पोर्ट्स अगेन लूज कर जाती है अपने उस प्लेयर एडवांटेज को, जो कि उनके पास काफ़ी अच्छा प्लेयर एडवांटेज था, एक पूरा कंट्रोल भी था उस साइड का। लेकिन दोस्तों क्या खेले यार, कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आते हैं वर्ल्ड इनविटेशन। जॉर्ड खेले रे 52 स्पोर्ट्स भी अच्छे खेले, अपना सोल भी अच्छा खेला। सोल का लाइक उसको स्पॉट हो गया रे, स्पॉट नहीं होता ना मेरा तो हो जाता था, बट वो स्पॉट हो गया एंड वहीं पे स्कैम कर दिया ओमेगा के साथ, बहुत बुरा वाला। अच्छा खेले अपनी टीम प्लेयर्स, जॉर्ड मज़ा आया ये लास्ट वाला देख के। बॉक्स गेमिंग को प्लेयर रोल फाल्कन के पास बहुत अच्छा मैन पावर था, बहुत गॉडल से लाख गुना अच्छा खेले। अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसे किए यार, ऐसे मत बोलो भाई, अच्छी खेली मतलब अपनी टीम, ऐसे मत बोलो भाई, गॉडल से अच्छे खेले, रिस्पेक्ट दो थोड़े टीम्स को, अच्छे खेले। फर्स्ट डे है, अभी देखते हैं, जाओ सोल ओपी, यस इंडिया ओपी, इंडिया ओपी इन चैट। जॉर्ड खेले यार, मस्त खेले, बढ़िया एकदम जॉर्ड लेवल, लेट्स गो। तो फर्स्ट डे वही है, देखते हैं किसका चिकन, फाल्कन टीम फाल्कन एंड सेकंड 52 स्पोर्ट्स, थर्ड बॉक्स। कोऑर्डिनेशन के ऊपर रहता है यहाँ मैच, हाँ वही हर मैच वही है, हर मैच वही कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई, मैचेस एंड ऑल दैट। जॉनथन ओपी सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन यार, अगर लाइक सिचुएशन अंडर कंट्रोल भी होती, समझ लो किसी भी टीम के यहाँ पे, वो मोस्टली ना मैन पावर और उनके कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अभी फॉर एग्जांपल नाउ फाल्कन के पास मैन पावर था, ओके, एंड बॉक्स गेमिंग के पास क्या था, बॉक्स गेमिंग में 2 प्लेयर्स अलाइव थे, 52 स्पोर्ट्स ने उसको लाइक राइट से कर दिया, मार दिया, खत्म। अगर 52 स्पोर्ट्स के पास मैन पावर होती भी तो मे बी उनका भी चिकन हो सकता था, बट उनके पास मैन पावर नहीं थी। फाल्कन के पूरा स्क्वाड अलग था फाल्कन का, सिचुएशन डिपेंड करती है चिकन, हाँ वही सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड है भाई, तुम्हारा क्या सिचुएशन है, तुम्हारा क्या कौन सा पोजीशन मिला है, क्या जोन है क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारा लाइक क्या मतलब, सब उसके ऊपर डिपेंड है भाई, सिचुएशन के ऊपर। एंड मैन पावर भी है, डिफेंड सिचुएशन, मतलब वही सिचुएशन डिपेंड कहना चाहते थे वो, सिचुएशन डिपेंड करती है चिकन, वही डिपेंड लिख दिया उन्होंने गलती से, वो पता लगे।
अभी फॉर एग्जांपल भाई समझ ही लो ना कि अगर टीम फैल्कन का लाइक ये सिचुएशन उनके अंडर कंट्रोल कर लिया उन लोग ने, फैल्कन वालों ने, पता है क्योंकि उनके पास मैन पावर भी डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा इनपुट दी है, उन्होंने लाइक लिटरली पूरा अंडर कंट्रोल में ले लिया उन्होंने उस सिचुएशन को, बाहर निकले हैं और फिर क्योंकि बॉक्स गेमिंग के पास था लाइक थोड़ा बहुत ये के प्लेयर्स के साथ फाइट लेने की कोशिश की, उन्होंने कंट्रोल में ले लिया था यार, लाइक ना वे हम ले लेते यार थोड़ा, तो मेरे ख्याल से जितने भी पाकिस्तानी फैंस देख रहे हैं जरूर सपोर्ट करिए टीम 52 को, जितने भी लोग जहां से भी देख रहे हैं अपनी फेवरेट टीम्स को जरूर सपोर्ट करिए। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें टीम फाल्कन्स, तो फाल्कन्स बहुत भाई 5-2 भी बहुत अच्छे खेले यार, 5-2 का क्या कमबैक मिला हमें, दिखाई है, लेकिन कंसिस्टेंसी की तो वहां पर फाल्कन्स भी एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम 5-2 यार, बट बहुत अच्छा खेले यार। ऑडियंस उनकी जरूर वहां पर मौजूद है और हम अक्सर आवाजें फेस्टिवल कप, ओ माय गॉड, फेस्टिवल करते हैं 1 बिलियन सब्स पे, ही ज्यादा प्रॉमिसिंग हमें दिखाई टी सीरीज भाई, टी सीरीज का कॉल आया है क्या 1 बिलियन, अच्छा बेहतरीन तरीके से स्कोर किया गया और डैमेजेस के दिखाता 1 बिलियन सब्स जो प्लेयर्स गाली देंगे भाई टी सीरीज वाले। उर्दू कमेंटेटर है ये लोग, नहीं उर्दू नहीं है ये लोग आई गेस अलादीन इंडियन कमेंटेटर भाई, अलादीन है ना, जो उन्होंने किया है वो काफी हद तक कम है और इन्हीं के साथ साथ तीनों जो प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट कमेंटेटर देखते हैं आओ अपन कौन कौन ज्यादा डैमेज उन्होंने लिया नहीं है जितना उन्होंने डैमेज रजिस्टर किया है। बिल्कुल, हिंदी चला रहे तो है तुम हरामी लोग, अरे रुको, यस ऑल इंडिया लाइव, यस क्लियर करके ये टीम खेलती हुई नजर हमारे कमेंटेटर्स कौन है बे, होगा कि इनको अभी तक के इन पाकिस्तानी कास्टर्स है, पाकिस्तानी कास्टर्स है क्या, नाइस का सामना नहीं करना पड़ा। सो एहतियात बिल्कुल, एंड साथ ही साथ बहुत प्रोफेशनली अपने पूरे है ना इन कास्टर्स का नेम, नेवर माइंड दैट। हम बात करें 362 का डैमेज उन्होंने रिसीव किया, 617 का डैमेज। अच्छा खेले, देखो टीम फैल्कन्स भाई क्या मस्त खेले लोग, उनका जो क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा था ना यार, मैं बोला था भाई फैल्कन्स का होगा चिकन, हाँ तो वही उर्दू लोग उर्दू बोलते हैं, अब वही लोग उर्दू बोलते हैं, हाँ फैल्कन के प्लेयर्स का इस तरह से जीतना और लैन के एटमॉस्फेयर के अंदर जीतना एक भाई देखो अभी लाइक इनका था यार पूरा, लाइक अगर जोन की बात करें ना उनके फेवर में था, बॉक्स गेमिंग के फेवर में पूरा जोन का लाइक, बट इन्होंने क्या किया फैल्कन वालों ने पूरा कंट्रोल ले लिया जोन का सिचुएशन का पूरा कंट्रोल ले लिया, मैं भी वही कह रहा हूँ। अब उर्दू पाकिस्तान में चलता है, हाँ तो वही तो उर्दू का वही तो भाई पाकिस्तानी का होंगे, मतलब चौड़ खेला रे फैल्कन्स वालों ने, पूरा सिचुएशन अपने कंट्रोल लिया, अंडर कंट्रोल, नॉकआउट्स निकाले गए वाज की तरफ से और नॉकआउट्स जो जॉड़ खेले भाई, सारी टीम जॉड़ खेले कर पाए टुवर्ड किल्स, बट अगेन नो एलिमिनेशन, सेकंड स्पॉट। देखते हैं अब हमारे इसका क्या होगा, पोजीशनिंग पॉइंट्स एंड ऑल, क्योंकि 5-2 स्पोर्ट्स बहुत लास्ट चल रही थी, अब आई गेस अभी 5-2 स्पोर्ट्स सेकंड लास्ट या फिर थर्ड लास्ट आएगी एंड लास्ट पे होगी बैक टू बैक मे बी। पाकिस्तान में डोरेमोन बैन है क्योंकि बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, पर पबजी नहीं। वो 6 नॉकआउट्स रजिस्टर करने में कामयाब हो जाते हैं, हाउएवर 3 किल्स उनके बैकपैक में आते हैं, लेकिन वो जो नॉक्स उन्होंने निकाले हैं दिस शोज के वाज इटसेल्फ कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, और वो कॉन्फिडेंस उन्होंने जाहिर भी किया है आखिरी खिताबी के पास भी था बट डिफेंड नहीं कर पाए ये लोग। अरे सीन क्या हो गया, गॉब्लिन और जाके ही बैठ गया था, गॉब्लिन सीधा मिड में बैठ गया था। गॉब्लिन को क्या करना चाहिए था, उसकी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बना के जहाँ पे लाइक उनको मोस्टली जरूरत था ना लाइक टीम मैन पावर का, वहाँ उस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए था गॉब्लिन को, बट वो लाइक गलत ही पोजीशन पे होल्ड कर रहा था, जब होल्ड नहीं करना चाहिए था वहाँ पे होल्ड कर रहा था एक्चुअली गॉब्लिन। एक दूसरे को हाँ वहाँ पे भी मिड पे जो लाइक अगर कोई प्लेयर आके बैठ जाता, बट कोई प्लेयर आके बैठ भी नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे अक्षत एंड ऑलर लोग थे वहाँ पे एक्चुअली, कोई तो था वहाँ पे मिड भी लाइक जो देख सकता था मिड क्लियरली, बट गॉब्लिन का लाइक सैंडविच हो गया, जहाँ पे नहीं बैठना चाहिए था वहीं पे बैठ गया वो, जिसमें उन्होंने आउट परफॉर्म किया है सारी गलत वाला। हमने देखा है एरांगल के दोनों मैचेस में अच्छा खेले भाई, बहुत अच्छे किल्स लेकर जाने में कामयाब हुए और उसी के साथ साथ प्लेसमेंट पॉइंट्स भी उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं 4 राइवल्स को DWG को जरूर देखना पसंद हो रहा है अपना टीम के साथ, बट पता नहीं देखते हैं थोड़ा
थोड़ा सा लो हो चुके हैं, ज़्यादा हाईलाइट्स में आना नहीं चाह रहे, आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। आई थिंक सो ये ज़्यादा सही होगा। लाइक आने वाले मैच में ऐसे PWG के बारे में क्या बोर नहीं होते तो जाओ भाई, लाइक बटन के साथ खेलो और सब्सक्राइब बटन के साथ का बहुत ही प्ले विद देम, बोर नहीं होगे तुम। की तरफ से हमेशा गलती होती है कि जैसे वो स्प्लिट लेकर फाइट लेते हैं वहां पर अपने प्लेयर्स बट फेस बट उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट ये है पाकिस्तान में उर्दू से ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं लोग। फैक्ट हाँ वो भी ये है भाई। लाइक उनका ना एक्सेंट उर्दू भी है पंजाबी जैसा मिक्स एक्सेंट एक तरफ से। काफी बैलेंस फाइट थी, प्लेयर्स जो है प्ले जोन से अवेलेबल होते हुए नजर आए। बट एट द सेम टाइम जो चीज यार ये क्यों नहीं आया फॉर्मेट, पूरा क्यों नहीं आ रहा है? रुको मैं फॉर्मेट देखता है। अगर आपने मैच देखो लास्ट पे चल रही थी 5-2 esports, सेकंड लास्ट पे थी बैक टू बैक esports और थर्ड लास्ट पे थे अपना डॉम वन। नजर दौड़ाएंगे और इस मैच की रैंकिंग की टीम फाल्कन से तो अभी क्या है फाल्कन विद 15 एलिमिनेशंस राइट ऑन टॉप विद 30 पॉइंट्स। 30 अच्छा है, 15 एलिमिनेशन 15 प्लेसमेंट, अच्छा मतलब अच्छा ही है। बिल्कुल साथ ही 21 पॉइंट्स के साथ 52 esports रहेगी जो कि उनको एक बड़ा पुश देने वाला है ओवरऑल लीडर बोर्ड के ऊपर। इनको प्लेस मैच उनकी तरफ से निकाला जाता है वियतनाम के लिए एक बहुत बड़ी प्राइस क्या मतलब 16 पॉइंट्स उनके बैकपैक में रहेंगे। इनको प्लेसमेंट में 15 मिला है। अगर बात करें 11 पॉइंट्स रहेंगे। सोल की तरफ से भी एक अच्छा मैच ठीक है। हाँ परफॉर्मेंस की भी रहेगी 8 पॉइंट्स उनके बैकपैक में। देन आफ्टर दैट टोटल 30 एलिमिनेशन पॉइंट्स 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स रहेंगे। बट लुक एट वाइल्डकैट्स अगर सरवाइव करते तो यहां पर पिक्चर कुछ हमें चेंज जो भी हो हिस्ट्री से अपनों बात करें 8 एलिमिनेशन उनके बैक क्या अपने को क्या पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही है। हाँ भाई मॉर्फ की भी सिचुएशन कुछ ऐसी रहने वाली है। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है भाई। की तरफ से 2 प्लेयर सरवाइव करते हैं डायरेक्ट लास्ट लाइक हैश 18 से डायरेक्टली हैश जगह पर फंस के रह जाते हैं 2 पे किया था। अभी देखते हैं यार 5 राउंड का यही नहीं आ रहा रे, 5th राउंड का स्टैंडिंग ही नहीं आया बाहर। कहीं ना कहीं वाइल्डकैट्स को देखकर ऐसे लग रहा है कि ज्यादातर उनकी गेम प्ले ये वाली स्टैंडिंग की नहीं, मैं टोटल स्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। ये स्टैंडिंग तो बाहर आ गई, बट जो टोटल स्टैंडिंग होती है जो बताती है ना वो बाहर नहीं। हमारा टीम सब अच्छा खेल रहा है, फुल एकदम चार यू नो कुछ अदद पॉइंट्स एदाद जरूर लेकर गए हैं जो उनको काम जरूर आएंगे ओवरऑल लीडर बोर्ड। मैं देखना चाहता हूं कि स्टारवॉर्ट्स फिर इस मैच में परफॉर्मेंस के बाद कितना बूस्ट उनको मिला है। वाइल्डकैट्स भी अच्छे हैं भाई। वाइल्डकैट्स थर्ड पेज से बॉक्स गेमिंग इज द मोस्ट कंसिस्टेंट नेम जो कि आज के दिन निकल कर सामने आया है। बॉक्स गेमिंग वही बात है कि कुछ अरसे से कुछ मैच हो गए क्या पूरे? नहीं एक लास्ट बाकी है, लेकिन स्टिल तो मैच 5 है, मैच 6 बाकी है, लास्ट मैच है। हाँ भाई लिया गया है उनकी तरफ से, मैच बाकी जैसे वो एदाद स्कोर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब 16 पॉइंट्स उन्होंने इस मैच से भी अखज़ किए हैं। टीजेबी ऑन द टोटल ये नहीं स्टैंडिंग्स बाहर आ रही इनसे। बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है और एक्सपेक्ट किया गया था उनकी तरफ से भी कि वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे। स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स ऑब्वियसली साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करती हुई वन ऑफ द बेस्ट नेम्स इन साउथ एशिया, इनफैक्ट द बेस्ट नेम्स इन साउथ एशिया रीजन। इनके प्लेयर्स इंडिविजुअल रिकॉर्ड स्टारवॉर्स गॉड लाइक करना चाहिए था, बट पता नहीं क्या हो गया। इवेंट्स में 100 से ज्यादा किल्स करते हुए गॉड लाइक करना चाहिए था, बट और ये वो टीम है जिसने कभी चोक नहीं किया है। सन टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स ने कभी भी चोक नहीं किया। बिल्कुल अगेन आपकी बात से एग्री करूंगा मैं, और ये चीज़ दिखाती है कि कितना अच्छे तरीके से तैयारी की जाती है टीम स्टारवॉर्ट ईस्पोर्ट्स की तरफ से हर एक कंपटीशन के अंदर। बट अगेन हम वही बात कह रहे थे कि कंसिस्टेंसी, साथ खेलना और साथ ही साथ फाइटू बढ़िया खेल रहे हैं। फाइटू गंदा नहीं खेली। सोल भी अपना सोल का थोड़ा कोऑर्डिनेशन स्कैम हो गया होगा, डिफेंड नहीं कर पाया वो थोड़ा, कॉन्फिडेंस जो है वो काफी इसमें स्कैम हो जाता है। वो कोई बात नहीं, उनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट है भाई। वो भी लाइक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है, क्या होगा। फाइट्स के अंदर जो है वो थोड़ी मुश्किल का शिकार भी होती हुई नजर आती है। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, टीम स्टारवॉर्ट स्टिल हैव अ वेरी फेयर चांस कि आज के दिन को एक अच्छे नोट के ऊपर फिनिश किया जाए उनकी तरफ से, और उसके बाद कल को एक अच्छी स्टार्ट जो है वहाँ पर भी उनकी तरफ से दिखाया जाए। बट अगेन बॉल जो है वो हर टीम के कोर्ट में मौजूद है। इट्स अप टू देम कि वो किस तरह से खेलते हैं उसके साथ। एग्जैक्टली एसन। और आखिरी मैच स्टैंडिंग से बैच नहीं बाहर दे रहे, होने वाला कर रहे क्या कुछ स्टैंडिंग के बारे में जान मारती हुई वो टीम्स नजर आएंगी जो कि लीडर बोर्ड पर स्ट्रगल कर रही हैं, जिन्होंने आज के दिन कोई मैच अच्छा नहीं निकाला। उन्हीं नामों में से कोई एक नाम अगले मैच का चिकन डिनर लेकर जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, इम्कानात बहुत ज़्यादा रहेंगे कि ये मैच बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है और कुछ अनएक्सपेक्टेड रशेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले इस मैच में। लेकिन अभी के लिए अगर हम थोड़ी सी बात करें, एक मोमेंटम अपने लिए लिया है, उस मोमेंटम को
आपको अब कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि यहाँ तक ही नहीं था, एक मैच आपको दिन का अच्छा नहीं निकालना, जो मैचेस हैं आपने उस मोमेंटम को यूज करना है, उसको आगे लेकर जाना है। नहीं आया, अबे आ गया गाइस, पिछले से पिछले मैच के अंदर टोटल ये आ गया बाहर, आया, उन्होंने कुछ एंड एज एक्सपेक्टेड बैक टू बैक मेरे को लगा ही था 18 पे आ गई है, एंड 52 esports #13 सोल विद 11। लेट्स गो। फर्स्ट पे ऑब्वियसली पता है भाई, सबको पता है कौन चल रहा है फर्स्ट पे। मौजूद है अभी के लिए, एंड आई वैम्पायर काफी हद तक करीब, फर्स्ट पे वैम्पायर, फिर सेकंड पे फैल्कन, थर्ड पे स्टारवॉर्ड्स, फोर्थ पे बॉक्स, फिफ्थ पे यूएसजी, सिक्स्थ पे टीजीबी, सेवंथ पे केएस, 8th पे मॉर्फ, 9th पे 4 राइवल्स, 10th पे वाइल्डकैट्स, 11th पे सोल है अपनी, 12th पे आरएसजी, 13th पे 52, 14th पे 87, 15th पे VGS, 16th पे डॉम वॉन, कम ऑन यार, थर्ड लास्ट है ये लोग तो, 17th पे निग्मा गैलेक्सी, एंड लास्ट पे है अपना बैक टू बैक esports। यार सीरियसली क्या कर रहे हैं भाई, टामवन का यार है 16 पे वही पोजीशन जो लास्ट में थी। अपने आप को एक ओवरऑल आ गई, देखो गाइस ओवरऑल आ गई है, मेरे ख्याल से तैयार कर ले लो ओवरऑल रैंकिंग। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स ने वो साबित भी किया है, और इसी के साथ साथ ओवरऑल लीडर बोर्ड हमारी स्क्रीन पर आता हुआ थर्ड लास्ट पे टामवन है, पिछली बार भी लाइक पहले ही मैच के वही तो यार, पहले ही मैच उनका इतना बढ़िया गया है, जा चुके थे क्लोज टू 40 पॉइंट्स ले जाने में ये टीम ऑलमोस्ट कामयाब हो चुकी थी, बट अगेन कंसिस्टेंसी के साथ खेलने वो तो लग रहा है ना वैम्पायर ही ले जाएगी PMWI। मौजूद है कुछ मैचेस के अंदर जरूर थोड़ा शेकी एक टीम फैल्कन्स आउट ऑफ नोवेयर आ गई है, पता है। मूविंग फॉरवर्ड स्टिल वैम्पायर ईस्पोर्ट्स की 13 पॉइंट्स की लीड रहेगी फाल्कन के अगेंस्ट। फाल्कन भी काफी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देकर जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर आ गई भाई वैम्पायर, एक काफी बड़ा डिफरेंस रहेगा उनका, और घुस गए भाई, है सेकंड पे ऐसे घुस गए वैम्पायर भी लगे, वैम्पायर बोल रहा सॉरी, टीम फैल्कन्स भी लगे। प्लीज मेरे को भी स्लॉट चाहिए, है सेकंड पे आउट ऑफ नोवेयर आ गए। ये वो स्क्वाड्स हैं जो कि मुकाबले के अंदर अभी भी टॉप 8 के अंदर एक एक्साइटिंग मैं समझता हूँ कि सिचुएशन बनाकर बैठे हुए। थर्ड लास्ट पे डाउन होगी, फिर अपना लास्ट पे वो बैक टू बैक आ गई है, एंड थर्ड सेकंड लास्ट पे निग्मा गैलेक्सी। मैं समझता हूँ कि ब्राजील के लिए, ब्राजील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैम्पायर बहुत अच्छा खेल रहा है, वैम्पायर गलत ही खेल रही है यार ये लोग, उनका फर्स्ट, उनका भाई इमेजिन यार फर्स्ट मैच ही कितना 24 किल के साथ गया है, जॉर्ज अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट पेज जहाँ पर सबकी नजरें लगी रहने वाली हैं, देखना पड़ेगा कि कमबैक कितना जो है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहे हैं। वी आर सीइंग ये देखो डाउन थर्ड लास्ट है 16 सो 11 यार मौजूद है, एक अच्छा मैच इन टीम्स को फर्स्ट पेज के ऊपर ले जा सकते हैं। एटॉन की अगर बात करें वो भी बिल्कुल एटॉन भी लास्ट पे एज यार बैक टू बैक, PWG किया, एंड थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट और निग्मा गैलेक्सी जो भी 20 पॉइंट से नीचे ही रहने वाले हैं। सो निग्मा वर्चुअल गेमिंग डाउन का मैनेज क्यों हो रहा है डाउन से, इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज़ आज के दिन को वो इस तरह से लोअर बॉटम के ऊपर फिनिश नहीं करना एटॉन डाउन बिल्कुल ऐसन, और कहीं ना कहीं अभी के लिए आखिरी मैच बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें #13 पर 52 मौजूद है, एटॉन ईस्पोर्ट्स के पास 21 पॉइंट्स हैं, 19 पॉइंट्स VGS के पास हैं। अगर एक चिकन डिनर अच्छे किल्स के साथ स्कोर कर लिया जाता है तो आप #15 से उठकर 2 दिन और है अभी किंडर क्रॉस से और 2 दिन है, इनफैक्ट #8 के ऊपर जा सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी एक छलांग लगाई जा सकती है, जस्ट अ मैच अवे। सिर्फ एक मैच में आप चिकन डिनर लेकर जाएं तो आप दूसरे पेज से, इनफैक्ट तीसरे पेज से उठकर दूसरे पेज पर आ सकते हैं। आप दूसरे पेज पर नीचे भी मौजूद है, #15-16 पर भी है, तो आप पहले पेज के बहुत करीब जा सकते हैं। सो ये मोमेंटम आखिरी मैच आपको देने वाला है और बहुत ही अहमियत रखेगा ये आखिरी मैच आज के दिन का। आज के दिन करना चाहिए यार, इन लोगों ने कर लेंगे, समराइज करेगा और हमें ये देखने को मिलेगा कि वो कौन सा नाम है जो ये साबित करते हैं, जैसे निग्मा गैलेक्सी ने पिछले से पिछले मैच में साबित किया। हम बस सपोर्ट करने का काम है, हम कर सकते हैं तुम लोग। और 52 ने इस मैच में डू इट गाइस, कम ऑन, टीम सोल फॉर द विन। टॉप 7 तक इजी है अगर टीम इंडिया अच्छे से खेल लेती तो। हाँ यार, इस मोमेंटम को आगे लेकर अरे यार करना चाहिए यार, इन लोगों ने कुछ तो कर लो ज्यादा कुछ तो कर लो मेरे भाइयों। टीम इंडिया आराम से आ जाओ। अगर आप जस्ट मोमेंट में आया, आप लोग स्ट्रीम देखो गाइस, आया थोड़ी आप ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं तो तब भी आपके लिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो एक बैलेंस, वो जो बैलेंस ढूंढने वाला काम है ऐसन, वही तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है।
बिल्कुल, अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि आप किस बैलेंस की बात कर रहे हैं, वेइंग बैलेंस की बात कर रहे हैं या फिर टीम्स की परफॉर्मेंस की बैलेंस की बात करें। अगेन आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने कॉलेज क्यों नहीं कंप्लीट किया अपना, बट ये सारी बातें दोस्तों पर्सनल है। लेकिन हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट मैप की तरफ, जो कि यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर हमारा शुरू होने वाला है। बट हमारी स्क्रीन्स के ऊपर प्लेयर्स जो है वो थम्स अप करते हुए नजर आए, एंड आई एम रियली होपफुल कि आप ही इस सारी एक्शन को, इस सारे एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहे हैं। एंड लुक एट दिस, लुक एट द ब्यूटी ऑफ ई स्पोर्ट्स। चाहे जिस मर्जी रीजन से हो, प्यार बांटते हुए प्लेयर्स नजर आते हैं। एंड दिस टाइम अराउंड हमारी स्क्रीन के ऊपर बॉक्स गेमिंग के प्लेयर मौजूद थे, एंड उनकी तरफ से एक हार्ट जो है वो अपने फैंस के लिए भेजा जाता है। मेक श्योर you guys follow them as well and appreciate all of their performances so far. लेकिन we have only few minutes I believe, और उसके बाद हमारा जो लास्ट मैच है आज के दिन का वो शुरू होने वाला है। Here we go, 98-97 seconds स्क्रीन्स के ऊपर जो ये क्या हो गया? हैंड कैम की ब्रो सो हार्ड वर्किंग यू और आई अप्रिशिएट यू। अरे थैंक यू वेरी मच भाई। इनकी आंखें तो खुलती नहीं, बंदे कैसे स्पॉट करते हैं। किनकी 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 आर्यन भाई किनकी? इनकी आंखें तो खुलती नहीं, बंदे कैसे स्पॉट करते हैं। अच्छा ये चाइना और साउथ कोरियंस की डामोन की। अरे रे 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 ऐसा मत बोलो भाई यार, ये भगवान ऐसा मत करो भाई उनके साथ यार, ऐसा मत बोलो यार उनको बेचारों को। अरे तुम रुको यार, तुम ऐसा मत करो भाई, ये भगवान। कि आज के दिन के ओवरऑल लीडरबोर्ड के ऊपर क्या सिचुएशन है और कौन सी टीम कल के दिन कमबैक की तरफ जाती हुई नजर आएगी और कौन सी टीम अभी भी स्ट्रगल करती हुई उसी तरह से नजर आ रही है। हाँ भाई जोक से बढ़ अच्छा चलते हैं, डाउन होने चुके हैं सब इंतजार में अभी इनका गेम प्ले डाउन चल रहा है, क्या होने जाता हम जज नहीं करेंगे, हम देख पाते सीधा हम जंप कर लेते इस मैच के इख्तितामी ब्रो। सो हार्ड वर्किंग यू आर, थैंक यू भाई गेमर एरेंजल पर अप्रिशिएटेड ब्रो, थैंक यू वेरी मच भाई। मैच को कैश करने वाली क्योंकि ये बहुत थैंक यू वेरी मच भाई रखेगा। आज के दिन का सबसे अहम मैच होने वाला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द डे इज राइट हियर। प्लेयर्स ऑन लेट्स गो गाइस, लास्ट मैच ऑफ द डे, लास्ट डे ऑफ द मैच। कहां पर शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, क्योंकि वो काफी कुछ करने वाला है। उन टीम्स के लिए खासकर ज्यादा मुश्किलात होती हैं जो कि मैप के कॉर्नर्स में उतरती हैं। सो अगर प्लेन पाथ एक अच्छी जगह से गुजर रहा हो तो उनके लिए काफ़ी हद तक आसानियां बन ज़रूर जाती हैं। लेकिन अभी के लिए तैयारी पकड़ लीजिए दोस्तों, दिलों को थाम लीजिए। टीम सोल के फैंस, 52 के फैंस और बाकी भी जिन टीम्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, सबके फैंस अपने घर पे आप थाम लीजिए। घर पे अकेले हो और आवाज आई है कुछ तो गड़बड़ है। इस दिन का आगाज लेकर जा चुका है। थैंक यू सो मच एक्सपीरिया ऑफिशियल तो अकेला घर पे हमारे टीम इंडिया विद 20 किल्स, विनर चिकन डिनर। लेट्स गो। मैं ये सवाल कर सकता हूं, इजाजत है मुझे आपसे भी सवाल करने कुछ तो मैं तो अकेला हूं भाई घर पे, बिल्कुल इजाजत है। मेरे घर पे कोई नहीं है। कौन सी आवाज आई थी भाई, मुझे भी बता दो यार। स्ट्रीम से आवाज आ गई होगी, मैं तो माइक में ये म्यूट कर गया था मैं तो। एहतियात से खुलूंगा, लेकिन अभी के लिए हम अगर प्लेन पाथ की थोड़ी सी बात करें, आपसे सवाल मेरा जॉर्ड प्लेन पाथ के ऊपर बात कर लेते हैं। कॉर्नर्ड है वंस अगेन, पिछले मैच का प्लेन पाथ जो था उसके अंदर प्लेन पाथ हमने देखा कि साउदर्न साइड पर भी कॉर्नर्ड था और जो फार नॉर्दर्न साइड थी छाया जा सकता था लड़की की फार्म भी फिर आप जा सकते हैं। शेल्टर, प्रिजन, मैंशन और रहेंगे जो कि रीचेबल नहीं रहने वाले। गाड़ियां लेकर व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए आप जा सकते हैं। नोवो जेएमडी टीम इंडिया, रीचेबल टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स अच्छा ग्लाइड करती हुई पहुंच जाएगी। और सर्कल पर क्या ख्यालात हैं हसन, सर्कल किस जानिब जाएगा? जेएमडी क्या है? आई बिलीव जिस तरह का प्लेन पाथ है, सर्कल ऑपोजिट साइड पे जाना चाहिए। जेएमडी क्या है आर्यन भाई? जेएमडी सारे कंपटीशन को एंड हियर वी गो ऑपोजिट साइड के ऊपर ही जाता हुआ। यस जय माता दी का इस साइड के ऊपर ओके यस जय माता दी भाई, जय माता दी। नॉर्दर्न साइड के ऊपर जो कि अगेन इंटरेस्टिंग बनाएगा इस सारी फाइट को। अगर सर्कल आदि जस्ट इमेजिन ये आई होप दे गेट अ डब भाई। जोन प्लेन पाथ देखो और जोन देखो एक बार, क्या ये कितना इंटेंस जो है क्या ये देखने को मिलेगा। और गया बॉक्स तो वन प्लेयर ऐसे ही खो देंगे, ऐसी वही लोग क्या करते रहे, ये लोग एक प्लेयर ऐसे ही खो देते। शॉटगन आते साथ ही पटका दिया जाता है उनकी तरफ से। ये लोग ना अपने प्लेयर ऐसे ही खो देते हैं बॉक्स वाले। पहले 4 राइवल्स ने किया, फिर बॉक्स वालों ने किया। नहीं मे बी छोड़ो, आई थॉट कि मार देगा बॉक्स वाला प्लेयर, बट अरे आ गए उसके प्लेयर्स आ गए, बॉक्स का आ गया। और जॉर्ड
भाई ब्रो भाई गेम चालू होके पूरा 5 मिनट तक नहीं हुआ है ब्रो। ओ भाई गेम चालू होके पूरा 5 मिनट भी नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैं साउथ अमेरिकन मूवी देख रहा हूँ या फिर ओल्ड से के काउबॉय स्टाइल मूवीज जो है वो यहाँ। अरे भाई रे बॉक्स क्या मारा रे। शिट ब्रो बैक टू बैक भी गया रे। बैक टू बैक तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? क्या हैश 18 में रहना चाहते हो तुम लोग? गया बैक टू बैक का भी गया। बैक टू बैक भी डेड है। बैक टू बैक का भी करियर खत्म हो गया। खत्म बैक टू बैक। M16 है फिर तो खत्म है। फिर तो पक्का खत्म है इसका करियर। M16 लेके घूम रहा है ना पर पक्का करियर है। करियर खत्म है इसका पक्का। ब्रो बॉक्स गेमिंग क्या हो रहा है? बोला था करियर खत्म है। हे भगवान क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हैशटैग 18 पे रहना चाहते हो क्या तुम लोग? B2B बॉक्स गेमिंग है फिर वो B2B है। क्या कर रहे हो भाई? हे भाई चीरे। अरे डामवन अपने हॉट ड्रॉप पे उतरे ओए। मयूरेश भाई ये करो पेटेंट फाइल करो। I mean ये करो सू करो तो इन लोग को कोर्ट में ले चलो डामवन को। हमारा हॉट ड्रॉप किसने दिया इन लोग को? भाई हमारे ऑर्डर पे क्या कर रहे हो तुम लोग? निकलो इधर से भाई। मयूरेश भाई कुछ तो करो भाई। क्या चल रहा है ये सब क्या? ये हमारे ऑर्डर पे क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं लोग हमारे ऑर्डर पे? रुक जा इन लोग ना इन कोरियंस को मैं ना भाई कोर्ट में ले जाऊंगा। हमारे ऑर्डर पे क्या कर रहे हो तुम लोग? कि आप प्रेडिक्ट के प्लेयर कुछ भी बोलो। से ही आएगा। बॉक्स जो मरे ना फुटस्टेप्स नहीं आते। सो इट्स अ लॉन्ग ऑन स्टोरी। आप फुटस्टेप्स नहीं मरे वो नहीं कर सकते। आप देख नहीं सकते। आपको श्योरिटी B2B मरे क्या मरे? गलत है क्या? गलत है। सीक्रेट स्ट्रेटजी है टॉप लास्ट पे रहने की। किसी को मत बताएंगे। और क्या ही वो शॉट था लेकिन बैक टू बैक के लिए आई फील सैड। लास्ट में रहना है क्या तुम लोग को भाई? बॉक्स वाला से पूछ लो। बढ़ते हुए लेकिन दैट वाज थोड़ी सी बैड लक का सामना उनको करना पड़ा और वो ड्यूरिंग नहीं रहा मतलब गलत कर रहे हैं लोग। वाइप आउट हो जाता है टीम फाल्कन्स। लोगों ने रश बहुत अच्छा किया बट स्कैम क्या हो गया? गलत रश किया। MVP भी बनते हैं और बहुत रश अच्छा था बट बहुत गलत। अपनी टीम को चिकन डिनर तक भी लेकर जाने में तो पकड़ो जाकर वही ना यार। इनको भाई पकड़ना पड़ेगा इनको। राममोहन भाई बहुत गलत कर रहे हो तुम। हमने पेटेंट करवा रखा है भाई। और क्या दिया रे? अच्छा इनका वही मैच है ना? हाँ वो वाला बैक टू बैक कैसे एलिमिनेट हुई? क्या दिया था भाई? मैंने ये थोड़ा मिस कर दिया। गाड़ी के नीचे देकर एलिमिनेट किया गया। 2 प्लेयर्स को उतार देते हैं थोड़ा मिस हो गया था वो बैठे। लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पास में ही रहने देते हैं। VGX और टामोन स्टैंडिंग एक टीम इनके बिल्कुल नजदीक बिल्कुल वेस्टर्न साइड पर मौजूद है। DWG का स्क्वाड रिजिस पर रहते हुए फाइट लेना पसंद करेंगे या नहीं हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। ओके दे वांट टू स्टे दे वांट टू फाइट। टीम DWG करना क्या चाहते? फाइट करना है स्टे करना है क्या कर? टीम हमारे आसपास मौजूद है। यूएसए की भी एक प्लेयर अर्ली रोटेट करते हुए और जोन को मद्देनजर रखते हुए। भाई गेम में 5 मिनट भी नहीं हुए ऑलरेडी। लाइक एक्चुअली 10 मिनट 20 मिनट हो गए होंगे ऑलरेडी। 2 टीम्स एलिमिनेट हो गई है। यू एलिमिनेट हो गई थी वो। टीम्स उस वो जो 5 मिनट हुई भी नहीं। बॉक्स गेमिंग एंड देन उसी के थोड़े कुछ सेकंड्स या मिनट्स बाद B2B लाइक तू मेरा भाई है मैं तेरे साथ आऊंगा। ईस्टर्न साइड के ऊपर वाटर भी इंक्लूड है सर्कल के अंदर। ये चीज इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। फॉरेस्ट भाई 2 से 3 शिफ्ट्स बैक टू बैक इंडिया से ही है। इंडिया से है या बॉक्स गेमिंग? नहीं कोई टीम इंडिया से बस टीम सोल है। बाकी कोई भी टीम लाइक इंडिया से नहीं है। इंडिया से बस टीम सोल है बाकी कोई नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट बॉक्स गेमिंग वो वियतनाम से है। एंड B2B कौन सी टीम है? B2B आई गेस यहाँ से है ना? B2B का कहाँ से पता नहीं। बैक टू बैक गेमिंग पता नहीं है कहाँ से। बैक टू बैक गेमिंग बैक टू बैक आई थिंक अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है ना उनका बैक टू बैक गेमिंग का राइट गाइस? NA ना बैक टू बैक गेमिंग का? हाँ आई गेस मे बी या नॉर्थ अमेरिका होगा उनका बैक टू बैक गेमिंग का पता नहीं। बट या बॉक्स गेमिंग तो अपना वियतनाम है एंड बैक टू बैक मे बी अमेरिका है। नॉर्थ या कुछ अमेरिका कुछ ऐसा ही है उनका देखा था। क्लैश के पहुंच जाते हैं टुवर्ड देयर पोजीशंस और अपने अपने रास्ते के ऊपर ये टीम्स गामजन रहेंगी। लेकिन गलत है रे। भूटान से है। कौन भूटान से? ये अपना बॉक्स टू बॉक्स
बैक टू बैक सॉरी बॉक्स बॉक्स बोल बैक टू बैक भूटान से बट जिस तरह से रोटेशन जा रही है सोल और एटॉन ईस्पोर्ट्स की, हम अफ्रेड कहीं ना कहीं जो है वो एक दफा फिर से नहीं रे यार बैक टू बैक गेमिंग का कौन प्लेयर है वो आई गेस अमेरिका से है G7 एंड ऑल दैट जाती हुई नजर आ रही है, एक ही पोलो डायरेक्शन G7 आई गेस अमेरिका से है वो लोग, दो प्लेयर्स तो अमेरिका से ही है, 2-3 प्लेयर्स कुछ पूरा उनका पूरा स्क्वाड में भी नॉर्थ अमेरिका से ही होगा। टीम सोल इज हियर, आपकी बात जो है वो दुआ तो नहीं आपने की थी लेकिन आपने लेट्स गो टीम सोल किया जाता है टीम सोल की तरफ कर दो भाई कर दो कुछ तो। हाई ग्राउंड फिलहाल सोल के पास मौजूद है, एटॉन को अपना बैक एंड बैक रिज क्लियर करनी पड़ेगी, अभी के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं। ओके दैट इज गुड, एटॉन के एक प्लेयर बिल्कुल बैक एंड के ऊपर जाते हैं लेकिन एनजीएक्स का ऊपर से निग्मा का भी रोटेट जा रहा है, टीम सोल के प्लेयर्स भी रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा चारों के चारों प्लेयर्स व्हीकल्स के अंदर मौजूद। टीम सोल के एक खिलाड़ी आगे की तरफ निकल गए थे, आई थिंक सो रिट्रीट बैक किया जाएगा ओमेगा की तरफ से, ओमेगा अकेले हैं, टीम सोल बैक एंड के ऊपर गया रे ओमेगा ना हो जाए आखिर कंपाउंड के लिए रश किया जा रहा है, टीम सोल के ओमेगा रुकेंगे, DenizBank Wildcats एसोसिएशन विद NYC भूटान रिप्रेजेंट रैप अराउंड करने की कोशिश की जाएगी लेकिन ओमेगा थोड़ा सा जान सा देते हुए भूटान से होगी निग्मा गैलेक्सी को लगा तो पूरा सेकंड के वो शायद यहां पर रुकेंगे, दिस वाज गुड और वो थोड़ा सा बेट करने की कोशिश कर रहे थे ओमेगा, और वो यू नो वो कहते हैं ना सज्जी दिखा के खब्बी मारते हैं, ओमेगा वही वाला हिसाब जो है वो ओमेगा ने जरूर बड़े आरामी हो बेटा, अब वो डिप होल्ड की बड़े आरामी हो बेटा, ये भी सुनिए याशनाय का ही है, याशनाय ले लो पूरा, याशनाय ले लो भाई तुम लोग, रहेगा ओमेगा बिल्कुल जितनी भी टीम्स है ना याशनाय पकड़ लो, गूगल महाराज टेंशन काई को, अरे हां मोस्ट एलिमिनेशंस में माइक है वो ना अमेरिका लगाता उनका बॉक्स गेमिंग का अपना वियतनाम में ऑब्वियसली बात है, बॉक्स का तो वियतनाम है तक के लिए सबसे आगे हैं, ये सारे प्लेयर्स वो कौन से बेंसू ब्रेक्स और आवाज एक प्लेयर इनको चैलेंज करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन सर्कल बहुत एक सूटेबल शिफ्ट में इसको जरूर कहूंगा, एक सेंट्रल पकड़ लो भाई तुम लोग, शेल्टर वेल्टर प्रिजन पकड़ लो सारी टीम्स को अगर हम देखें तो वो कामेशकी के नॉर्दर्न साइड के ऊपर स्टालबर की महाराज की जय करते हुए नजर आ रहे हैं, IWL इस्तांबुल वाइल्ड कैट्स एक कंप्लीट कंपाउंड के चारों एंगल्स होल्ड करती हुई, बिल्कुल एक छोटा कंपाउंड है, लाइटिंग और थोड़ा आगे लेता ना मैक्लेरन खत्म था उसका करियर, और अगर इस चीज को उसको पता है अगेन कामयाबी दामन ऊपर ही है उसके, लुक एट दिस मैंशन के एरिया को आरएसजी स्काउट करती हुई नजर आती है, सामने जो है वो टीम नीड क्यों डाल रही है, नीड क्यों डाल रहा है, मत कर वेस्ट कर दिया एक मिनट, आरएसजी के प्लान जो है वो मुझे कुछ गया आरएसजी का और एक प्लेयर गया, और एक क्या मतलब एक प्लेयर गया आरएसजी का, एक ही प्लेयर जाएगा, ये अपन ही प्रो है, बस टीम इंडिया ये मैच निकाल ले टॉप 7 इजी भाई यार, निकालना चाहिए रे, नेवर माइंड नहीं जाएगा आरएसजी का मे बी, सब नेट पे नेट, सब नेट पे नेट, यस यस नेट गेम प्ले शॉर्ट नेट गेम प्ले, जिस तरह से इंटेल ली जा रही है, इस छोटी सी ओ कनेक्ट हुआ वो थोड़ा डैमेज पड़ेगा, इसको रोशनदान कहेंगे जिस तरह से, या फिर हवा की, अरे आरएसजी अरे 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 भाई साहब, डर था वही होता, अरे भाई अरे भाई और चौड़ रहे आरएसजी वालों, क्या दिया रे उसको, अब तो करियर डेड है भाई, यहाँ पे वीएस आरएसजी का करियर डेड होना चाहिए था, अरे वीजीएस वालों का ही करियर डेड हो गया, दोनों की नेम में जी है, वीएसजी आरएसजी वीजीएस सॉरी वीजीएस आरएसजी, क्या बोल दिया मैंने, वीएसजी आरएसजी, नाइस वन यार, एलिमिनेशन के दहाने पर आ चुके हैं, टीम 4 राइवल्स भी बैक एंड से रैप अराउंड कर रही है, नहीं लाइटनिंग, ओ लाइटनिंग थोड़ा सा फन जरूर जाते हैं और उनको पनिश किया जाता है, वीजीओ भाई वर्ल्ड इनविटेशनल खेल रहे हो तुम लोग, क्या एरंगल थोड़ी खेल रहे हो, आरएसजी भाई आरएसजी अच्छा खेल रही है, आरएसजी अच्छा खेल रहा है, जोड़ गया वीजीएस गया पूरा क्लैन डेड है वीजीएस भाई, ये लोग ना ऐसे रश करते हैं ना जैसे एरंगल खेल रहे हो, यू एकदम फ्रंट टू फ्रंट रश देते हैं, उनको रिवाइव देना है, जो रिवाइव उनको थोड़ी देर पहले दिया गया, अब उनको वो एहसान जो है वो चुकाना है अपने प्लेयर पे, टीम आरएसजी के प्लेयर्स भी रिवाइव लेते हुए 2 नॉक्स एक्सचेंज कर दिए लेके जाएगा उसको, रिवाइव कर देगा, कर हो जाएगा रिवाइव, उनको मिल चुका है रीसेट करने के लिए, लेकिन अभी के लिए गडाफी वीजीएस का एक प्लेयर रिवाइव हो जाएगा, कंपाउंड के अंदर चले जाएंगे, कोशिश की जा रही है रिवाइवल दे या फिर एग्रेस, आई गेस ये होने नहीं देगा आरएसजी का बंदा, एग्रेस करने के लिए नहीं होने देगा, रिवाइव दे रहे हैं वंस अगेन, आरएसजी फ्लावर सी एग्रेस करेंगे, नहीं होने देगा रिवाइव नहीं होने देगा, एक अच्छे एंगल के
पर मौजूद थे, नॉक भी उन्होंने रजिस्टर किया। एक सेकंड मैं चैट पढ़ता हूं, यहां पे बहुत एकदम इंटेंस सिचुएशन है। और क्या ओ भाई, छलांग मार देते हैं। ओ भाई अच्छा परफेक्टली कुक्ड जीजी क्या लगाई, वैसे चुम्मा ने डाला रे, क्या चुम्मा ने डाला वो। चांदी 2 मैं तो 1v1 सोचकर आया था पर कोई ना बाय। थोड़े बहुत सदमे में क्या है कि ओमेगा कहां पर मतलब गए और अभी के लिए उसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है, थोड़ा सा आगे की तरफ चाइनीज स्ट्रेटजी ये कंपाउंड जोन में है, चाहिए मतलब चाहिए कैसे भी हो कुछ भी हो। अरे यार वो लोग ले ही लेते और पता है ले भी लेते भाई, वो लोग बहुत गलत है। आरएसजी के जो कि 8 पॉइंट्स ऑलरेडी। ब्रो दैट नीड वाज सुपर अमेजिंग, यू नो। आरएसजी के बंदे ने नेट डाला है, वो टीम एलिमिनेशन ये नेट परफेक्ट है। क्या नेट डाला रे फ्लावर। आरएसजी का जॉर्ड हम बात कर रहे थे आदि के वेस्टर्न साइड के ईस्टर्न साइड के टीजीबी भाई ये तो फिंगर स्लीव्स लगाते हैं तुम लोग। अरे ये लगा लो यार मैटिक्स, मैट ग्लास दे दो भाई, अपना धंधा खोल दो भाई मैट ग्लास। निशानदेही करता हुआ नजर आया कि सरकार सोल्ड अभी अपनी सोल भाई हमें तरफ आता हुआ कम ही नजर आ रहा है। ओमेगा मस्त लूट रहा है आराम से, लूट भाई तू ओमेगा लूट आराम से लूट आउट ऑफ नोवेयर वही ना यार। बट सोल के पास एक बेहतरीन कंपाउंड मौजूद है, शटर का व्यू उनके पास रहेगा सामने। वीवो उनको पता है अपने सोल को ऊपर टीम होगी एक ऑब्वियसली होना चाहिए। की तरफ से नहीं की जा रही मेजर टीम इनका रोटेशन जा रहा है, स्काउट करने की सोल की तरफ से कोशिश की जा रही है जस्ट इन केस अगर सर्कल शिफ्ट होता है तो यूजुअल को रोटेशन मॉफ होल्ड पोजीशन पे रुक के कर लिया जाए। अब फिर ऑन रोटेशन जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होती और आप टाइम भी जो है वो रोटेट आउट कर पाते हैं। लेकिन यूएसजी दे आर कमिटिंग फॉर दैट हे बेल एरिया, ओपन एरिया जो ये स्नाया के आउटसाइड्स में मौजूद है उसको चेक किया जा रहा है। मिसाइल यहां पर स्काउट करते हुए अपनी टीम के लिए मॉर्फ का स्क्वाड भी हमें मॉर्फ स्काउटिंग चली सब थी। ओके एटन के प्लेयर ने एक शूट दे दिया मॉर्फ वाला, इशारा दे देते हैं प्लेयर्स को कि इधर नहीं आना, इधर नहीं आना मेरे दोस्त। आ गए पहले ही मौजूद हो बट आ गए, बुला लिया सारे कंपाउंड को होल्ड करें। नहीं बुलाया यार, जा रहा है मिसाइल जा रहा है, उसको पता चल गया है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपकी बात जो है वो मान ली जाती है कि इधर नहीं आना, लेकिन अभी के लिए सर्कल से बाहर हैं एटॉन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स। यूएसजी के कुछ प्लेयर्स इनके इतराफ में मौजूद हैं, स्पॉट भी किया गया है उनकी तरफ, क्रॉसेस भी उस तरफ उस जानिब पे इनका रोटेशन जाएगा। बट स्ट्रेंजर पे हेलो ब्रो कैसे हो, वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई। स्ट्रेंजर ओपी वेलकम टू द स्ट्रीम माय फ्रेंड। लेकिन यूएसजी मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि एज पर रहकर किल स्कोर करना चाहेगी। ओके यूएसजी के प्लेयर्स को अंदाजा होता है कि टीम सोल करीब है, कुछ टीम्स इधर ही मौजूद हैं तो वो यहां से प्लेयर्स की तरफ से कुछ टैग्स रजिस्टर किए गए एटॉन ईस्पोर्ट्स के 596 पर और अभी तक के लिए सही सलामत है। को रोटेशन आ रहा है यहां पे, पहले इसी डिप के अंदर मौजूद है वो वहां से जोन तो अपना प्रिजन भाई ले आएगा, प्रिजन और शेल्टर भाई जोन साथ में शेयर करेंगे मस्त वाला। ओए मॉर्फ भाई मॉर्फ के ऊपर गया, मॉर्फ का करियर डेड, वहीं पे जोन आ रहा है एरिया नजर आता है वहीं पे आई मीन ये आ रहा है ड्रॉप आ रहा है, सॉरी जोन आ रहा है बोल रहा हूं, ड्रॉप आ रहा है। साउथ टीम निग्मा गैलेक्सी अभी तक सर्कल के यहां पे मॉर्फ मरा है, वहीं पे जो ड्रॉप आ रहा है। जोन तो प्रिजन और शेल्टर शिप है, रोटेशन देखने को मिल रही है, उसी एरिया पर होल्ड करना चाहेंगे जो फिलहाल खाली है। ये अगला जोन भी लिख लो गाइस, प्रिजन और शेल्टर लाइक शेयर होगा यहां पे, मिड पे ही रहेगा, मिड पे ही रहेगा। ओ भाई फाल्कन एक प्लेयर गया फाल्कन का नॉक है। लेकिन आरएसजी एक रेस हो चुकी है, बगीज यहां पर फ्लिप करती हुई थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट करती हुई, लेकिन आरएसजी नहीं बख्शेगी। आरएसजी के डीडी की तरफ से एक मजीद नॉक निकाला जा चुका है, नॉक ऑलरेडी इनके बैक फाल्कन के इतना अच्छा गेम प्ले चल रहा था भाई, जा चुका है। आरएसजी के एक प्लेयर भी नॉक डाउन हो चुके हैं, टीम दो प्लेयर्स तो फाल्कन ने ऐसे यूज कर दिए। आरएसजी की टीम निग्मा गैलेक्सी भी बैकएंड के ऊपर इंतजार कर रही है, लेकिन आरएसजी के प्लेयर्स को थोड़ी बहुत मार खानी पड़ेगी। ये देख लो तो यूसुफ कोशिश कर रहे हैं मजीद भाई कुछ कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा आई गेस। लाइटनिंग राइट ऑन टाइम और खुशकिस्मती से वहां से निकल जाते हैं और आरएसजी मैंशन में अपना एक सेफ हेवन ढूंढती है। आरएसजी अभी भी 3 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रही है, लेकिन फाल्कन के लिए ये ट्रेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। 2 प्लेयर्स गवा बैठते हैं अपने और उसके 2 ही प्लेयर्स भाई एक किल स्कोर करने में कामयाब। इतना अच्छा गेम प्ले चल रहा था फाल्कन का, आउट ऑफ नोवेयर ये कर दिया ना फुटबॉल ने। हट के पास 11 किल्स आ चुके हैं आदि और जिस तरह का एग्रेशन हम डामोन मस्त प्रिजन होल्ड कर रहा है, मस्त उसको कोई फिक्र नहीं है डामोन वालों को। बट एटम और एटन गया क्यों वहाँ पे पूरा, एटन का टीम गया क्यों? इनको पता है कि भाई ऑलरेडी होल्ड हो रहा है, तुम लोग दूसरा होल्ड कर रहे थे, दे आर लाइक नहीं भाई हमको भी चाहिए। ये लोग भी चाइनीज टीम बन रहे थे, हमको ये चाहिए चिंग चोंग चोंग, वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं
you know, we are the Chinchok. Damon वाले भी लगना, we are the Chinchok Chong. We won't let you take it. Nigma Galaxy team, Stalwart Esports की तमाम टीम्स जो हैं वो की तक के लिए अपना कैंप Seriously यार. बैठनी है नॉर्थ साइड से आने वाली टीम्स के लिए मुश्किलात खड़ी करती हुई ये टीम्स हमें नजर आएंगी, लेकिन दूसरी तरफ वुड कटर लॉजेस की अगर हम बात करें वहां पर भी अंपायर वालों मैं तो बोल रहा हूँ निकल लो यहाँ से. हाँ नहीं यार, क्या सोचते हैं यार एटन वाले, क्या कर रहे थे भाई, निकल ही लेते मतलब. ओए ओए वीवो यूएसजी वाले क्या कर, मार देगा इजी. नाइस वन, उनके बीच में अनियन हुआ था बट बीच से उसको सपोर्ट मिला. नाइस वन वीवो केड भाई, वीवो केड के बंदे भी अच्छे हैं. प्लेयर को नॉक नहीं कर पाए, डिएगो जो है वो हीलिंग की तरफ जाएंगे, मिसाइल की तरफ से भी हीलिंग यहां पर लगाई जाएगी. यूएससी इन द सेम सिचुएशन अपने प्लेयर्स यहां पर लूज करती हुई नजर आ रही है. मिसाइल को यहां पर पुश किया जाएगा एंड मेक श्योर किया जाएगा यहां पर मिसाइल को भी कंफर्म करें, लेकिन मिसाइल का अच्छा नेड है, अच्छा नेड है मिसाइल का. मिसाइल का नेड बहुत अच्छे जा रहा है. वो मॉली भी डालेगा, क्या कर रहा है, फुल स्पैम दे रहा है रे. मिसाइल चाहता नहीं है कि भाई वो बंदा जिंदा रहे आज के दिन में. मिसाइल चाहता ही नहीं वो बंदा जिंदा रहे. इजी एलिमिनेशन मैं समझता हूं उसका हो गया और मिसाइल का भी एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे. आपका साथ नहीं छोड़ती वो रहने वाली है यहाँ पर TP28 इजी एलिमिनेशन को भी कंफर्म कर दिया जाएगा. सेलो यहाँ पर किल कंफर्म करेंगे एंड आई बिलीव ये किल कंफर्मेशन के बाद बैक एंड पे यूएससी इनके बीच में 1v1 है, देखते पीछे से पड़ रही है 18 की तरफ से चैलेंज किया जा रहा है सारी सिचुएशन. बिल्कुल, और 3 प्लेयर्स अभी तक सर्वाइव करते हुए टीम यूएससी ऑन द अदर हैंड सिर्फ अकेले ही खिलाड़ी के साथ सर्वाइव करी. क्या 1v3 यहां पर आने वाला है, फिलहाल कोशिश करें बगी का कवर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए. ब्लू जोन भी आता हुआ अब थोड़ा प्रेशर जरूर बन जाएगा यूएससी के आखिरी प्लेयर पे, लेकिन वीवो किट के प्लेयर्स भी थोड़ा ध्यान से खेल रहे हैं. लेकिन में कामयाब बैक एंड से दूसरे प्लेयर अच्छा कवर प्रोवाइड करते हैं. 1 पॉइंट भी कितना मैटर करता है टीम डोनट्स यूएससी एज अ टीम प्लेयर, आपको पता होगा भाई बहुत मैटर करता है यार. चाह रहे थे अपने लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 पॉइंट भी भाई आपको पता है 1 पॉइंट से के कारण कुछ हो गया था, के ऊपर टीम यूएससी के प्लेयर्स को 1-2 पॉइंट्स के कारण गॉड लाइक और इसका कुछ हो गया था, पता है वो वाला आरएसजी के प्लेयर्स काफी देर से टीम फाल्कन्स के अगेंस्ट जुड़े हुए हैं. फाल्कन्स भी जान नहीं छोड़ना चाह रहे, अपने 2 एलिमिनेशंस का बदला वो लेकर जाना चाहते हैं. रिवेंज फाइट के अंदर मुबतला हो चुके हैं और बदला ये देख लो. हां ये कर लो ना दोस्तों, लेकिन ड्रीम आरएसजी भी अच्छे तरीके से सामना कर रही है. जॉर्ड हेक्टर ने वर्स डीपी भाई, स्नैक्स भाई आ गए हेक्टर के अंदर, स्नैक्स भाई आ गए. लेट्स गो. वाइल्डकैट्स भी अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाने की कोशिश में हेक्टर के अंदर स्नैक्स भाई आ गए हैं. यूसुफ स्मोक्स का थोड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, कर सकता है उस साइड पे, बट अगर उसको पता हो तो वेट आउट करने की कोशिश की जा रही है, झांसा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नेड थ्रो किया जा चुका है फाल्कन ईस्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स के ऊपर. टीम आरएसजी की जीजी की तरफ से तीसरा नेड, 3 नेड्स इनके पास मौजूद है. आ गया वापस चल फुट चार्ज कर गया. अरे भाई जहर बस्ट और बस जेब से पुल ऑफ किया जाता है, बैक से निकाल भी आ गया. अच्छे से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है. नेड फाल्कन का प्लेयर गया या फिर गया फाल्कन का प्लेयर लगाएगा, किसी से भाई सपोर्ट मिला. प्लेयर मौजूद है, 1v1 सिचुएशन बन चुकी है. दमार यहां पर मौजूद है, दमार कोशिश कर रहा है बुलेट और 11 एलिमिनेशन पीछे स्टेडियम में आवाज सुनो तुम. देती हुई अपनी होस्ट कंट्री टीम का 11 किल्स करती हुई टीम को इस मैच से उखेड़ कर बाहर भेज दिया जा चुका है. 10 में यहां पर 11 टीम्स लगभग अब रह चुकी हैं. 35 प्लेयर्स इन द लॉबी. टॉप में भाई 5-2 के इसको ले लिया आवाज को. अरे यार 52 की फाइट बनती कोई है. बात 52 को इस फाइट एक्टर को नॉक कर दिया है, कर दिया जाता है. पूरा उसके एक्टर को फिनिश भी दे दिया जाएगा. नाइस वन. अरे अक्षत को भी ले लिया. हर तरफ फाइट बनती हुई ओ भाई टीम ऊपर भाई अपने सोल के ऊपर थोड़ा प्रेशर बन रहा है. टीम निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स उनका किल भी कंफर्म गया, हेक्टर भी जा चुके हैं और टीम सोल के सोल टॉप 10 प्लेयर बचे हैं. टीम सोल गेट्स एलिमिनेटेड, आई थिंक सो 52 और सोल स्कैम हो गया थोड़ा गाइस. 11 किल्स के मोमेंटम को तोड़ दिया, एक ही साथ मरेंगे, लेकिन ऐसा मोमेंटम तोड़ दिया भाई. #915 फाल्कन एलिमिनेट और काफी कुछ गलत भी अब स्टेडियम से आवाज ही नहीं आएगी. हो भी रहा है, लेकिन अभी के लिए अब स्टेडियम से आवाज ही नहीं आएगी. नाइस ट्राई टीम इंडिया. यस कोई बात नहीं, अच्छा खेले अपना टीम इंडिया भी. टॉप 10 आ गए है हमारी. एक प्लेयर को डाउन किया जाता है यहां पर, लेकिन उसके साथ-साथ लॉर्ड अपनी पोजीशन भी दे अरे फाइट्स का सामना भी निग्मा और वैम्पायर भाई जगह से फाइट लेते हुए, लेकिन एक नेड लॉर्ड का परफेक्ट नेड है वो. आई मीन एक्चुअली अगर वो कनेक्ट होता है तो नहीं हुआ. अरे पत्थर क्या पता एक्चुअली अगर कनेक्ट होता ना. अरे गया. ओ भाई एम्पायर स्पोर्ट्स बाहर.
भाई निगमा गैलेक्सी क्या 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 पूरा वैम्पायर स्पोर्ट्स ही ले ले रहे हैं उन लोगों ने। 4 राइवल्स भी टीजेबी को ले रही है भाई, टीजेबी भी गया, टीजेबी भी गया आउट, टीजेबी भी भाई आउट, ऑलमोस्ट आउट है उनका एक प्लेयर कहीं तो है, एक दो प्लेयर ऑलमोस्ट आउट है, गया क्या पूरा जाना चाहिए ना उनका। टीजेबी को एक बदल बचा होगा। एनजीएक्स ऑन फायर यस भाई, चल कोई ना, नाइस ट्राई यस यार, नाइस कर रहा है भाई, अपनी टीम भी कर रहा है यार, प्रेशर बहुत क्रिएट हो रहा है उनके ऊपर। ओए 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 क्या कर रहा है भाई, इसको दे रहा है एनजे भाई, निगमा को, निगमा का फ्री नॉक। बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकालती हुई टीम आईडब्ल्यूएल के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीम आईडब्ल्यू वाइल्डकैट है भाई वो, एसटी का चिकन कंफर्म मेरे को लग रहा है ना, ये ले जाएंगे पूरा चिकन, वैम्पायर किया है और भरपूर तरीके से अपने झंडे वैम्पायर ले जा सकते हैं। ए वैम्पायर रुक जा, वैम्पायर क्यों बोल रहा हूं मैं, सॉरी के ऊपर आ चुकी है, बहुत अच्छी रोटेशन निकाली गई है। फ्री निगमा बोलना चाहता था मैं, वैम्पायर आ गया मेरे मुंह में, आई एम सॉरी गाइस। जाएगा निगमा गैलेक्सी डाउन टू 3 मैन स्टैंडिंग, टीम 4 राइवल्स के प्लेयर टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के एक्शन के हत्थे चढ़ जाते हैं, नॉक करने में कामयाब हो जाते हैं, नेट्स भी थ्रो किए गए, जस्ट लुक एट द क्लाउड ऑफ स्मोक्स, एसटीबी ले सकता है किया गया है बट वो जोन के बाहर है, लेकिन टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के प्लेयर कोशिश कर रहे हैं 4 राइवल्स को इस मैच से एलिमिनेट किया जाए, अभी के लिए काफी प्रेशर भी बना दिया जा चुका है। टीम परफेक्ट नेट जा सकता है, एक नेट काम खत्म, नेट्स का इस्तेमाल करते हुए क्रॉस हेडिंग की जा रही है दोनों स्क्वाड्स की तरफ से, लेकिन स्मोक्स के होने की वजह से पोजीशंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है के लिए, ब्लाइंड फायर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, टॉप का नेट हिट करता है 4 राइवल्स कोई बात नहीं, एक ही बात है, स्काई कोशिश करेंगे कि अब को नंबर 1 देखना है इंडिया को भाई, आगे की तरफ आते हुए थोड़े से डिफरेंट एंगल से टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स को रैप राउंड करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन गलत मूव, गलत रहा ये जो फैसला उन्होंने किया ये इतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन ऑन द अदर हैंड टीम आईडब्ल्यूएल के प्लेयर्स निगमा गैलेक्सी के सामने आते हुए तीनों प्लेयर्स जूस निगमा ले सकती है, निगमा पूरे सबको ले सकती है निगमा, अगर वो लोग कोई ये नहीं किए तो निगमा ले सकती है, निगमा इजी विन कर लेगी, इजी विन निगमा। निगमा गैलेक्सी इज ऑन फायर, 5 किल्स कर लेकर जा चुके हैं, सिर्फ एक प्लेयर इस फाइट के अंदर नॉक हुआ है, 2v2 सिचुएशन बन चुकी है, टीम आईडब्ल्यूएल के प्लेयर अभी तक सर्वाइव करते हुए 1v2 सिचुएशन के अंदर आते हुए है, और एक मॉलिना करियर डेड है, एक मॉली करियर डेड की कोशिश जरूर कर रहे हैं, हमूदी कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, आईडब्ल्यूएल और ऑन कोशिश करते हैं, सबको देखना है ब्रो, यस ब्यूटीफुल शॉटगन बहुत अच्छा खेले हो, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली इस्तेमाल किया जाता है, क्या ही अच्छे टाइम पर एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं, टीम निगमा गैलेक्सी बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है इस मैच के डिनर के लिए, लेकिन डामवॉन भाई अच्छा है, डामवॉन भी है टॉप 5 में मिल रही है, बट ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, स्टारबक्स के प्लेयर मार देंगे उन्हें, जिसके 4 प्लेयर्स हैं, ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी डामवॉन के 3 प्लेयर्स नीचे की तरफ मौजूद रहने वाले, सर्कल के अंदर भी दोनों की दोनों टीम्स को जाना है, एक नीड स्मोक थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, नेट भी थ्रो किया जाएगा, इसी के फॉलोइंग अगर नेट जाता है जॉर्ड बोल के दो प्लेयर्स को गिराएगा, एक प्लेयर को गिराता है, दूसरे प्लेयर को भी नॉक करता है, ब्लू जोन से एक्शन मेरे भाई, आखिरी प्लेयर सर्वाइव करते हुए एग्रेस किया जाएगा, टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स की एक्शन, टीम को मैंने तो कोच किया है, तो मेरी ही टीम है, ओ भाई कैसा ऑडियंस है रे, इंडियन ऑडियंस को भेजो, फिर देखना चीयर अप करना क्या होता है, उनके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं नहीं था ऐसा, उनका ऑडियंस भाई चीयर अप पे चीयर अप कर रहा है, एकदम मस्त वाला उनका ऑडियंस है यार भाई। अब तो लग रहा है ना स्टार वॉर्स ही ले जाएगा, अब तो लग रहा है ना स्टार वॉर्स का ही है, पूरा गेम स्टार वॉर्स का है, पूरा गेम स्टार वॉर्स का है। 4 राइवल्स का प्लेयर भाई स्टार वॉर्स के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है, बट उसका पता नहीं क्या हो गया उसके साथ, स्टार वॉर्स के ऊपर भाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है भाई, 2 अलग अलग सिंगल प्लेयर्स, एक प्लेयर लाइक पूरे टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, मतलब पूरा एक सिंगल बोल रहा हूँ सॉरी भाई, एसटी एक्शन ये बंदा गॉड है भाई, एक्शन गॉड है यार, क्या नेट डाला बंदे ने, 4 राइवल अलग से मार रहा है एसटी के ऊपर प्रेशर, और वो जो 3 बंदे ना 4 राइवल्स के 4 राइवल्स के बोल रहा हूँ, निगमा गैलेक्सी छोड़े, चलो नेवर माइंड हो गया, छोड़ो स्कैम हो गया, निगमा बट स्टार वॉर्स का है, स्टार वॉर्स के पास मैन पावर है, उसका क्लियर ना हो गया, उसको रिवाइव मिल जाएगा तो हो जाएगा, पीक मत देना, पीक मत, और जॉर्ड रे पीक मत देना बोल रहा हूँ, सर बोल रहा है, इंडेक्स को जिसने किया है, यस मैंने किया है, यस और इसी के साथ स्टार वॉर्स विद दैट चिकन डिनर, अबे कोई कोच नहीं है फेंक रहा है वो भाई, कहाँ फेंक रहा है भाई, यू नो जॉर्ड कोच ओके, वर्ल्ड चैंपियन कोच होता है, ये नीड एक्शन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है,
नेवर माइंड। एक्शन का ये नेड नहीं रे, थोड़ा आगे क्या कर रहे हैं, उसका नेड थोड़ा आगे नहीं गया, इसका नेड थोड़ा पीछे नहीं आया। अरे परफेक्ट नेड हामोदी, परफेक्ट नेड एक्शन। ओ भाई, रिटर्न रिवर्स, रिटर्न टू द सेंडर। ओ भाई, रिटर्न टू द सेंडर, छोड़ वे। एक नेट गया ना वहाँ पे, एक नेट वो था ना, रिटर्न टू द सेंडर। क्या किया बे, ये नेट थोड़ा आगे फटाना। जॉर्ड एनएक्सजी हैव टू पुश, वही करना पड़ेगा। नहीं, एनएक्सजी पुश नहीं कर पाएगी, उनके बाजू में मॉली है, लिटरली मॉली में चल रहा है। नहीं है, ओके नेवर माइंड, एनएक्सजी को जाना पड़ेगा। और स्टारवॉर्स का चिकन इजी है, स्टारवॉर्स का इजी चिकन है। अगर उनको क्या करना है, उनको बस होल्ड पोजीशन पे रहना है, उनको कुछ नहीं करना, नेट से बचना है। पूरा चिकन उनका है, पूरा चिकन अब स्टारवॉर्स चिकन ले जाएगी स्टारवॉर्स चिकन। चॉड चिंग चोंग नहीं, ये चिंग चोंग वाले नहीं है, सॉरी, स्टारवॉर्स साउथ एशिया के, सॉरी चिंग चोंग वाले नहीं है, मंगोलिया के। ओके, चिंग चोंग बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया स्टारवॉर्स वाले ने, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था भाई, मैंने प्रेडिक्ट किया। ओके, स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स स्टारवॉर्स का भाई बहुत अच्छा खेला है, हम्बल रहते हुए कोई ज़्यादा उन्होंने सेलिब्रेट नहीं की अपनी विक्ट्री, बिकॉज दिनों के अभी भी 2 दिन पड़े हैं। इट्स टू अर्ली कि हम इतना ज़्यादा इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, लेकिन निग्मा गैलेक्सी के उन 2 खिलाड़ियों को मैं सबसे ज़्यादा दाद दूंगा और भी 2 दिन है भाई, कुछ भी हो सकता है। मे बी डामवॉन ही किया टीम स्टॉलवर्ट ये कर ईस्पोर्ट्स ले, के प्लेयर्स का, मे बी फाइट भी कर सकती है, डामवॉन ही कर ले, कोई भी टीम हो सकती है भाई। शायद किसी ना किसी एक प्लेयर को वो नॉक करने में कामयाब हो जाए। जोड़ खेले यार, आई थिंक सो। निग्मा गैलेक्सी पोजीशनिंग देखनी है, अच्छा परफॉर्म किया है। अभी सेकंड लास्ट पे चल रही थी ना, पुश बैक कर रखा है। एग्जैक्टली अभी जो सेकंड लास्ट टीम चल रही थी ना, निग्मा गैलेक्सी एंड डामवॉन, थर्ड लास्ट डामवॉन, तो उनका पोजीशनिंग चेंज होके 50 14 13 हो सकता है कुछ। एलिमिनेशन पॉइंट्स इन टोटल 30 पॉइंट्स इंडस्ट्री से रियल एमवीपी यार, गॉडलेग स्टारवॉर्स, यस गॉडलेग स्टारवॉर्स, इन्होंने स्टारवॉर्स ही रखा है, गॉडलेग स्टारवॉर्स रखा नहीं उन लोगों ने, पता नहीं क्या हो गया था। परफॉर्मेंस 8 पॉइंट्स और प्लेसमेंट पॉइंट से 12 लेकर जाते हैं, 11 पॉइंट्स आरएसजी भी लेकर जाती है इस पॉइंट से। निग्मा गैलेक्सी एटलीस्ट सेकंड लास्ट तो नहीं आया, पॉइंट्स लेकर जाते हैं। आए है बट अभी चेंज हो जाएगा ना, वो राउंड 6 का ये आ जाएगा, स्टैंडिंग टेबल्स चेंज हो जाएगा। एंड डामबॉन थर्ड लास्ट चल रही थी, बैक टू बैक का मैं तो बोलूंगा जो लास्ट है वो लास्ट ही रहेंगे, चेंज नहीं होने वाले, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका गेम प्ले ओपी चल रहा है आजकल। नॉट अ बैड डे फॉर टीम इंडिया, यार टीम इंडिया के लिए बुरा दिन तो नहीं था यार। अभी अपना टीम करंटली चल रहा है #11 पे, तो अभी सारे पॉइंट्स आने तो बाहर पे देखते हैं क्या होगा। सारे पॉइंट्स अभी तक बाहर नहीं आएंगे। ये तो स्टारवॉर्स वैसे लाइक अच्छे खेले यार, 15 एलिमिनेशन एंड ऑल दैट, 30 पॉइंट्स, पूरा राइवल्स भी अच्छा खेले, पूरा नहीं खेले वो लोग भी। जिस तरह से खेली है एक्चुअली निग्मा बुरे नहीं खेले रे, निग्मा बेचारे सेकंड लास्ट चल रहे थे, वो लाइक थर्ड आ गए मस्त वाला। डामवॉन सेम गोज फॉर डामवॉन, थर्ड लास्ट चल रहे थे, 6th आए हैं एंड शॉर्ट कंप्लीट। ओवरऑल स्टैंडिंग्स दिखा दो, जल्दी डिनर करने जाना है, मैं बताता हूँ ना ओवरऑल स्टैंडिंग, डोंट वरी। अभी आएगा, आया क्या, एक सेकंड देखता हूँ मैं, नहीं आया, आएगा अभी नहीं आएगा, आएगा थोड़ी देर बाद आएगा। नोवा होती ना मेरे को नोवा का देखने में मजा आता, नोवा होती ना यार मजा, बहुत जोर वाला नोवा होती ना यार। हे भगवान, लास्ट मैच था ये यार, लास्ट मैच था, अभी ओवरऑल स्टैंडिंग बाहर नहीं आई, ये तो बस अपनी इस मैच की रैंकिंग में देखते हैं। ओवरऑल स्टैंडिंग ना, ओवरऑल नहीं बाहर आई है यार। नोवा होती ना गेम चेंजर मैच होता पूरा, लाइक नोवा क्वालिफाई नहीं कर पाई, वही ना यार, नोवा होती ना बहुत गेम चेंजिंग लाइक सीनेरियो होता। नोवा के बदले रेगान्स आई है जो कि अच्छी टीम है, और भी बुरी टीम नहीं है, बट यू नो क्या ही बोले, अभी बोल भी क्या सकते, मतलब ठीक है एग्जैक्टली। एंड टीजीबी में भी आधे से ज़्यादा चाइनीज प्लेयर्स, ये पता है टीजीबी में, टीजीबी स्पोर्ट्स में भी। I'm here to give an answer for you about this channel, ओ भाई नो अबाउट भाई, एड अबाउट भाई, क्या कर रहे हो तुम?
के शॉर्टर फॉर्मेट किसी का नहीं होता। ये साला फॉर्मेट ओवरऑल स्टैंडिंग का जल्दी नहीं डालते यार। इंडस्ट गर्लफ्रेंड नहीं बिल्कुल ऐसन। और आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि वो टीम्स खासकर जिन्होंने आज के दिन स्ट्रगल किया है उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अभी आप डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते। सो कल के दिन असल टेस्ट मेरे ख्याल से उन टीम्स का है। कल के दिन में मजा आएगा। कल के दिन में जो लास्ट टीम्स अभी देखते हैं, मैं देखता हूँ लास्ट टीम कौन है। लेकिन इन दी एंड राउंड 6 का या राउंड 6 कब डालते थे लोग साला। थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में उनको मुश्किल होती है लॉबी को, लेकिन उन्होंने कमबैक किया। अच्छा खेला यार, बहुत अच्छी कमबैक ना। मेरे को फैल्कन की तरफ से मजा आया यार। फैल्कन जो कमबैक कर रही है, फाइटू ने भी कमबैक किया था वो वाला। सामने आ चुकी है एक्शन एक्शन और एक्शन। क्या कमबैक किया रे टीम ने। फैल्कन की टीम ने कमबैक किया है, फाइटू ने भी कमबैक किया है। हाईएस्ट डैमेज 1100 वही सीन भाई, चौड़ खेल रहे हैं लोग। आई हैव वाइफ वाओ आर्यन एरर 404 बिकॉज़ हिज गर्लफ्रेंड इज मोर देन 100। ओह माय गॉड, मोर देन 100। पर 100 से भी ज्यादा टीम्स होती ना, 100 से भी ज्यादा टीम्स बोल रहे शिट गर्लफ्रेंड। टीम्स की बोल दिया रे मैं। एक्शन को देखो रे, एक्शन का ग्रेनेड क्या बेस्ट है। एक्शन बेस्ट यार, गोल्डन हैंड है भाई एक्शन के पास। जो एक्शन ने डिसीजन लिया ना नीचे नेट डालने का, भाई मैंने बोला था एक्शन को, एक्शन डाल दे नीचे नेट यार। मैंने बोल दिया एक्शन को, यू नो थोड़ा डिस्कॉर्ड पे हमारी बातें चल रही है। जस्ट किडिंग, बट एक्शन का नेट अच्छा था। उनकी तरफ से किए गए और उस चीज ने काफी एक्शन जो भाई यहाँ पर गलत यार। टामोन को बहुत लॉस हुआ वो नीड से। PMWI लॉस यार, स्कैम हो गया बेचारों के साथ, टामोन के साथ। प्ले बॉय अवार्ड कौन प्ले बॉय हो भाई। मैं नहीं ओके, वो गलत बताता है नाइट बॉट। वो नाइट बॉट क्रैश है, यू नो, उसका ब्रेन क्रैश है नाइट बॉट का। इज नॉट वेल, नाइट बॉट इज नॉट वेल, इज जस्ट इज ड्रंक। नाइट बॉट ड्रंक है भाई, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है नाइट बॉट। कम ऑन बे, ओवरऑल स्टैंडिंग डालो, मेरे को देखने का निग्मा गैलेक्सी का पोजीशन। निग्मा का देखना है, डामोन का देखना है, एंड एटॉन का भी है। एटॉन लास्ट टॉप लेवल, सोल का भी देखना है रे। सोल भी अच्छा खेले इस मैच में यार। तो फ्रैगर है एक्शन, वही ना यार एक्शन। और आपसे वजह भी मैं पूछूंगा कि आपको इतनी याद बहुत अच्छा खेल रहा है। लेकिन एक और टीम का मैं नाम लेना पसंद करूंगा, टीम फैल्कन्स को हम कैसे भूल सकते हैं। काफी टीम फैल्कन्स का भी कमबैक क्या देखने को मिला है। और जैसे उन्होंने अपने बैक स्टैप्स को क्लियर किया और ऐसे मैचेस में उन्होंने सरवाइव किया है अपने 3 से 4 प्लेयर्स के साथ, जहां पर इम्पॉसिबल था, जहां पर उनके अलावा एट टाइम्स सर्कल के अंदर कोई भी टीम अपने 3 प्लेयर्स के साथ सरवाइव नहीं कर रही होती थी, और वहां पर फैल्कन्स अपने चारों के चारों प्लेयर्स के साथ सरवाइव कर रही होती थी। सो कहीं ना कहीं ये प्रॉमिसिंग स्क्वाड्स हैं जिनकी साइड से कल के ब्रूनोज का मेरे को पता नहीं क्या इशू है। ब्रूनोज और फिर वो अपना सेना टेक्सा अगर हम गिनना शुरू करें तो शायद वक्त निकल जाए। चल रहा है बेचारों के साथ से कल के दिन भी एक अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल कर सामने आएंगी। टॉकिंग नॉट बैक टू बैक भाई, जैसे जे 7 किल स्विच बोलो तो क्या है यार, मजीद बढ़ता हुआ चला जाएगा। बेचारों के साथ बहुत बुरा हो गया। बेहतरीन इंटरव्यू और स्टेज पर चलते हैं एंड इंटरव्यू देखिए। ओके, इंटरव्यू देखने में हमें बस ओवरऑल स्टैंडिंग चाहिए, तो ओवरऑल स्टैंडिंग देखते हैं हम। ओवरऑल स्टैंडिंग अभी तक बाहर नहीं निकली है। जॉर्ड 1 राउंड 5 का ही निकला है। सालो राउंड 6 का दो। कुछ समझ में नहीं आया बट सुन के अच्छा लगा। ये अहमद भाई का फेस इन फ्यूचर निंजा जैसा क्यों लग रहा है। वो द हेल निंजा। ओ भाई ठीक है भाई, ये कर लो तू निंजा जॉर्ड। कुछ समझ में नहीं आया बट सुन के अच्छा लगा। ये बोल रहा है कि आपके टीम को भाई आपने इतने पैसा लाया, क्यों लाया, किस लिए लाया, मज़ा आ गया क्या आपको खेल के। देखो 99% मैच करता है। उस हेल में ऐसा मत करो भाई। 99% मैच करता है भगवान। ठीक है, ये कर लो। अहमद एक निंजा, मेरी टीम ओपी है यार, तेरी टीम नहीं हो। ओके, वो टीम तेरी होगी, कोच मैं हूँ। ओके भाई, आई एम कोच।
that extra space for you when you're focusing on rotations in the late game. Team Falcons. अच्छा ट्रांसलेट कर रहा है उसको. आंखों में आंसू देखो भाई बंदे के, आंखों में आंसू आ गए, तुमने उसको इतना रुला दिया. अहमद एक्स ने वैम्प ई-स्पोर्ट्स गॉड देखो रो, अबे रो क्यों रहा है? वो उसको इमोशनल फील हो गया उसको भाई, बहुत इमोशनल हो गया बंदा, बहुत इमोशनल हो गया. देखो गाइस उसके आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू देखो बेचारे के, रो रहा है वो. इतना रुला दिया तुम लोग ने, क्यों पैच काट रहे हो विंडोज ब्रो उसके सामने? वैम्पायर भाई कोच बोलते ओके रिस्पेक्ट. अरे क्या भाई बेचारे को रुला दिया ना बेचारी को. देख मेरे को गुड कोच बोल भाई, देख अभी मुंह पे देख वो बोल दिया गुड कोच. वो देख रो रहा है, वो रो रहा है वो. अबे वैम्पायर हराम को ये रुला दिया अभी बेचारे को. रुको अभी मैं इसका रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ ऑफिशियल्स को. रुला दिया बेचारी को. रक्षाबंधन के दिन दीदी को रुला दिया तुमने, हैं हरामखोर. रक्षाबंधन के दिन भाई बेचारी को रुला दिया. टीम फैल्कन्स इतना इंस्पायर नहीं करना था इंडेस ब्रो, रो दिया बेचारा. भाई तो टिश्यू दे दे जाके भाई, क्या इंडिया से टिश्यू वहाँ पे एक सऊदी अरेबिया में. वो डायरेक्टर को बुलाओ रे वापस पबजी मोबाइल की इसकी, तो उसको बचा दूँ हम, उसको बचाना है यार. Well, let's hope that you can do that. Never alone. Thank you so much for joining us on the stage after your post-match. Overall standing. अरे हाँ इनका बीटी चल रहा है ना आर्यन ब्रो, तो आएगा थोड़ी देर. अभी यहाँ पे लोड भी नहीं हुआ, मतलब ओवरऑल स्टैंडिंग आई नहीं है एक्चुअली. वो लोग है कि ये इसका कैलकुलेट हो रहा है ओवरऑल स्टैंडिंग. ये निंजा आ गया. अरे भाई ऐसा मत करो यार, कौन बोल रहा है निंजा? अपनी इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि वो चाहते हैं कि इस कंपटीशन की जो ट्रॉफी है वो घर पर ही आए, बिकॉज रियाद के अंदर जो है वो ये कंपटीशन हो रहा है और सारे क्राउड के सामने फाल्कन कोशिश कर रही है कि ट्रॉफी जो है वो बाहर ना जाए, ट्रॉफी जो है वो घर के अंदर ही रहे. सो ट्रॉफी घर के अंदर ले. वैम्पायर भी लाइक अच्छा, और जिस तरह से होस्ट ने भी पूछा कि आप किस तरह फील कर रहे हैं अपने क्राउड के सामने परफॉर्म कर. वैम्पायर, स्टारवॉर्ट ईस्पोर्ट्स एंड बॉक्स गेमिंग छोड़ दो भाई, बॉक्स गेमिंग के साथ इशू हो रहा है. बट फाल्कन भी ले जा सकते हैं भाई, फाल्कन भी देखो ना बे. नहीं यार मेरे को रुक रहे भाई, हट स्ट्रीम बंद करो रे, मेरे को देखना ही नहीं है भाई क्या चल रहा है ये निंजा. सीरियसली ये आपने जान के मुझसे सवाल किया कि आपको पता भी है मुझे इतनी अरेबिक नहीं आती, लेकिन फिर भी आपने मुझसे ये सवाल किया. और इसका तो हिसाब मैं आपसे बाद में लूँगा, लेकिन जो बेसिकली वो कहना एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी वहाँ से पिक की है कि कोच का होना कितना ज़रूरी है. देखा कोच का, देख मेरी बात कर रहा है वैम्पायर, देख मेरी बात कर रहा है बंदा, इसकी अहमियत नहीं समझते. देखा वहाँ पर अगर 18 का होना बहुत हैं मेरी बात, जिसमें से 17 टीम्स कोचेस के साथ आई हुई हैं. सो उनकी इम्पोर्टेंस उन्होंने बताई है कि कितना मेंटल हेल्थ देखा किया है, कैसे उस प्रेशर को उतारा मेरी है, बात हो रही है भाई, और कितना साथ दिया है. सो ऑब्वियसली भाई फर्स्ट पे एरेंगल में भाई उसका सामना कर लें, वैम्पायर ही है. आप सेकंड में अपना कर ही लेते हैं. और टीम फाल्कन्स बहुत अच्छा सेकंड में कौन है भैया, कौन सी टीम है सेकंड की? विनर्स हमारे सामने आ चुके हैं. ये भूल गया मैं, 6 मैचेस में सॉरी 6 विनर्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं. सेकंड वाली टीम कौन सी थी बे, मैं एक्चुअली इसका नाम भूल गया सेकंड वाली टीम का, बट नेवर माइंड जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला. अच्छी टीम खेली वो, एक्चुअली बहुत अच्छी खेली यार लोग भाई, बहुत अच्छे खेले. वीवो कीट की अगर बात की जाए, टीम वैम्पायर्स निंजा's dad is real MVP. अच्छा इन टीम्स की तरफ से. अरे हम स्टैंडिंग्स देखते हैं कि नहीं, बाहर स्टैंडिंग्स नहीं आई अभी तक. जॉर्ड मेरे भाई स्टैंडिंग से बाहर नहीं आई, जॉर्ज मेरे भाई स्टैंडिंग से बाहर नहीं आई. यूएसजी था एरेंगल ले गई 4th वाला,
और फिर फैल्कन अपना 5th वाला ऑब्वियसली दैट गुड थिंग। But again, it was a wonderful day, बहुत ही बेहतरीन wonderful day, yes, short day। स्टारवॉर्स अपना भाई 6 वाला एंगल क्या ले गए रे, जॉर्ड उनका होना ही था वो। कोच की बात हो रही है, एक्सक्यूज देने वाले की बात नहीं हो रही हो भाई, वो एक्सक्यूज नहीं, वो फैक्ट्स है, यू नो फैक्ट्स है वो, फैक्ट्स नॉट एन एक्सक्यूज, ओके that's in facts, not excuses। ये रही overall standing George, the moment, the day, the time we've been waiting for। हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है वैम्पायर ईस्पोर्ट्स विद 86 पॉइंट्स। स्टारवॉर्ट सेकंड पे ले लो भाई, स्टारवॉर्ट्स वालों ने अपना ये वापस ले लिया सेकंड पोजीशन। ही रात पीछे है वैम्पायर ईस्पोर्ट्स से, एंड कल के दिन काफी चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी। इनफैक्ट टीम फाल्कन्स भी इस दौड़ के अंदर काफी करीब है। हाउएवर डोनेट्स यूएसजी से लेकर 8वें स्पॉट तक कुछ मुश्किलात उनको जरूर सामना जिनका उनको करना पड़ेगा टॉप 3 के अंदर आने के लिए। डोनेट्स यूएसजी स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी चाहिए ना, पॉइंट्स लगभग उनको चाहिए टॉप 3 के अंदर आने के लिए। लास्ट पे ऑब्वियसली देखो, लास्ट का मैं प्रेडिक्शन बता दो, लास्ट पे बैक टू बैक होगी और सेकंड लास्ट पे मे बी वीजीएस और थर्ड लास्ट पे एटॉन ही होगी भाई, उनका गेम भी खराब है। सोल की क्या रैंक है आज? सोल की मेरी प्रेडिक्शन चल रही है, सोल की 14 या 15 रैंक हो सकती है, अभी 12 भी हो सकती है, 12 भी रैंक हो सकती है, पता नहीं 12 रैंक हो सकती है। ऑलवेज ऑन टॉप बेबी, तेरी बात नहीं हो रही, ओके अच्छा खेली वैम्पायर ईस्पोर्ट्स एंड स्टारवॉर्ट्स भी, वो पोजीशन नहीं छोड़ रहे भाई, फर्स्ट पोजीशन देख लो, कोच मैं हूँ ना इसीलिए। वो वैम्पायर के कोच का कॉल आएगा है क्या बोला? काफी वर्क किया और देखो बोला था, अरे 13 पे, सॉरी 13 पे, नेवर माइंड, थोड़ा ये हो गया। सोल टॉप, सोल का एक्चुअली अबाउट टॉप, सोल ओपी, यस सोल ओपी, यस सोल ओपी 13 है रे, मेरे को लाइक 12 लगा था बट 13, लेट्स गो, कोई बात नहीं। एंड एज बोला था एटॉन 16 पे भाई, सबसे लास्ट एंड सेकंड लास्ट B2B एंड ये होनी चाहिए, VGS होनी चाहिए। डाउनबाउंड पहले 15 चल रही थी, अच्छी बात है कि वो है 16 लाइक 15 पे आ गई है, पहले 16 चल रही थी अभी 15 पे आ गई है, अच्छी बात है। कल का टॉप 7 का गोल फॉर सोल, यस यार गोल भाई, वही करो यार सोल वालों, कुछ तो करो भाई, होना चाहिए। RSG विथ 9, निग्मा 11, निग्मा बेचारी भाई बहुत सैली, सेकंड लास्ट पे निग्मा वालों ने बहुत सहा है, अच्छी बात है 11 पे आ गए। सेम विथ RSG एंड 5-2 14, अच्छी बात है। डायमंड 15 जो कि 16 चल रही थी, 1 बढ़ा दिया गया है। कोच नहीं ओनर मैं हूँ, इजी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पॉइंट्स का, हाँ भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सेप्ट क्या बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट की वही निग्मा गैलेक्सी सेकंड लास्ट से सीधा 11 पे आ गई है, सेम विद RSG थोड़ा ऊपर आ गई है, थर्ड पेज से उठकर वो हैश 11 पर आए हैं, 33 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। हाँ देखो बोला था ना, बैक टू बैक VGS वही लास्ट टीम स्टॉलवर्ट की तरफ से और निग्मा की तरफ से, लेकिन बाकी टीम्स एटॉन ईस्पोर्ट्स की जैसे बोला था ना भाई, बोला था ना वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड 19 पॉइंट्स लेकर जाने में कामयाब हुए हैं सिर्फ 6 मैचेस में। निग्मा के बंदे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस मैच के अंदर, कुछ और होते हैं अभी, हाँ वही तो जैसे हमने क्लचेस देखे हैं निकलते हुए उनके प्लेयर्स की तरफ से, लेकिन लाइक 11 से और लाइक टॉप 10 में आ ही जाता है आराम से, टॉप 10 में। तो बात है कल का दिन ही होगा सिर्फ आपके पास इस सारे इवेंट के अंदर कमबैक दिखाने का, क्योंकि उसके बाद आपके पास मौका नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ PUBG Mobile World Invitational 2022। I hope you guys enjoyed this stream। अगर आपको ये सारी प्रोडक्शन पसंद आई है, अगर आपको कास्टिंग पसंद आई है, तो हमारे हैंडल्स आप पीछे कर देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर मौजूद थे, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। देखो गाइस फॉलो करो, बंदा बोल भी रहा है फॉलो करो मुझे, देखो अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखिए। दिस वाज योर कास्टर आदि अलोंग विद दिस वाज योर कास्टर इंडेस्ट विद वैम्पायर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरे को बोलूंगा कि थोड़ा दूसरी टीम को भी मौका दे। ओ भाई ओके, वो फ़ोन कर, उनको फ़ोन भी करना है ना, बोलो है कौन जी, कौन बोल रहे हो आप, तू है कौन, पहली बात तू है कौन। GG वे इंडिया #believe, यस भाई अच्छा गेली सोल 13 पे, मतलब अच्छा ठीक है चल रहा है, मतलब भाई अच्छी बात है। चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द स्ट्रीम, मज़ा आ गया स्ट्रीम करके।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी वो भाई जो भी होता है कर दो यार। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम लोग गाइस, कर दो लाइक सब्सक्राइब शेयर। अभी आओ, अभी कुछ हम बीटी करते हैं। क्या करना है, कुछ बीटी देखना है, कुछ बीटी देखना है, बीटी कुछ देखना है। रुको क्या देखे, गुड नाइट बड़ी, यस गुड नाइट। मीम्स देखने हैं अपन, मीम्स देखते हैं। रुको भाई, हमको चाहिए क्रिएटिव कॉमन्स वाले, हमको ये नहीं चाहिए। आओ मीम्स देखना है क्या गाइस, बोलो। स्ट्रीम ख़त्म, GGWP कॉपीराइट फ्री मीम्स देखेंगे भाई। मीम्स साला बहुत गंदा ये पड़ता है, मीम्स लगा दो कुछ भी बोलो। मज़ा तो आया भाई। फैल्कन और इनका कमबैक देखने मज़ा तो आया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखते आओ मीम्स देखते। ना अरे यार ये क्या है बे, ये रुको, ये गलत है। ये क्या लगा दिया मैंने, ट्रेंडिंग मीम्स। ये देखते आया ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। मीमपुर सर वाले को वीडियो अच्छा चला दो। अरे मेरे को कॉपीराइट पड़ेगा ना, वो अलग बात है। ये क्रिएटिव कॉमन्स से उठाया मैंने मीमापुर, वो मैंने क्रिएटिव कॉमन्स से उठाया है। मेरे को बहुत गलत कॉपीराइट पड़ेगा। कॉपीराइट तो नहीं पड़ेगा ना मीमापुर में वाला में। तो देखते हैं मीम्स सर्च करते हैं, मीम्स। अरे वो छोड़ो, मीम्स छोड़ो। तुम्हें किसी को ये पता है वो हाउ टू बेसिक पता है तुम लोग को? हाँ ये कर लो पहले। हाउ टू बेसिक पता है किसी को? किस को पता है हाउ टू बेसिक? हाउ टू बेसिक किस को पता है वो बताओ। हाउ टू बेसिक किस को पता है बोलो। उसकी लगा दो वीडियो। नोप, चलो देख लो। तुम लोग को नहीं पता ना हाउ टू बेसिक, किसी को नहीं पता ना। चलो भाई हम आज थोड़ा सीखेंगे कि कौन सा लगाओ। रुको, चलो एगलेस केक गाइस, हम केक बनाना सीखेंगे। आओ स्किप मत करना वीडियो, आई मीन लाइव स्ट्रीम बंद मत करना। मैं तुमको बताता हूँ ये एक्चुअली बताता है कैसे ये करते हैं। ये करके ये एक्चुअली बताता है। हर्ष बेनीवाल की न्यू वीडियो आई है। अरे भाई वो गलत कॉपीराइट देते हैं यार। अरे ये देखो ना, सुनो, कोई स्कैम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस तुम लोग वीडियो देखो, तुम लोग को मज़ा नहीं आया ना, लाइक स्ट्रीम छोड़ के चले जाना। ओके देख लो, केक देखो कैसे बनाता है। How to make an eggless cake. देख लो भाई। This delicious cake contains no traces of egg whatsoever. It's also low in sugar and fat. Step 1. Place the following ingredients in a large cake mixing bowl. 1.5 cups of all-purpose flour, 1/4 cup of cocoa powder, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of baking soda, 1 cup of sugar. देखो ना भाई आप, तुम लोग देखो तो। Turn your mixer onto a low speed. लास्ट तक देखो। Then add the following: 1 cup of full cream milk, 1/3 cup of premium coconut oil. Step 2. अरे यार वहाँ देखो गाइस, केक बनाना देखो। अब आगे देखते जाओ। Step 2. Add eggs. Step 3. Add 1 cup of chocolate sauce. Step 3. Add 1 cup of chocolate. सीख लो केक कैसे बनाते हैं। Step 3. Add 1 cup. Step 3. Add 1 cup of chocolate. Step 3. Add 1 cup. Step 3. Add 1. Step 3. Add chocolate. Add तो करने दे उसको। Let him give her a chance to. Add chocolate sauce. Add chocolate sauce. Add more eggs. Add more eggs. Add more eggs. Ran out of eggs? Don't worry. Simply go to egg.shirts.cool and pick yourself up some how to basic egg plushie. मैंने इसकी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी थी। Mixer broken? I guess मुझे कुछ बनाना था। एंड प्लीज डोंट वार्निंग डाल देनी चाहिए इनको। अरे हाँ वो छोड़ो,
इसकी ये वाली वीडियो देखी थी मैंने फर्स्ट टाइम, कुछ तो मेरे को बनाना था आई गेस केक या कुछ किसके ऊपर, फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी एंड मैं लिटरली वो चीज़ फॉलो किया, पता है तुम लोग को, लिटरली मैं वो चीज़ फॉलो किया एंड एट लास्ट ये बंदा ये बीटी करके मेरे को बोलता है कि ऐसा ऐसा, रुको मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाई देता हूँ वीडियो, मैं नहीं इतना पुराना नहीं था, रुको कुछ तो था यार, कुछ तो केक था केक का था कुछ तो, रुको मेरे को पता है, मेरे को अभी तक वो वीडियो पता है, ये वाला अकाउंट के नहीं है। मैं लिटरली वांटेड टू मेक दिस केक सो बैड, मैं लिटरली सब इंग्रेडिएंट्स लेके आया था, पता है वीगन केक नहीं था, नॉर्मल केक का कुछ तो नाम नहीं, ये था क्या चॉकलेट मड केक, ना क्रैब करी कहाँ गया वो केक, रुको वेडिंग केक भी नहीं था, परफेक्ट बर्गर केक कहाँ गया यार वो वीडियो, नहीं यार बहुत नीचे होगा क्या, मतलब उसी दिन फ्लाइंग चप्पल रिसीव किया अपने मॉम से, नहीं वो आगे की स्टेप फॉलो नहीं किया, वो आगे की ज़्यादा स्टेप फॉलो नहीं किया मैंने, बस तुम लोग वो वीडियो देखो, मेरी दिमाग खराब, वो फट के 4 होने लगी मेरी नसें, मैं बोला भाई इतना आगे आया और ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि छी बे स्टर बनी नहीं यार, केक का तारे को चिकन नगेट नहीं हाँ ये रहा रुको ये देखो ये ओके रेनबो केक मैंने देखा एंड आई वाज लाइक चलो मेरे को तो बनाने का है, मैं तो बना के रहूँगा, मेरे को ये बनाने का है ओके एंड मेरे इतना इंटरेस्ट जग गया ये वीडियो देखे, ओप्स वैम्स ब्रो, अरे वो छोड़ो, ये देखो इसे क्लिक किया मैंने ओके एंड आई वाज लाइक सब इंग्रेडिएंट्स दूंगा ओके, अंडे लिए थे उसने, थोड़ा सा अंडा मैं सबसे फॉलो किया, फ्लोर सब ऐड किया, बिल्कुल सब मैदा में सब ऐड किया था मैंने, ये ऐसे नहीं किया था जैसे ये दिखा रहा है, फिर मेरे को ना कुछ गलत लगा कि ये बंदा कुछ गलत कर रहा है, मैंने और आधे से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ना ऐड भी कर दिए थे, और ये बंदा जब हाथ डालने लगा ना मैं बोला कुछ तो गलत है, नहीं कुछ तो गलत है, मैं फिर पहले पूरी वीडियो देखता हूँ और फिर जब मैंने यहाँ तक देखा ना मैं बोला ठीक है, जो इंग्रेडिएंट्स जितने डाले थे जो कुत्ते की तरह मार पड़ी वो अलग थी, बात नहीं करेंगे हम, वीडियो की बात करेंगे। Like what the fuck did you do? मार्शमेलोस भी ऐड किए बंदे ने, what the हे भगवान पीछे, अरे भगवान वाह सब्जी बहुत स्ट्रीम हो रही है, आ गया तुम गाइस, ये लगाने से आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, बहुत डिस्कस्टिंग, बहुत जो बंदे नए स्ट्रीम अभी देखने आए होंगे ना, what the fuck is going on in this stream? Illuminati. अच्छा हुआ मैंने यहाँ तक इतनी स्टेप्स फॉलो नहीं की, और वहाँ तक स्टेप्स फॉलो करता ना तो आज मैं स्ट्रीम नहीं करता। भाई बहुत गलत बंदा है यार, हाउ टू बेसिक बहुत गलत बंदा है, इन लोगों की वजह से आज बेचारे गरीब भूखे मर रहे। आई छोड़ो भाई, भाई शीब है, मतलब इस क्या ही बोले अब इनको।
मीम्स भी नहीं देख सकता साला, गलत कॉपीराइट मारेंगे वो अलग। खत्म कर दी ना स्ट्रीम इन लोग ने जोड़। कल और है देखो नेपाल EM जो कि डे थ्री ये वाला होगा लास्ट डे इन लोग की वजह से भाई। तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, अब हम क्या ही बोल सकते हैं। बहुत गलत बंदा यार वो, हाउ टू बेसिक लाइक लिटरली यार एकदम डिस्कस्टिंग मतलब सीन। कोई बात नहीं, शुगर बंद कर दिया आर्यन भाई, तो शुगर ही बंद कर देने वाले भाई। देख लो फ्री मीम्स टीवी लास्ट वीडियो देख लो। क्या ओके फ्री मीम्स टीवी आरवी नहीं रे टीवी भाई। ये मेरे को ये तो नहीं मारेगा ना, तो पड़ गई ना कॉपीराइट। तुम लोग की गलती होगी, सुन रहे हो, तुम लोग कॉपीराइट पढ़वाओगे एक दिन। चलो एक वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद मैं निकल लेता हूँ। एक वीडियो देख के रुको। मी आफ्टर रीडिंग समवन्स DM फ्रॉम द नोटिफिकेशन बार, मी नोटिफिकेशन बार। हाँ ऐसा देख के चलो ठीक है हो गया। तू बोले तो मीम्स के लिए मेरे पास जितने भी मीम्स आएंगे वो डीजे पे सेंड करता सकता हूँ। हाँ मीम सेक्शन आई गेस होगा अपने चैनल में। मी फ्रॉम नोटिफिकेशन बार सेफ है। कोई क्या आगे नहीं चल रहा क्या इसका? हाँ सेफ है सेफ है। ओ भाई आराम से आराम। हो 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 मेरी मॉम इज स्लीपिंग। अरे हाँ एकदम धीरे धीरे भाई। Where did you come from? Where did you go? From Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. गेम खेले, अरे गेम खेले अभी चार्ज है भाई। घंटा साला यहाँ पे उनको खोज भी नहीं बनने देते। 1 तारीख को आऊंगा और ये लेके जाऊंगा। चल ये मैं फ्रेंड चल तेरी चल मेरे साथ। भाई जन्मते ही प्यूबर्टी हिट कर दिया था इसको। ठीक से नहीं हिट किया था उसको, नेवर माइंड। और यो 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 ब्रो यो फटके 4 हो गए भाई बच्चे की। Modern problems require modern solutions. स्मार्ट फादर ओके। तेजस्वी कुत्ते हैं हमारे पास। वाह क्या स्प्रिंग है। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। वॉइस वॉइस ब्रेक क्या हुआ यार? मजदूरी करना, पानी भरना, मजदूरी करना। एकदम सेकंड में। गाइस क्या काम करते हो तुम? पानी भर मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग बेली से नागिन निकाली। अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। बहती हवा सा था
राजू ठीक है ना नीचे? हाँ भाई ठीक है। नहीं हूँ वो जो रहमत से गिरा वे खुदा। Ask please your crush. भाई दुल्हन को नचा दे। जब किस्मत में ही लिखा है मिलेंगे पकोड़े। अरे इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत है। चो खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय। खत्म रे खत्म। मारो पिचकारी होके लेफ्ट होके राइट। I got broads in Atlanta. सफेद कपड़ा ओ 10 years भाई गर्ल जो ये हो गया। खाते रहो मोटापा बढ़ाते रहो, खाते रहो तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचानते हैं। ट्रू मुन्ना भैया यार क्या ही करे। Apple can finding out to just deposit. आप भी ठीक करके देता हूँ। ये तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। 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 तो हाथ में है। तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी बेटे। मैंने आपको कोरोना रिपोर्ट अपनी भेजी है, पॉजिटिव है वो, लेकिन मैंने उसको माना नहीं रिपोर्ट को। मैंने कहा मैं तो सोच के पागल हो जाऊंगा। या मुझे खांसी नहीं, मुझे जुकाम नहीं, मुझे बुखार नहीं, मुझे मेरे को आज अस्पताल से आए हुए 10 दिन हो गए, मुझे मेरे लंड पे ठंडी छींक तक नहीं आई। तो लोगों को पागल बनाते हो। जिसके दिमाग में बैठ गया ना मुझे कोरोना है, वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। कोई कोरोना फरोना नहीं है, बहुत बड़ी गेम चल रही है वर्ल्ड में। बस ये देखो मैं तो पैच नो कोरोना। जोड़ अंकल जी जोड़ अंकल जी बहुत। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। पैरों को दादा की फीलिंग्स बुरा ठीक भी नहीं आई होगी। अरे क्या करना क्या चाहते हो रे तुम लोग? आई होप यू एंजॉयड द स्ट्रीम। लेट्स गो देन। स्ट्रीम एंड कर दे। नेक्स्ट लेवल चाचा वही तो यार। वैम्पायर तेरे तो चचा नहीं है ये। तेरे चचा भग लिए थे क्या? ये तेरे चचा लग रहे वैम्पायर भाई। क्या हो रहा है ये? चलिए इस पर मिलते हैं कल की वॉच पार्टी या फिर कल की स्ट्रीम के लिए। बाय बाय सायोनारा। चलो भाई निकलते हैं अब। और ज़्यादा मीम्स नहीं देखनी है मैं। नो ज़्यादा मीम्स देखेंगे ना। ओ जी ब्रदर, यस ब्रदर जी मेरी नहीं है भाई मेरी। गुड नाइट। यस ब्रो गुड नाइट। सायोनारा स्वीट ड्रीम्स टेक केयर। चलो गाइस बाय।